honorable guests, distinguished speakers, and dear students. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Am I audible? Honorable guests, distinguished speakers, and dear students. Assalamu alaikum. I am Fajr Nadeem, currently doing my articles from Air Ferguson Lahore, and I welcome you all on this professional grooming activity. To begin with the proceedings, we'd like to start from the recitation of the Holy Quran. I request you all to please observe silence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, now I request you all to please rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, it's an absolute honor for me to invite upon stage for the welcome address our distinguished guest, Mr. Farooq Hamid, FCA, a practicing chartered accountant, fellow member ICAP, and secretary NRC. Please give him a round of applause. जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? सॉरी आई नीड अ फीडबैक। आवाज़ आ रही है मेरी? थैंक यू वेरी मच। एक तो अस्सलाम वालेकुम यार टू एवरीवन and my job is to welcome you all to this professional grooming activity, but I would take this opportunity to share a few advices as well. एक तो ये यार
since you have completed a milestone in your professional life, and as you embark on your next journey of professional training, this activity gives you an opportunity to meet, listen, and interact with professional and partners of various firms. It will give you an opportunity to understand कि वो क्या चाहते हैं when they're interviewing you, or what they're looking for in you. Is it just your personality, your knowledge, your personality overall, the way you, it's your focus, your ability to, your positive vibe क्या है, or is it a combination and probably more than that? So आप ये सब कुछ देखोगे, सीखोगे. These are very seasoned professionals. So my advice to you all is to understand, to take it seriously. इस सेशन को, because as you embark on your next journey, it's very important क्योंकि आपने प्रोफेशनल फर्म में जाना है, इंटरव्यू देना है, so it's very important कि आप आज जो कुछ सीखते हो उसको अप्लाई भी करो. लेकिन first thing first यार, एक तो ये है कि be yourself. Don't be a person you are not. So be honest with yourself, be candid, be open. ये जो हम एक फसाद लेके जाते हैं ना अपने ऊपर का, वो एक रटा शुरू कर देते हैं. So it gives a very bad impression on the interviewer. ये चीजें जरा देख के, खैर ये चीजें सारी डिस्कस होंगी, ये सारे आपको बताएंगे क्या क्या देखते हैं, ये क्या नहीं देखते. But my advice is to take it seriously. Your CV is your first communication with your with the firm that you are planning to join. So take it seriously. उसको भी टाइम दें. हम इग्नोर करते हैं, एक रटा रटा है, फॉर्मेट है, उसको डाल दिया, भेज दिया. मेरे ख्याल में CV के ऊपर भी एक सेशन है. Amira, I understand that's you are taking care of that. फिर हमारे पार्टनर्स भी बैठे हैं, HR वाले भी बैठे हैं. They'll be sharing their thoughts and their insight into. So it's a good opportunity for you all to learn and understand. Few advices. एक तो ये बड़ी छोटी फर्म जो होती है ना, ये मैं काफी सुनता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता यार. मेरे ख्याल में हर फर्म आपको अपॉर्चुनिटी देती है, एक्सपोजर देती है. ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, दैट डिपेंड, उस पर काफी डिपेंड करता है. यही बात. पहले भी आ रही थी आवाज, ठीक है. सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने वो 3.5 साल सिर्फ टाइम पास करना है या सीखना? अगर आप सीख लोगे तो इट डजंट मैटर आपका फर्म कौन सी फर्म थी, छोटी थी, बड़ी थी, आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना इनिशिएटिव है टू लर्न. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उन 3.5 साल को कैसे यूटिलाइज करना. सेकेंड इज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, योर कोलीग्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे प्रोफेशन में एटलीस्ट जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है फॉर सीनियर्स, ये है, शुरू से है, आज तक है, और मेरा ख्याल में इसको ऐसे ही रहना चाहिए. In the end, मेरा ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इंशाल्लाह all of you will be members of this institute after qualifying, as members, as chartered accountants, आपके words की एक value है. Understand that. People do rely on your advice, your opinion. You have responsibility towards your client, your staff, your colleagues, your fellow members, your society, and your country as well. So that's very important. हमारे 3, मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक, integrity, honesty, and trust. These are 3 important pillars जिसके ऊपर हमें compromise नहीं करना. अच्छा, इस पे हमें compromise नहीं करना है. These are very important. रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन इन वैल्यूज के ऊपर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. कोई ये बात में ये नहीं कहता कि XYZ ने ये किया, वो ये कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे करते हैं. So, बड़ी मेहनत से हमारे इस प्रोफेशन की रेपुटेशन हमारी सीनियर्स ने बनाई है. नाउ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस इट. सो ये कुछ एडवाइसेस थी, इनको सुन लें, अच्छी बात है, अमल कर लें. मेरा ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन इन योर लाइफ कि अब आप पढ़ाई से निकल के टोटली प्रोफेशनल लाइफ में जाए. आपने यहाँ पढ़ना भी है, पेपर भी पास करने, काम भी सीखना है, और इंशाल्लाह आगे आपने मेंबर बन के फिर आपकी रिस्पांसिबिलिटी फर्दर एनहांस हो जाएगी. So with these few words, I would again hoping that you learn this activity contributes towards your professional growth in achieving your professional goals as well. I welcome you all again and hand back the mic to you. Thank you very much. Thank you so much, sir. That was indeed a very realistic side of articles. Now, dear students, what is the most important step while applying for any sort of interview or any organization? That is your CV. When you're not there, your CV will do the talking.
To shed light on the topic, I would like to invite on stage Ms. Abira Ali, Assistant Director, Talent Team EY, with a proven track record of transforming traditional HR to strategic business partner. She has 13 years of work experience of leading telecom, IT tech, financial audit, and human resource consultancy firm. Please welcome Ms. Abira. एक मिनट ये माइक पैकेजेस कर रहे हैं Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes. So this is Abira Ali. I am Assistant Director HR at EY Force. I have like 13 years of work experience. I have studied from Kinnaird College, LUMS, Harvard Business School, University of Minnesota, and recently I did my strategic HR. Maybe I need to turn it off. This is fine. So I recently completed my strategic HR specialization from Carnegie University. I am associated with this profession out of passion. So I really enjoy my job, and whatever I do, it makes a lot of difference to myself. And here I am today, just to make a difference in your life through this presentation. So as the sir suggested, I'm a big fan of Farooq sir. I take a lot of pride of working with him. So as he has mentioned, just be yourself. Whenever you are talking about yourself, you need to know your values. As he mentioned, honesty, integrity, and what was the third one? Anyone? Trust. Have ever, by any chances, have any of you studied Speed of Trust? It's Stephen R. Covey's book. I would recommend you do study 2-3 books. They would help you a lot in your career, in your conversations. So one, a world-renowned book, which is known as the Corporate Bible, it's 7 Habits of Successful People. How many of you have read that book? Study books. And then Stephen R. Covey, after writing the 7 Habits, he said, leave all habits aside and start working on trust building. That's one important thing. And that's what you communicate through your CVs. Trust me. So you need to be honest about your strengths, about your education, about your experience. What do we mean by paid and unpaid? Anyone? What is paid experience and what is unpaid experience? Yeah, very right. Then there are certain opportunities like unpaid internship. So whether it was paid or not paid, you're supposed to mention it on your resume. Skills and competences, accomplishments, extracurricular. Take an inventory of your attributes, know who you are and for which organization and position you would like to offer. When I joined in, there was this kind person, I don't know, pardon me, your name, but he was asking everyone, did you apply for the jobs? And there were many who had applied for jobs. And there were many who had even applied for 15 plus organizations. So, and then there were hands who have received the interview calls. Did you ever try to figure out why someone is receiving the call and someone don't know even receive a call? How come? Is there anything that distinguishes one person, one candidate from the other one? Even if before seeing you, how can we make decision about you shortlisting? Any thoughts? I would like to listen from you, please. Through CV, of course. I don't know you in person. There are just profiles in front of us. We are the people who are in HR, who are managing recruitment, who are doing shortlisting. And there are no chances that we are relative to each other. Then how come certain CVs are shortlisted and certain don't? And sometimes when I call in the candidates, then I see there is a very clear difference, conflict among the profile and the candidate. And it leaves us very disappointed. It is because of this conflict of trust. You are not honest to yourself. So I'm not saying that it happens with everyone, but there are a few cases. So as with every profession, it is with chartered accountancy, it is with HR, whatever credentials you have, you need to be honest about them. Don't shy off, telling us about your weaknesses.
What kind of weaknesses, by the way, one person could have? Have you ever wondered about that? What kind of weaknesses we mean when we talk about the professional or corporate jobs? अगर मुझे ड्राइविंग अच्छी नहीं आती तो उसका क्या मतलब है कि मैं एचआर की अच्छी नहीं हो सकती लीड? मुझे नहीं आती, बाय द वे. आई एम द वन लेडी हु इज नोटोरियस फॉर बैड ड्राइविंग. लेकिन डज इट हैम्पर माय जॉब परफॉर्मेंस? आई कैन आउटसोर्स द जॉब लाइक आई डिड. सो ऐसी कौन सी वीकनेस है जो विच इज रेलिवेंट एंड यू नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट? एनी थॉट्स? Yes, yes, it is area of improvement. So try to leave the weakness word aside. It is kind of a negative word. Let's talk about areas of improvement. Everyone has areas of improvement. It could be for some people, it could be your communication. Do you feel that communication has a strength? Yes or no? Can we raise hand? How many of you think that communication has to be a strength? Yes, so we need to work on it. Everyone from the day first. How about your body language? How about your mannerism, your professionalism? Do you believe that your communication, your message, it gets reach out to the recruiters, to HR even before you speak a single word? Yes? So does it take any effort to be presentable? Does it take any effort? Yes. So can't we make that effort when we apply for an interview? So I tell you, I see here many candidates. Last year I was here. They were properly dressed up. They were so tuned and they were so into learning that they made an effort to present, to groom, to shine for this event. I would request all of you, whenever you are going for some professional activity like this one, whenever you are attending some corporate event, try to, speak a strong language through your attire, through your gestures, through your eye contact, through your communication. Whatever mode of communication you are using, it could be whatever mode of communication. So it could be your non-verbal. Non-verbal होती है communication? कैसे हो सकती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि some people are not being attentive to me even if not speaking a word. Is it possible? कैसे non-verbal communication हो सकती है? Yes. Yes. So in CV, how can you communicate that to me? You are not there. How can you communicate that message to me? Is there any way out for you? Through words. Very good. Any other thoughts? Very good. Professional picture. It communicates your message. और क्या हो सकता है? Yes, very good. So already you are aware of that. When he was asking about how many of you applied, so I thought that you are already aware of what is resume, what is CV, what is cover letter. We need to go dive and drill down further for you to say. So your professional picture, it speaks for you even in your absence. So try to have a professional picture there. Some school of thought say that professional picture shouldn't be there, but I don't believe in creating a mystery. All of you are young, professional, and the beautiful young souls. Why not, you give your pictures there so that it would be easy for us to figure out. And we would love to see you in person as well. Okay? Next time, whenever you are applying, do share your picture. Just give 1 minute to the slide. So when did you apply for the last job? How many of you have applied for the interview earlier? And how soon? You have applied? And can you give me some idea? When did you apply for that? CAF qualification. So did you ask for any critic, any person? How did you prepare that resume for yourself? Mhm. Brilliant. And then you received interview call?
That's one. So it works. Now you have some, credentials as well. It works. So whenever you prepare a resume, don't rely solely on yourself because you are a newcomer, you are a learner. You need some expert to guide you on that matter. So please always get it reviewed from some senior. And there are many people on LinkedIn. So you may write down this Nady name. And there are many other. You just search the resume editor, resume writers, and you will get a list. There are free samples available, which I'll show you shortly. So which information has to be there in resume? Very good. Anyone else from this side? Very good. Very good. How about your credentials, personal credentials, your name, your location, your email? It has to be there. What kind of email? आपके ईमेल भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज कम्युनिकेट करता है जो कि मैं आपको आई वुड लव टू डिस्कस इट हियर. किस तरह की ईमेल होनी चाहिए? आपकी कैसी ईमेल है? कोई इंटरेस्टिंग सी है, कैची सी, जिससे पता चले यू आर यूनिक? It is just the beginning of the session. I need big smiles, twinkling eyes, and interactive souls talking to me. So what kind of email addresses you have for yourself? For example, you gentlemen, जिन्होंने गुची का पहना हुआ है. Very good. Fahad? Fahad Tare. Anyone else? ये कोई interesting नहीं लगा मुझे. So what do you think about that email? Thank you so much for giving words to my thought. This is what I wanted to say. And pardon me, Fahad, I was just trying to create a pun here. So आपकी जो email है ना, it has to be very, very professional. मेरे पास आती है पंजाबी मुंडा. लाहौर के होते हैं ना? या फिर होगा कि एक आया था पता नहीं क्या, बहादुर गुज्जर, something like that. पापा की परी @hotmail.com. So these sweet Shahzeb. So these kind of email IDs, when we look at resume, so we are human being, we get biased as well. What kind of a person he would be if he's into these? So you may keep these email IDs for yourself as a memory, but whenever you're writing down on a resume, always try like Fahad Yusuf, your birthday, Fahad.Yusuf, anything that matches with your birthday or with anything you would like to communicate, because every word which is written on resume, it conveys a message about yourself. So be very, very careful about the message what you are trying to convey when you are not there. It is just like your visiting card. So when we give our visiting card, our title is there, my office address would be there, my number would be there, and people would get to know who is Abira. Similarly, if you are applying for a job, so anyone who is looking at your resume, he should be familiar that who is Fahad, true self of Fahad. Okay. Then these are certain skill patterns which are available on a resume. So I'm sure when you have applied for the interviews for the jobs, try to figure out all these parameters, all these characteristics, and raise your hand if these were there in your resume. सबके रेज्यूमे में था सब कुछ, तो कितना बड़ा था फिर रेज्यूमे? 1 page. So 1 page is ideal at your career level because you are just entering into the corporate sector. So 1 page is good enough, and you may even skip 1 or 2 things depending upon your specialty. So if someone has done the certification, additional certification, do mention it there. If you have additional skill like AI or blockchain, digital, anything which you have done other than your resume, other than your academic, do mention it there. Focus on skill. Action words क्या होते हैं? जरा पढ़िएगा इसको, फिर हम बात करते हैं. Use action words to define the responsibility of job-related experience. Easy to read and understand. Powerful and free of gimmicks. 1 page or at most 2 page long. 2 page long is for those who have certain experience with them. Otherwise, for a young grad,
who is just entering, 1 page is good enough. So action words कैसे हो सकते हैं आप लोगों के resume में जब आपने बनाया और सब characteristics थी, तो what kind of action words होते हैं? Any thoughts? Accomplished, ठीक है, आप? Statements, we can say that we filed statements or we more associated with this. Yes, yes. Quantify the results. Try to, you are chartered accountants, you are into numbers, you are crisp at numbers. Try to quantify it. For example, I did this assignment within 3 months time and I scored like gold rating. So try to focus on these action items, action verbs, which would help you and which would help the reviewer like myself to understand who you are. Okay. It could be accomplished, it could be seasoned professional. अभी आप लोग बहुत छोटे career level पे हो, junior हो, so you are learning, तो भी अपने लिए accomplished और seasoned level का मत use कीजिएगा, क्योंकि हम भी नहीं अभी use करते, कोई भी नहीं करता, ये गुरुज के लिए होता है, जैसे फारूक साहब बैठे हैं या ये बैठे हैं हमारे सामने so उनके लिए समझ आता है, otherwise it would be like an overstatement about yourself. So we discuss in the very beginning, we'll be honest, we'll be truthful. So this is the first step of being honest. Don't give those action words to yourself which you cannot, which you are unable to justify during the interview. हम जितना resume पढ़ेंगे और अगर उसमें जितनी ज्यादा बातें लिखी होंगी, हम उतना ही सख्त interview भी करेंगे फिर. ठीक है, तो अपने सिर्फ उतना बताइए जिसको आप justify कर सकें. तो अगर आपने कोई assignment in reality की थी, उसमें आपकी ratings अच्छी थी, उसमें आपको अच्छे feedbacks मिले थे, then it is an ideal thing to put on your resume. But if you just were there and maybe doing some data punching and there was someone else, a senior, driving that assignment, perhaps it is not a good idea to put it into the resume, because there would be a technical assessment, there would be a personality assessment, so there would be HR and people from the chartered accountancy field who are going to evaluate you. All right. Language has to be correct. This is one of you have already mentioned. Spelling has to be checked. Has to be formal style. Formal style क्या हो सकता है और informal क्या हो सकता है? Colors. Justified is formal. Very good. Yes. Font. Bullets. Bullets में आप अपनी जो achievements हैं उसको बताइए. It is formal. और justify कीजिए. This is formal. रंग बिरंगे font use करना, is it a good idea? रंग बिरंगे font colors ले लें, styles ले लें, variety आएगी, पता चलेगा आप बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान हैं. Is it a good idea? No, it is not. So it has to be 100% truthful. We, when we are into the interview, what we actually try to figure out, your profile is reconciling with the resume or not. Your personality is reconciling what you have mentioned or not. So if you would say that I have a good communication skill, or apne areas of improvement mein bataएं कि I am trying to improve on it, we'll be more than happy to meet you. But if you would say that I am a perfectionist and I am, my spoken skill is 100%, I rate my Excel background 100%, my written communication is 100%, my spoken is 100%, then maybe you are not on the right planet, gentlemen. No one of us is perfect. We need to be honest about it. तो अपनी जो rating कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे resumes में देखा है, यहाँ पे left पे आजकल rating होती है. It is a standard format used by many resume writers. So if you give 100% to all the characteristics, all the attributes, it is a clear indication that you are not being honest. Contains no appropriate or personal information produced on a computer, data presented in chronological order. अच्छा, last में ये जो order की बात हो रही है, what is that? There are many resume types. Very good, very good. Start with the recent one. So for example, if you did your CAF with FTS 32, let's say, and then now you are associated with the firm ABC, and then in past you have done internship with, let's say, Nestle. So in a chronological order, it would be first in
recent जो आपका order होगा वो सबसे top पे आ जाएगा. तो पहले अगर आप इस वक्त associated हैं एक firm के साथ, maybe एक internship के लिए, it has to be there. I'll show you. Let me go to that slide. We have studied it already. Fonts की बात है, इसको देख लीजिए. This is good for you to know. These are certain sample resumes. So yesterday when I was working on this presentation, I downloaded it from the net. So these are available. You can download it free. Just write down standard resumes and you can have a look of these resumes. And then you need to figure out, fill it out with your relevant details. So these are different formats. There are many others, but this is one page. It has all the characteristics, your skills, your experience, education, certification, languages, contact, hobbies, and same is the case with other resumes. So this is considered as complete in your case. But if it is some professional resume with someone like 10 plus years of experience, then might be they need more space. So anyone who has idea about cover letter? What is a cover letter? Have you ever seen a job advert that requires a CV, resume, or cover letter? By any chance, anyone get to see that advert? No? So perhaps maybe in your case, we don't ask for a cover letter, but it is good for you to know. It is kind of a letter, as the word suggests. So any information which you cannot mention in your resume, here you get additional opportunity to share it with the recruiter. So for example, in case you are writing a letter to me, dear HR manager, this is Fahad. I came to know about this job through this means, and I am interested in that. So I would request you to have a look on my enclosed resume and please provide me an opportunity to see you in person. So this is thus the gist of what cover letter look like. I'll show you the formats. So it says, give enough information to the interest of reader, don't overwhelm, research the company. Do you research the company when you apply for an interview for a job? How many yes are there? Raise your hand. Do apply, do search. Because whenever you go there and we ask you, how do you know about, what do you know about EY and how did you come to know about this job? There are many persons who tell us that we don't know anything about you, and it is very easy to search for us. For any employer, if you have interest, a true passion for that job. So always make sure take out time. And it is very easy to research and know your employer even before joining the organization. Are there any means available? Yeah. Very good. Very good. So there are people, if I tell them that you are scheduled for an interview, let's say at our firm, then they ask, can you please tell me with whom my interview is scheduled so that I may get to know them through their LinkedIn profiles and may work on my assessment accordingly. That kind of candidates we have, and we like to answer and we like to work with them because they have the exploration, they have the passion. And if they have the passion to learning and passion to grow, then this kind of a candidate we are looking forward. Now I'll quickly jump to the resume format, cover letter format. It states the same thing, your address, date, name, company. यहाँ पे resume से difference क्या है? यहाँ पे the company whether you are applying, for which you are applying, has to be there. So it gives a personalized touch. It makes us feel that you took the effort to apply for this job. Otherwise, sometimes हमारे पास resumes आते हैं, पता ही उसका जो subject होता है उसको आप सब save कर रहे होते हैं. Please save it with your name. Otherwise होता है copy ABC save हुआ हुआ है. Leaves a very bad impression. So always save your resume with your name, like Maha Ali resume or Maha Ali cover letter. So it is very easy for us to sort it out, to forward it for the next level of interview. So these are the small signal messages which let us know how passionate or how prepared you are for this job and how much interested you are in getting a job with us. What do you want? How you know about the organization? Mention employer of your resume. So this is paragraph 1.
Paragraph 2, concise overview of work history and skills that will help you perform the job. And the last paragraph, state confidence in your ability, give information on how you can be contacted. So we do have numbers, we do have emails, but when it is a time to contact the candidate, number doesn't respond. We don't receive responses from the emails. And there are many instances when we schedule like 7 to 8 candidates per day. And how many do show up? Half of them. And we are already aware of that. That is the reason we select only 2-hour slot for the interviews. Sometimes candidate doesn't reach in time, and sometimes they get the genuine issue. In that case, if you got genuine problem, please do inform us beforehand, because we got panel aligned for you who is waiting there for you, and then you don't show up and don't call us, then next time we won't call you. Because this is the kind of careless attitude if you show, then it makes us feel troubled. So let's have a look on this you have already answered. So this is how a cover letter looks like. It is actually a letter to the employer with date, with their name, with your message. How did you get to know about the company? Why do you think that you are fit for this role? This kind of luxury, this kind of a liberty of communication, resume don't give that to you. So even if the employer don't ask for the resume or the cover letter, you do share it. It leaves a good impression on us, because we won't say कि इसने cover letter भी दे दिया तो उसको नहीं बुलाना. Cover letter देंगे, it would let us know what kind of a person you are. So it is always a good idea to have a cover letter with you. So with that, I would like to give control back to you, lady. So over to you, and thank you so much for being a wonderful audience. Thank you. Thank you so much, Veera, for such an insightful session. After the discussion on CV, what's most important during an induction process? It's the interview. What firms are looking for in an interview? To shed light on the topic, we have a panel discussion. For that, I would like to invite upon stage Mehreen Shahid as moderator. She qualified CAF in autumn 2021 and is recently inducted in AF Ferguson. Over to you, Mehreen. Assalamu alaikum. First of all, welcome everyone to this discussion, and I hope that you will go home learning something from this. I would like to share the purpose of this discussion that is arranged by ICAP today. It is to clear out multiple confusions in your minds and clear out queries when you're applying for induction, and to simplify this whole process, because many students in this time period complained that this was very stressful for them and that they were going through a very anxious time and everything. For this panel discussion, we have 4 panelists, and I would like to call them up. First is Ms. Abira Ali, who is Assistant Director at EY and has an experience of 13 years. Our next panelist is Ms. Umaima Iqbal, who is working at Crow Hussain Chaudhary and is the Organizational Development Manager. Next, I would like to call Ms. Hiba Mubashir, who is working with KPMG for more than 8 years and is a manager at People and Change. Our next panelist is Ms. Saliha Hassan, Manager HR at UHY Hassan Naeem & Co. Saliha has more than 10 years of experience in business management, research, and HR fields. Start with the questions. The first question is for Ms. Saliha. What is the first thing an interviewer notices in a CAF qualified student during the interview? Everyone, Miss Abiha ने अभी अपनी presentation में भी mention किया था कि CV में आपके resume में जो like
फर्स्ट थिंग जो आपकी होती है, आई एम सॉरी, कि जब इंटरव्यू आता है इंटरव्यू की, जी ओके फाइन, फर्स्ट इज योर अराइवल टाइम. yes If you are like reaching there before time, that is very much impressive. And it's not the like कि एक ही चीज आप में जो है वो notice होती है, your arrival time, then your full attire, that is also noticeable. After that, how you are corresponding with the interviewers, like how you are introducing yourself, that is most like a noticeable thing, that what kind of things you are mentioning about you. These are the like few things. Thank you, Miss. The next question is from Miss Abira, and the question is: this schooling, especially when there are students from A levels background and metric background, people think that it creates a bias in the mind of an interview even before the interviews. When they're looking at the CVs, it creates a bias that A levels background people will perform better and the metric people will not. Is it true? So when we look at the resume and then there's a background about A levels and then the matriculation background. So we get to know one message that the person who has studied at A levels, he would be good in English communication and that's it. And if someone is a matriculate and might be he has studied at some, government institute, then we need to adopt our language accordingly. So we just be careful about our language, about our communication, and rest is all good. So if someone enters and I get to know that he's A level, then might be I'll be talking throughout in English. But if someone is a matriculate background, we start off as English because it's a formal communication mode. But if we find that some candidate is not suitable or not fluent, then we switch the language. So bias is not there. It is an information for us to choose a medium of communication as per the candidate profile. That's it. Thank you, ma'am. And the next question is for Ms. Umaima. How important are the extracurricular activities in a resume and the interview process? Assalamu alaikum, everyone. Well, they are very important, I would like to say. Generally, studies say that extracurricular activities tend to generate better organizational and social skills among students. देखिए, अगर आप किसी activity में part लेते throughout your academic career, you would learn to behave in a particular situation. You would learn कि आपने एक conflict को resolve कैसे करना है. You would learn how you need to behave in a pressured situation. अब आप घर बैठे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, and you actually go out and take part in activities, वो learning, वो confidence level, वो जो चीजें आप develop करोगे, वो उसकी बात ही अलग होगी. So definitely बड़े important, ये बहुत important चीज है. Plus एक important aspect है इसका, it tends to generate ethical skills in you. अगर आप for example एक competition में part लेते हो, so during the heat of the competition, you would learn that despite everything, you need to remain ethical. And that is something very important, even in your professional life, right? So, एक ethical skills का भी एक aspect है, जिससे generate होता है. Secondly, you tend to become more emotionally intelligent. Are you familiar with the concept of emotionally intelligent? Anyone? See? तो ये भी चीज बड़ी important है. So, certainly, I would say वो बच्चे, because it tells the interview, you are dynamic, you're versatile. Despite your studies, you were taking part in multiple things. वो चीज reflect होगी आपकी overall personality. So definitely they're very important. That's it. Thank you, ma'am. And the next question is for Ms. Heba. How do you expect a candidate to be prepared for an HR interview? Right. So you need to know कि जब HR आपको interview के लिए बुला रहा है, right? What do they expect? They want to get an idea of you as a person. ठीक है ना, हमें पता है कि आप एक स्टूडेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट वी वांट टू सी कि आप लोग सीरियस कितने हैं, आप में प्रोफेशनलिज्म कितना है, आप लोग कितने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स अपने साथ लेके आ रहे हैं, और आप लोग फर्म में कैसे फिट इन होते हैं. ठीक है, बी प्रिपेयर्ड. बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो कि आई हैव सीन के कैंडिडेट्स ने उनके ऊपर नहीं तैयारी की होती. सो फॉर एग्जांपल, रीच आउट टू योर सीनियर्स. अगर आपको कॉल आ रही है, रीच आउट के, अच्छा कौन इंटरव्यू ले रहा है, KPMG में लेट से कौन इंटरव्यू ले रहा है, अच्छा जब आपका इंटरव्यू हुआ था उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे. ठीक है, गूगल कर दे. एक बड़ा इंपॉर्टेंट या कॉमन क्वेश्चन होता है जी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ.
अब CV मेरे सामने पड़ा है, but you will start, my name is Hiba Mubashir, I've done this and this, right? I don't need to know that because वो सारा कुछ आपकी application से, आपकी CV से मेरे पास आ गया है. So just search कि ये question है जो कि मुझसे पूछा जा सकता है, तो मैं पहले से 1-2 दिन prepare करके, अगर interview call आई है, even जब application submit करवा दिए ना, start preparing for the interview. That shows your seriousness कि आपने किन चीजों की preparation करके रखी हुई है. Be sure. एक और बड़ा common question है कि why have you chosen this profession? 50% आपके पास आंसर ही नहीं होता कि आप लोग इसमें क्यों आना चाह रहे हैं. That shows non-seriousness, right? Questions बहुत technical HR के नहीं होते, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा senior से contact कर लें, इर्द-गिर्द जो आपके इंडस्ट्री में लोग हैं, get in touch with them, थोड़ा सा Google कर लें और थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें कि ये क्वेश्चन अगर आया तो मैंने इसका अपने बारे में क्या आंसर देना है. HR इवैल्यूएशन आपके बारे में होती है, टेक्निकल इंटरव्यू तो है नहीं ना, आपकी टेक्निकल इवैल्यूएशन तो नहीं होती है. या फॉर एग्जांपल एक और बड़ा कॉमन है कि जैसे अभी आपका जो CV राइटिंग पे हो रहा था कि जी सर्च अबाउट द फर्म, आप लोग बहुत एक कॉमन आंसर आता है, इफ आई आस्क व्हाई KPMG, तो आप लोग कहते हैं कि जी आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं. अगर मैं कहूँ कि मुझे कि 3 क्लाइंट्स का नाम बता दें तो 2 क्लाइंट से ज्यादा का तीसरे का क्लाइंट का नाम नहीं आ रहा होता. ठीक है, तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि कितनी प्रिपरेशन की हुई है, उससे आपका प्रोफेशनलिज्म शो हो रहा होता है, उससे आपकी सीरियसनेस शो हो रही होती है. थोड़ा कॉन्फिडेंस पे आप लोग थोड़ा सा वर्क करें. अभी जैसे अबीरा ने कहा कि जो लैंग्वेज की बात हो रही थी, अगर आपको लग रहा है कि फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोली जा रही है ना, स्विच टू उर्दू, राइट? इंस्टेड कि आप नर्वस होके बारी बारी स्टक होके इंग्लिश बोल रहे, इट्स बेटर कि आप कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंट होके उर्दू बोल लें, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना शो करें. सो दीज आर द थिंग्स जो कि बेसिक हैं, बट दे मैटर अ लॉट इन द HR. थैंक यू. Thank you, ma'am. My next question is from Ms. Saleha. In firms where applications are received by hand and by emails, which method is preferred? Different firms के different like receiving patterns होते हैं. To search before like applying. If they are like you can ask by calling them. अगर वो by hand receive कर रहे हैं, then drop your CV in person. But if they are like अगर कोई portal उनका है, अब तो different social media पे भी जो है वो different post हुई भी होती हैं हर firms की, कि they have like portal of such kind of posting your CVs. Or if they are providing their email addresses, do email, but please उसको check भी करते रहा करें, क्योंकि if you are being shortlisted, then you will be contacted like when, how do you apply? If you have emailed them, then obviously you will get an email for shortlisting. So it depends कि do ask the firm how they are receiving the CVs. So it depends on the firms to firm. Thank you, ma'am. Please, everyone, show some appreciation. My next question is from Ms. Abira. Do gold medals and certificate of merits increase the chance of induction? Because it is a very big thing in CAF students that, oh, you got a gold medal, you're getting in the big 4. Yes, of course, not even in the CAF, it applies for every field. So if you are a gold medalist, your position definitely give priority, and instead of giving priority, we do give you certain additional on top of stipend set for you. For example, in HighCap, there's certain stipend. For an ordinary candidate, then there is an additional stipend of like 100 for the position holders. So in EY, our stipend rate is higher than the stipend rate set by the ICAP. And additionally, we give you that allowance, which is accompanied with your certification, with your gold medalist status. So definitely it speaks that you had been very, very, passionate about your studies. And if you are the person, then we would love to hire you. So for sure. Thank you, ma'am. The next question is for Ms. Saleha. What is the purpose of initial and the final interviews? Well, initial interviews is like your HR interview, as Hiba mentioned it. उसमें सिर्फ आपकी जो आपने CV में अपना mention किया हुआ होता है, वो HR जो है उसको like
match कर रहा होता है कि does it match with your personality what you have mentioned in your resume. So initial interviews भी like ये भी firm to firm ही depend करता है. In some firms there are like 3 interviews. In some firms there are only 2 and किसी firms में जो है वो like telephonically आपसे like first interview हो जाता है and then they call you for final interview. So first जो initial होता है उसमें please be what you are as everyone has mentioned it already. So आप अपना उसमें और एक तो ये है कि प्लीज अगर आप मेंशन कर रहे हैं कोई सेल नंबर तो प्लीज उसको रिस्पॉन्ड भी करें अगर आपको कोई कॉल जा रही है और अगर फर्स्ट इंटरव्यू के लिए आपको इन पर्सन फिजिकली बुलाया जा रहा है तो प्लीज अपने टाइम से पहले यू शुड बी देयर और उसमें सिर्फ वट एवर यू हैव रिटन ऑन योर रेज्यूमे वो सिर्फ एक किस्म की वेरिफिकेशन काइंड ऑफ उस तरह चल रही होती है कि व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड इन योर रेज्यूमे और फाइनल इंटरव्यूज लाइक आप शॉर्टलिस्ट ही फाइनल इंटरव्यू के लिए तब होंगे जब यू हैव प्रेजेंटेड योरसेल्फ very much like properly in the first interview. Then maybe in some interview final interviews like just aapki se for like just to see ki, are you capable for this like articleship or not in the firm, how are you like more compatible, more competent than the other candidates. उसमें सिर्फ comparison हो रहा होता है second interview या final interview में. First में आप prove yourself कि you deserve to be shortlisted for final interview. So these are like I can say कि these are the some differences in first and final interviews. Thank you so much, ma'am. Most of the firms do have multiple interviews, at least 2. So Ms. Umema, please tell us that what are the aspects that are considered while shortlisting for the second interview after the first interview? Okay, first thing you need to understand is कि जब आपको interview के लिए बुला लिया गया तो initial shortlisting तो आपकी हो गई. Now this is going to be your first interaction in person. So you have to really ensure कि first आप जब जाओगे enter होते हो room में तो आप सबसे पहले तो आपकी dressing नजर आती है. So you should invest time and your resources, energy in dressing well. You dress professionally, you should even do your hair well, you should tidy up your shoes also. ये सब चीजें include करती हैं. Then you come and sit, तो आपका definitely how you behave throughout the interview, like how confident you are, it matters. Then जब आपसे कोई question किया जाता है तो how well you respond to it, आपकी comprehension skills कैसी हैं, and how much time you take to respond to it. आपका response time, आपकी clarity of thoughts while you're answering the question, वो क्या है, ये सब चीजें matter कर रही होती हैं. And then as पहले भी जो question ये हुआ extra curricular activities जो है वो matter करती है कि नहीं. Definitely if you have taken part in certain activities तो वो बहुत ज़्यादा आपको एक edge देती हैं, as I told earlier, क्योंकि वो आपकी versatility show करती हैं. इसके अलावा एक चीज़ होती है कि often students they are very keen to please the interviewers, they often lie. So it is very easy for the interviewer to gauge that whether you are lying on a particular thing or not. So I would strictly advise you do not do that. इसने भी बात की that you should be strictly आप बड़े honest रहें. Whatever you have written in your CV वो आप उसको अगर justify कर सकते हो, prove कर सकते हो तो तभी लिखो. Otherwise it's going to lead to a very bad impression and it's not going to do you any good. So आप इस चीज को avoid करें. इसके अलावा certain चीजें होती हैं जैसे बच्चों से भी हम ये देखते हैं कि आपके end पे कोई limitations हैं. Like जैसे the way this profession works, ये clients होते हैं, they are dispersed throughout the country. तो अब एक बच्चों की तरफ से भी हम ये question करते हैं कि okay, do you have any limitation? Whether how easy it is going to be for you to move to different parts of the country. आप रह लोगे, conditions ऐसी होंगी, खाने का ऐसा होगा, सोना ऐसा होगा, तो ये चीजें हम gauge करते हैं कि ये बच्चा इस तरह की conditions में वो कर पाएगा, cope up कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा. इसके अलावा if you have any other limitations, so for example you are time bound कि मैं 6 बजे से या 5 बजे से आगे मैं I cannot sit, I cannot do late nights. There are certain times when you have to do that. तो again ये चीज आपकी होती है. I went through a CV recently, उसमें एक student ने ये लिखा हुआ था I want to be an audit intern in a prestigious firm. So when you wrote you want to be an audit intern, you limited yourself to only the audit department. अब एक firm है जिसके अंदर 6 और departments हैं और let's say audit की उनकी vacancies पूरी हो गई तो you just lessen your chances
to get into the firm, right? So अपने आप को इस तरह limit मत करें कोई इस तरह की चीज लिख कर, right? Secondly, we also try to gauge के आपकी motivation towards a profession, आपका potential to qualify वो कितना है. अब जो आपकी मोटिवेशन थी इस प्रोफेशन में आने की, वो ये थी कि आपके नंबर कम थे एफएससी में, या वो ये थी कि you were actually passionate about the profession, you wanted to do wonders being part of it, right? So there are certain things we are trying to gauge. And if you and a important thing I would like to add is that we do not recruit grades, we recruit a personality. So all the things matter. It might be so. We have recently recruited a 7 attempter, 8 attempter. But when we interviewed that person, we found some other things. A complete package हमें नजर आया, So work on all the things. I would again emphasize on this. Whenever you get an opportunity, in fact, as students, you should seek opportunities to take part into multiple activities where you can rise and shine. You must take part. वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होंगी. एंड जब भी आप जिंदगी में कभी भी इनफैक्ट एक ग्रुप के अंदर होगे तो आप अलग से नजर आओगे. अगर आप वर्सेटाइल होगे, वो चीज अलग से हमेशा रिफ्लेक्ट होगी आपकी पर्सनालिटी. थैंक यू सो मच मैम. Miss Abira, you already talked about weaknesses and strengths, but I would like you to share some more light on the weakness part. Because even I was asked for 8 weaknesses and 4 strengths in my interview, and I could not come up with 8, but maybe you can help us over here. 8 is asking for too much from a single person. Weakness, we should always admit that we do have weaknesses, but there are certain weaknesses which are relevant and there are certain which are not. So for example, as I mentioned during my presentation, that if I am not a good driver, it has nothing to do with my job performance. If I don't cook, it doesn't make a difference to the recruiter. But if I am not good at report writing, it does. So if it is your weakness and you have already realized that, so might be you can mention that I am not very good in a report writing. However, I am making an effort and I am attending classes and I am giving this much time to report writing so that I may be good at it. And with this activity, I am sure that I can improve on it. There could be other weaknesses you give me idea. What kind of other weaknesses you people have? Poor time management. Very good. What else? Procrastination. This is one of the worst weaknesses, and all of us, including myself, have that in ourselves. चीजों को delay करते रहो जब तक it is the 11th hour, and this is not a very good habit. And once I was very prone toward this procrastination, but now I have worked on it. So how can you work on it? If you are a candidate and you are admitting that this is your weakness, then you tell me, Fahad, how would you work on it? ठीक है, सही है. आपको पता है कि if we get distracted during any assignment, then how much does it take for us to focus again on that topic? Any idea? These phones, these calls, these doorbells, these are all type of distraction. So I was studying a research paper, and it mentioned it takes like 28 minutes for us to get back to the focus. So try to distract from and stay away from all these distractions. So whenever you are doing some job, turn off your phones. I know it is difficult. At least turn them on silent. At least stay in comfy zone, in a different, isolate yourself when you are working on. So if you are admitting that you have a weakness, then get ready with the answers as well. Because if you are admitting it in front of a HR manager or in front of a technical person, and who get to know that you are someone who is prone to procrastination, and if I figure out that you are not doing anything about it, so what do you think where it could lead you? It won't help you in the shortlisting. So do admit your weaknesses, but do work on that and tell them that I have certain this plan. So set SMART goals. Have you ever heard of SMART goals? Simple, measurable, achievable, time bound. So tell them that this is my area of improvement and this is my SMART goal. This is my timeline. Till then I will be good at it. I'm not good at it today, but I assure you I will be good at it.
If you are this kind of a person, then definitely sky is the limit. Thank you. Thank you so much, ma'am. This is the last question now for Ms. Hiba. It is a three-part question. In a resume, should a candidate write his or her complete address, attach a picture, and use a template, or create it on your own? There's no harm in writing the address. That depends. अगर तो आपने पहले application submit करवा दिए, so of course you have that information, right? लेकिन अगर आप कहीं पे अपना CV directly drop करें, at least write the area and the city, if not the complete address. Do attach a picture because resume is basically representing you, right? So जब आप CV submit करवा रहे हैं, I think it's better to attach a picture. टेम्पलेट की जहाँ तक बात है, ये मेरा ख्याल है अभी जो आपका सेशन था उसमें डिस्कस हुआ था, बट आई वुड लाइक टू री एम्फसाइज, टेम्पलेट तो जरूर कॉपी कर लें. अ बैडली मेड सीवी लीव्स अ रियली बैड इंप्रेशन, राइट? आप जब सीवी हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि आप लोग का सीवी एक पेज नहीं तो 2 पेजेस का होता है, एट ए ग्लांस पता चल जाता है कि सीवी में मेहनत की है कि नहीं की है. दैट डजंट लीव अ गुड इंप्रेशन अगर इट्स अ बैडली मेड सीवी. So search for proper professional templates. अच्छे templates जो हैं उनको search करें. template जरूर copy करें, content ना copy करें. and ये मैं बहुत ज़्यादा reiterate करूँ, this is something जो कि over time नहीं ठीक होता आप लोगों में, right? cover letter की अभी बात हो रही थी. once I had a cover letter जिसमें HR manager तो लिखा हुआ था, but नीचे company का नाम नहीं change किया हुआ था, right? So अगर अच्छा कवर लेटर है बट कंटेंट भी कॉपी कर लिया है तो अच्छे टेम्पलेट का कोई फायदा नहीं है. आप लोग ऑब्जेक्टिव्स कॉपी करते हैं, अगर इफ ऑब्जेक्टिव कम्स अक्रॉस व्हिच इज वेरी वेल रिटन, आस्क के आपने ऑब्जेक्टिव ये क्या सोच के लिखा है, तो आपको पता ही नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, बिकॉज टेम्पलेट के साथ वो भी कॉपी कर लिया होता है, किसी और का कर लिया होता है. ठीक है, तो सीवी की लुक प्रोफेशनल होनी चाहिए, बट वर्क ऑन दैट. हॉबीज लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग लिख रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड ना कि बुक रीडिंग अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो बुक भी बताओ. बड़ी इस तरह की माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं विच कैंडिडेट्स मेक. इंटरेस्ट लिखे होते हैं, स्किल्स लिखे होते हैं, यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दोज. वो सारी भी बड़ी डिटेल में डिस्कस हो गई हैं, बट क्योंकि सीवी की बात फिर से हो रही है तो आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट अगेन एंड अगेन कि टेम्पलेट पे फोकस करें. वो जो पूरा था प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट्स, जस्टिफाइड, जो भी अभी बात हो रही थी, that is important. That does leave a good or a bad impression on the interviewer. और अपने बारे में ज़्यादा लिखें और उस पर फोकस करेंगे. सीवी देख के अगर आपसे सीवी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो रहा है तो you're able to answer that, because this is something that keeps happening in every induction cycle. This keeps happening. जो CVs वाले mistakes होते हैं ना आप लोगों के, और जो CV के contents वाले mistakes होते हैं, ये you guys need to be aware कि जो अभी आप लोग सारे questions हैं कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं, प्रिपेयर कैसे होना है, फर्स्ट इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें असेस हो रही होती हैं. सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ दैट. Thank you so much. I have one more question, and if any one of you would like to answer, how do we mention if due to any special circumstances we miss an attempt, like in CAF, one of my friend's father died and she couldn't give the exams, and it increased her total number of attempts. But how does she have to mention it on the resume? इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली अटेम्प्ट्स डू मैटर, राइट? लेकिन अगर बाकी सारा प्रोफाइल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू में आता है. सो माय टेक ऑन इट वुड बी जस्ट टू बी ऑनेस्ट, एंड एक ऐसा सर्कमस्टांस है व्हिच इज अनअवॉइडेबल, राइट? जस्ट बी डायरेक्ट अबाउट इट and the interviewer will understand, of course, अगर genuine आपका reason है तो. So अभी cover letter की बात जिस तरह हो रही थी, आप उसमें भी mention कर सकते हैं कि like अभी आपकी इतनी attempts हैं, but एक attempt आपकी over किसी reason की वजह से इस तरह miss हो गई थी, या जिस तरह जो भी reason है. Otherwise अगर आप simple अपना CV submit करवा रहे हैं तो you can like
स्टैरिक उसको करके नीचे स्टैरिक उसको एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज स्टैरिक फॉर, कि आपकी अगर 6 अटेम्प्ट्स या 7 अटेम्प्ट्स हैं तो व्हाई 1 or 2 अटेम्प्ट्स आर लाइक extras, or why, what are the reasons. Thank you so much. If any one of you has any questions, please ask. He's already asking. सबीरा, Okay. मेरा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम आपको क्यों रखें, व्हाई वी हायर्ड यू, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा? So we expect to hear from you. If I am asking you, why should I hire you? So you tell me that what kind of a person you are, what kind of strong strengths do you have, and why you are suitable for the audit firm. So for example, if you are the person and you are telling me that I should hire you, then you should tell me that I have, I show complete commitment to my assignments. I am ready to take on the challenges, and most of the time in the audit firm, I try to offend the candidate sometimes intentionally by telling them that we have a late sitting culture. Are you ready with that? And it won't be on frequent basis. It would be on need to need basis. And there are certain candidates who say, no, we are not comfortable, and it would be very difficult for us to do beyond late sitting, even if it is the deadline submission. So we need to be realistic. We don't encourage late sitting. We don't like it. But then there are certain deadlines, certain contingent projects where you have to accommodate call of duty. And if your manager and if your partner, they are giving time to the assignment and they need you, then you have to be there. And trust me, at this point in time, during the article shift, there are very instances of late sittings because you are hired at associates level, which are very junior and which don't require. So if we ask such questions, tricky questions from you, then you need to be, accommodative of the fact that there would be certain chances. And then you should tell us that I am very good in communication, and this is the background. You may relate to certain past experience. So if your statements is backed by certain past experiences, credentials, then we would love to hire you. This is the kind of answer we expect. Still, we would like to hear from you, na? Because CV is there. There was one candidate. I asked him, tell me, like Umaima just mentioned, tell us about yourself. And the candidate said, it is already written on my resume. Tell me about yourself. Come on, man. I know it is written on your resume, and your time is as precious as mine, but we are here to have this conversation. I need to hear from you. So even if you have mentioned it, might be there is a possibility you got it written from someone else. And that is the reason we try to have it one-on-one conversation. That is why don't ever come up with these kind of answers that it is already written on your resume. And I would like to add on to this. Basically, अगर आपने for example ये लिखा हुआ है कि very good communication skills, resume में तो लिखा हुआ है. If you're giving you a chance to speak up, we are actually trying to gauge that whether you are good with your communication skills or not. So this, when you throw the ball in your court, we're actually trying to listen from you, that how well do you know yourself, how well do you explain yourself, and how well you know your strengths, and you actually know okay, how, and actually a question और होता है, how you can add value to our firm. Yes. Or how do you think you can contribute positively to our firm. तो ये भी इसके अंदर basically आपने अपनी strengths को ही इसी तरह बताना है कि वो we get convinced. ये again, this is again an art. People, आप लोगों को again I would like to advise है कि rehearse typical questions कि एक इंटरव्यू में कैसे questions किए जाते हैं, उनको rehearse करें. Invest time in this. जैसे मिस ने भी कहा कि गूगल आप देखें, सीनियर से पूछें, इसको इंटरव्यू को इतना कैजुअल ना लें, बिकॉज एक स्टैक है बच्चों का, सीवीज का, बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स आते हैं. यू हैव टू बी समवन अपने आप को अपने डिफरेंशिएट कराना है ना, कि हम आपको चूज करें. उसके लिए जरूरी यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. You have to make that extra effort. तो उसके लिए यही है कि you do your homework when you come to the firm. आप फर्म को जाने वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, how old they are, what is their history वगैरह वगैरह. तो ये बिल्कुल ब्लैंक होके ना आए. और एक again from firm to firm it would differ. And do your homework whenever you go for an interview. उसके लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करें उसके अंदर. Thank you so much, ma'am.
Assalamu alaikum. I am from Ferguson, Lahore. My question is related to CV, but it is not the core question which every candidate asks. That I want to ask about the selection method of CV. That the guidance which is normally we always listen from the guiders that we have to mention these types of skills and do's and don'ts on the CVs. Like Miss Abira Ali very well guided us about all the other things which we have to add on CV. But I want to ask about the selection method of CV, that in the respect of your manner, that if you receive CVs from candidates, and as there are a lot of people in this seminar, I want to say that के हमारे पास different psychologies के लोग होते हैं, different mind के लोग होते हैं, different ideologies के होते हैं, different mind of schools होते हैं, उनके school of thought होते हैं. तो CV की इम्पोर्टेंस तो यहाँ पे सबने जाहिर कर दी कि CV बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इंटरव्यू कॉल के लिए. लेकिन अगर किसी माइंड में या किसी बंदे के स्कूल ऑफ थॉट में ये है कि वो सिर्फ अपनी चीज़ों को सीधा सीधा लिख देता है एंड आप उसको अगर सेकंड करती हैं उसकी CV को, then what is the probability that you will call him or her for interview, or what is the probability that he will not be the same guy in कि वो अपनी CV में ये चीज़ें लिख रहा है और वो वैसा ही होगा या नहीं होगा. सिलेक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, राइट? एक जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ऑफ कोर्स आपका बैकग्राउंड है, आपका बैच नंबर कौन सा है, आपकी अटेम्प्ट्स, ये सारा कुछ है, ठीक है. एक तो एप्लीकेशन में वो चीज़ें सारी आ गई, प्लस जो कंटेंट की बात हो रही है, सो दो सीरीज हैं और स्किल्स में डिफरेंट है, इसीलिए आपको बारी बारी हम बता रहे हैं कि सीवी पे इन्वेस्ट करें ताकि सीवी रिफ्लेक्ट्स यू, ठीक है. एजुकेशनल पार्ट आपका हमें सीवी ने बता दिया या आपकी एप्लीकेशन ने बता दिया, बाकी उसके अलावा व्हाट्स मोर टू यू. I want to ask about the exceptions that sometimes we can say that hidden genius. If there are some mind of thought of a guy or a lady, he can be a genius, but लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी CV की behalf पर उसे अगर इंटरव्यू कॉल ना किया जाए, then what will be the consequences? उसको देखिए, इंटरव्यू कॉल ना किया जाने की जो आप लोगों के लेवल पे जो होती है ना, क्योंकि यूजुअली फॉर्म्स के बाद रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना वो बहुत टफ नहीं होता फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, राइट. अनलेस के सीवी में बिल्कुल ही इतनी वीक सीवी है, अनलेस chances are कि somewhere down the line you will get the call for the first interview at least. उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट्स आप बता रहे हैं ना, you get a chance to show them in your face to face interview. इंटरव्यू का पर्पस क्या है? To assess those things which cannot be reflected on the CV, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, आप लोगों ने फॉर्म्स ऑलमोस्ट सबकी फॉर्म्स आप लोगों ने फिल किए होंगे, ठीक है. उनका पर्पस क्या होता है? टू मीट द बेयर मिनिमम क्राइटेरिया, राइट. बेयर मिनिमम क्राइटेरिया में क्या होगा? आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो जाएगी, आपकी कास्ट की बैकग्राउंड हो जाएगी, आपके जो भी आपने किया हुआ है, आपकी परसेंटेजेस क्या रही हैं, आपके मार्क्स क्या रहे हैं, ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है. एप्लीकेशन में ये बेसिक चीजें पूरी हो गई. सीवी उसके बाद आपकी आ गई. सीवी में यू हैव द बेनिफिट कि आपने एडिशनल चीजें मेंशन कर दी, ठीक है. ऊपर आपने अबाउट मी अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिया, आपकी स्किल्स, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपकी हॉबीज नॉर्मल से हटके वो आपने मेंशन कर दी. बेयर मिनिमम आपने पूरा कर दिया, ठीक है. यू हैव द बेनिफिट कि आप लोग की बहुत सीनियर पोस्ट के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे ना, जिसकी लंबी सीवी होगी और उसका इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू ही बहुत टफ होगा. यू गाइज हैव दैट बेनिफिट, ठीक है. तो जब आपने वो पूरा कर दिया तो बेसिक फर्स्ट इंटरव्यू, HR इंटरव्यू का पर्पस ही ये होता है टू असेस द कैंडिडेट कि व्हाट ही हैज टू ऑफर अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स. तो वो सारी चीजें फिर आप अपने इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करते हैं. I hope that's clear. I'm sorry. Thank you so much, panelists. Sorry. My second question is from Abira Ali, that you are a director in EY. Is there any true कि EY CA के ट्रेनिंग्स को इंडक्ट नहीं करते?
So we recently hired a batch of like 30 plus CA trainees in our head office Karachi. So this is not true anymore. This is just नहीं ऐसा कुछ नहीं है. We recently inducted a batch. It is all because of the need and requirement. So now we have a good bunch of trainees already in chartered accountancy in EY, and we needed more in head office. So last week I talked to 35 young CAF qualified candidates, and they have been onboarded. So there is nothing substance about this rumor. Thank you. Thank you so much, ma'am. I think it's time for namaz break, and Fajr, please come back. Thank you everyone for such an insightful session. Please take your seats. Now, I would like to call upon stage President ICAP, Mr. Iftikhar Taj, for shield distribution. First shield is for Miss Abira Ali. Please come forward. Thank you so much, Abira. Umama Iqbal. Hiba Mubashir. Thank you so much. Saleha Hassan. Last but not the least, our moderator, Mehreen Shahid. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it's a 10-minute namaz break. We'll see you after namaz.
अच्छा ये हम्म। नहीं नहीं आप ऑन टाइम। इसके डायरेक्शन देखो जरा, किस तरफ करना है सर ने। लैपटॉप वहां पर है, आउट ऑफ रेंज तो नहीं है ये। जुनेद किस तरफ पॉइंट करना है इंपॉर्टेंट है, किस तरफ, जहाँ पे वहां वहां पे पॉइंट करना। नहीं ये मेरे ख्याल है काम नहीं कर रहा। अब चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सही है। ओके माइक की आवाज सही आ रही है? कॉलर माइक होगा तो ज्यादा अच्छा नहीं है। कॉलर माइक है? जुनेद कॉलर माइक दे दो। ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें नहीं डालेंगे जैसे आप कहते हैं। आप, ठीक है। टाइम होगा नेक्स्ट पैनल में सदर साहब आ रहे थे। हाँ, उन्होंने सोचा कि वैसे ही बात कर लिया। यू कैन जॉइन द पैनल। आई कैन ज्वाइन द पैनल, बस मैं पैनल बाहर निकलना है, शादी पे जाना है। वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है।
नहीं मैंने भाग जाना चुप करके। यार इसकी डेट बदल दो, ये आगे चलते हैं, बस यहाँ से शुरू करते हैं। Welcome everyone. Our next speaker is Mr. Asad Feroz. He will be speaking on professional grooming, positive attitude, dressing, and effective communication. Mr. Asad Feroz is a fellow member of ICAP. He is partner at Grant Thornton. He is a former consultant to the World Bank, an IFC approved trainer on corporate governance, and SCCP certified director. He has been chairman and secretary of NRC ICAP, and he is also council member ICAP from 2021 to 2025. Please give him a round of applause. Sir, please come forward. चलें गुड हो गया, ये काम तो हो गया। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, ये तो सब हो गया। ओके जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तस्वीर बहुत अच्छी आई है। अभी मैंने एक उतराई है, देखो वो अच्छी आती है कि नहीं आती।
थैंक यू वेरी मच मार्केटिंग डिपार्टमेंट ICAP, इनायत साहब और आप सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. Whenever I start on this topic, or I think I'm doing it for the third time, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब हम वहाँ बैठे होते थे और स्टूडेंट होते थे तो हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं होते थे. सो इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना जिसके अंदर आपको ICAP के कुछ लोग जो थोड़े से आपसे सीनियर होंगे, थोड़े से सीनियर आपसे होंगे, 10-12 बातें आपको कहेंगे, उनमें से शायद आपको 1-2 ऐसी बातें मिलें जो लाइफ लॉन्ग लेसन्स हो, वो मिल सकती हैं. यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. इसके लिए मैं जाती तौर पे मशकूर हूँ मार्केटिंग टीम का, स्पेशली ताहिर साहब और उनकी टीम का, जिन्होंने ये चीज सोची और उसको एग्जीक्यूट करनी शुरू की. हमने इसको नॉर्दर्न रीजन लेवल पे भी किया, कासा लेवल पे भी किया, मगर मार्केटिंग टीम ने इसे रेगुलरली किया है. इसके लिए तालियां बनती हैं और सही वाली बनती हैं. अच्छा जी, आज हमने कुछ बातें करनी. सो आई वांट के जो माइक वाले साहब हैं वो रेडी रहें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोगों का साथ साथ इनपुट लेते रहें. ठीक है. और टॉपिक आज का जो है, मेरा नहीं ख्याल हमारी स्टडीज की तरह बोरिंग है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है. ये नहीं है, ये जब मैं आपको एंड करूंगा तब आपसे पूछ लूंगा आपके ख्याल में क्या इंपॉर्टेंस थी. सो वी आर कवरिंग टुडे 3 एलिमेंट्स. One is the positive attitude, then is dressing, and then is effective communication. ठीक है. Just quickly moving forward, attitude क्या होता है? हाँ जी, anybody, attitude क्या होता है? कोई माइक तो नहीं चल रहा है यहाँ पर? हाँ जी, attitude क्या होता है? Anyone? Seriousness towards? Very good. Seriousness towards a particular thing. जी, जी, Mike. टेंडेंसी टू बिहेव, जैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं कि हम किस तरह से बिहेव कर सकते हैं एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक पार्टिकुलर बंदे से हम किस तरह से बिहेव करेंगे. बिहेव करेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया. और कोई एटीट्यूड पीछे से? एक मिनट, माइक ले ले. पहले इधर दे दें, फिर इधर देना है. स्ट्राइप्स बॉय पे आप बोले कोई बात. सर, जिसे हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मतलब जो हमारी पहचान है. वेरी गुड. आपको भी देते हैं माइक. In simple words, the response to any situation. Response to what? Any situation. Any situation. Good. You can say confidence or seriousness about the situation or the matter. Confidence or seriousness. Active listening. You can be an active listener to which will enable you be a positive attitude. Okay, good. इधर से कोई आवाज आ रही थी? नहीं, एक बंदा और लगा ले. सर, हमारा पोस्चर और जेस्चर्स, हम दूसरे तरफ किस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह उस तक बात पहुंचा रहे हैं अपनी. पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है कि हम स्माइल करके बात कर रहे हैं या हम गुस्सा चढ़ा के बात कर रहे हैं, किस तरह उसको रिएक्ट कर रहे हैं सर्टेन सिचुएशन को. ठीक है जी. एटीट्यूड, आपने बहुत सारी बातें, एटीट्यूड, ऑल ऑफ दिस यस इज एटीट्यूड. बट बहुत अच्छी बात एक भाई ने कही, हाउ यू आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है ना, दैट इज योर टेम्परामेंट. और एटीट्यूड वो कहते हैं कि स्पेशली जब आप ट्रेनिंग लेने फर्म्स में जाते हैं तो काफी सारी फर्म्स आपके एटीट्यूड को टेस्ट कर रही होती. और बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखेंगे, आपने सुबह इंटरव्यू से सेशन भी मेरे से पहले अटेंड किया. एक होस्टाइल इंटरव्यू का भी कॉन्सेप्ट होता है. एटीट्यूड वहां जरूर चेक होता है, कैसा एटीट्यूड है. एक और चीज साथ देखने वाली है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है. एनीवन, कोई 2 लोग सिर्फ में चाहिए, एक इधर से एक इधर से, तो 2 हाथ इधर से आ गए. बॉयज, नॉट गुड. वेरी गुड. जी जी. Showing no interest or showing less interest in something.
Okay, less interest, no interest. Good. रूड बिहेव करना। Rude behave करना। जी। अच्छा, अब एक तरफ हम एटीट्यूड की बात करें, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। रूड बिहेवियर, ना इंटरेस्ट लेना, ऑल दीज आर साइंस ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। व्हाट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड? आप फॉर्म में दाखिल होते हैं, आपका सीनियर कहता है आज रात को हम लेट सिटिंग करेंगे, ठीक है। अब आपके दो तरह के एटीट्यूड होंगे वहां पे, दो ही होंगे मेरे ख्याल में, दो से ज्यादा नहीं होंगे। एक ये होगा, मैंने रात को 9 बजे तो नेटफ्लिक्स देखना था और मैंने 10:30 बजे फेसबुक चलाना था, 11 बजे मैंने फलाने से बात करनी थी। ओए कहाँ फंस गए यार, किसने कहा था आर्टिकल्स करने के लिए, किसने कहा था ये काम करने के लिए? सी, देन यू start becoming negative. This is the start of negativity. Trust me, negativity जब शुरू होती है तो इसी तरह शुरू होती है और आगे जिस लेवल तक वो जा सकती है वो किसी भी लेवल तक जा सकती है। अच्छा, दूसरा क्या उस वक्त डिसीजन हो सकता है या एटीट्यूड आपका ज़हन में आएगा, मेरे सीनियर ने कहा लेट बैठेंगे, आई विल गेट सम लर्निंग, आई हैव कम टू द फर्म टू लर्न। 4 साल के अंदर जितना मुझे सिखा दे कम है, 4 साल बाद मेरी जो वर्थ होगी मेरी इस लर्निंग की वजह से होगी। आप कह रहे हैं 9 बजे तक बैठते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप 9:30 बजे तक काम करवाएं। आई एम अ विलिंग वर्कर, आई विल डू वर्क फॉर द फर्म विच विल हेल्प इन माई कैरियर ग्रोथ। सो दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इस एटीट्यूड को अगर आप अपने सीनियर को शो करेंगे, वो कहेगा ये बच्चा या ये बच्ची थी जिसने मेरे साथ उस जॉब पे काम किया, नेक्स्ट जॉब पे मैंने जाना है, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट देखा था। मुझे कोई उस पर एफर्ट नहीं करना जाके कि मैं उसको समझाऊं, अच्छा डिप्रेस ना हो यार, आप काम करना पड़ेगा, आपके लिए इश्यूज आएंगे, लेट बैठना पड़ेगा। स्टार्ट यहाँ से होता है। मैं अपनी बात करता हूँ, बाकियों को छोड़ देते हैं। फर्म में मैं गया, आई थिंक इट वॉज मंडे जो ज्वाइनिंग थी, सम 2 decades ago की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। और आप लोगों की तरह सोशल मीडिया हमारे पास नहीं होता ही नहीं था। सो करने कराने के काम हमारे कम होते थे। हमारे ज़्यादातर काम या तो हमारी दोस्तियाँ होगी या हमारी फैमिली लाइफ होगी जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, और इसके अलावा आप लोगों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में बड़ा गैप है, ठीक है। सो इसलिए आपने ज़रा ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह इसको थोड़ा सा इस सोच के चलना है कि थोड़ा सा पीछे का दौर है। तो हफ्ता गुजारा, शहर के बाहर पोस्टिंग थी जहाँ मैंने जाना होता था, ड्राइव भी करना है, जाना भी है, फिर टीम को घरों से लेके छोड़ना भी है। सुबह 7 बजे स्टार्ट होता था और अगर सीनियर टाइम पे उठ जाता था, टाइम पे उठने का मतलब होता था 7-8 बजे, तो मैं घर तकरीबन 11:30-12 पहुंच जाता था। रात की बात करूँ, ये डेली का रूटीन था पहले वीक में, ठीक है। एटीट्यूड ये था, हाँ नहीं करना है, हम फर्म में आए हैं, सीखने आए हैं, हम करेंगे। कम फ्राइडे इवनिंग, अब हम जा रहे हैं वापस, तो सीनियर ने कहा अच्छा हमारी तो जॉब अभी शुरू हुई है, मगर फलानी जॉब पे सैटरडे संडे की स्टाफ की जरूरत है। तो मैं और मेरे साथ एक और ज्वाइनी थे, मेरे दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं इस वक्त, माशाल्लाह वेरी वेल एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप दोनों ने वहां जाना है, हम लोग भी चक्कर लगा लेंगे वहां पे। दैट वाज द फर्स्ट सैटरडे तो ऑफ नहीं होता। देन केम अ लेक्चर फ्रॉम माय लेट सीनियर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, somehow he lost us, बहुत अर्ली चले गए। तो उन गाड़ी में ही थे, वो म्यूजिक हमारा नॉर्मली कैसेट चल रहा होता था, रुकवाया, उन्हें कहा नहीं। सो ही स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स। मैंने कहा यार तुम आए हो, ये तुम इस जॉब को कर रहे हो, तुम्हें एक और जॉब मिल रही है विच इज अ बिग कंपनी, तुम 2 दिन वहां लगाओगे। अच्छा, मैं भी इसी तरह दिल में ऐसे ही हंस रहा था कि यार ये जो है ना करवाने लगा। मगर मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी, फर्म बनाने के बाद मेरे पास उस क्लाइंट का कोई एक्सपोजर नहीं था, मैंने कभी उस पर काम नहीं किया। मेरे पास एक असाइनमेंट आई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर आई वाज शॉर्टलिस्टेड, फर्म वाज शॉर्टलिस्टेड। आपको नहीं पता आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कहां लेके जा सकता है, और असाइनमेंट हजारों में नहीं थी, ये मैं बता सकता हूं। सो थिंक पॉजिटिवली, एक्ट पॉजिटिवली, पॉजिटिव एटीट्यूड is the power. It is a huge power.
और ये पावर आपके हाथ में है, आपके रियलाइज करने से है। ठीक है, ये ना हो कि मैं टाइम ही ओवररन कर दूं और ताहिर साहब कहीं आप अच्छे टोस्ट मास्टर हैं, हमने आपको ये ट्रेनिंग दी थी टोस्ट मास्टर में कि आप टाइम ओवररन करते हैं। अच्छा जी, ड्रेसिंग। कोई बंदा आपके सामने वॉक करता हुआ आता है, सो दैट इज ड्रेसिंग जिसकी हम बात करें, ड्रेसिंग एज इन ड्रेसिंग। अच्छा, अब ये ड्रेसिंग आपके सामने, सवाल आपके सामने है, माइक जरा थोड़ा सा ले आए नीचे, एक इधर से जवाब आएगा, इधर से आएगा, हाथ आप खड़ा करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो मैं खुद बुलवा लूंगा, जो बंदा या बंदी अब तक नहीं बोला होता। आइडियली 2 तरह की ड्रेसिंग है। ठीक है, विच वन इज बेटर? अभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, हाथ खड़ा करके बताना है। आप बोलेंगे, 1 मिनट, उधर से कौन बोलेगा? आप तो बहुत बोल चुके, ये ठीक है, हाँ बिल्कुल यही, ये खास बंदा है। हाँ जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये दोनों ही बेटर है, लेकिन सिचुएशन के लिहाज से एक मतलब कैजुअल में बेटर है, और एक अगर आप किसी प्रॉपर फॉर्मल में जा रहे हैं तो फिर लेफ्ट वाले बंदे का नाम क्या है? वो तो सूट्स में नाम है। कितनों ने सूट्स देखी हुई? वेरी बैड, ज्यादा को देखनी चाहिए। जिसने नहीं देखी, एक की जरूर देखें पहली जाकर, ठीक है ना? पहली देखी हुई है, फिर भी दूसरी नहीं देखी, पूरी देख ली ना। मैं पूछूं जिसने नहीं देखी उसके लिए था। ओके जी, आपके पास माइक। जी सर। जी सर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसे ये तो यही कह रहा था, वो फर्क क्या हुआ? नहीं तो सर यही तो फर्क है। अब आप एक मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको वो लेफ्ट वाली ज्यादा सूट करेगी। लाइक अगर आप किसी क्रिकेट मैच में जा रहे हैं तो फिर आप यूजुअली कैजुअल बन के जाएंगे वहां। ड्रेसिंग जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना? आपने फर्म में एंटर होना है, ठीक है, आप फर्म में वैसे एंटर हो जाए जी, इसी तरह लमकते लमकते। उसके बाद जो तो फर्म में चले गए हैं वो मेरी बात को ज्यादा, मैं जो अभी जाने वाले हैं, कितने लोग फर्म से इंडक्ट हो गए? आप तो काफी देर की इंडक्टेड है, और कितने नहीं हुए वो जरा हाथ ऊपर करें। इनायत साहब के लिए, इनायत साहब आपकी परसेंटेज है मुझे कुछ खराब नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, सही है। तो आप लोग जब इस तरीके से फर्म में एंटर होने के बारे में सोचें तो क्या हालात हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब्दुल्ला फाद साहब आ गए, इनके लिए तालियां बजा दें। अब्दुल्ला फाद भी जी हमारे बहुत बड़े स्टार हैं माशाल्लाह, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंगेस्ट ACCA, आई थिंक यंगेस्ट पार्टनर ऑफ EY, तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा तालियां बनती है। और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो अब्दुल्ला ऊपर आएंगे तो खुद ही ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, तो यार बात ये है कि देखो फर्म में जाते हुए, ठीक है, आप लोगों के लेवल पे शायद ये हार्वी स्पेक्टर हमारा स्टाइल नहीं है, बट दैट इज द जेनेथ जो आप देख रहे हो ना। आपने कभी भी कोई काम करना है तो यू हैव टू लुक एट द मैक्स। ठीक है, सो ये स्टाइल वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, एक क्या होगा, आगे आगे लेके चलता हूं। ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट होती क्यों है वैसे? अब मैं फर्म की बात कर रहा हूं, किसी सोशल जगह पे जाने की बात नहीं कर रहा, दोस्तों के साथ खाने की बात नहीं कर रहा। फर्म है, क्लाइंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अब आपकी लाइफ उस लिहाज से चल रही है जी। कोई नहीं बोला जो क्विकली वो बोले, आपके पास भी आता हूँ। हाँ जी, ये साहब नहीं बोले, इनको पकड़ा माइक। हाँ जी, क्यों इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग? ड्रेसिंग करने आप से ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। नहीं, ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ड्रेसिंग करने से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ गुड, कॉन्फिडेंस भी। वेरी गुड। इधर से कोई आवाज आई थी मुझे। ड्रेसिंग हमें रिप्रेजेंट करती है, हम क्या है। वेरी गुड। हाँ जी, लोग आपका लिबास देख के डिसीजन करते हैं। वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, पुराना घिसा पिटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कुछ जगहों में मैटर करता है वैसे, ठीक है ना। आपको कोई बंदा, जब आप जाते हैं किसी भी जगह, आप क्लाइंट पे एंटर होते हैं, और आप लोगों ने जिस लेवल पे क्लाइंट्स में एंटर होना है या फर्म में एंटर होना है, तो देखो हमारे यहाँ तो जो जनरली क्लाइंट होते हैं, अब्दुल्ला वाउच करेंगे, उन्हें तो आप जैसा बंदा नजर आता है तो उनको तो हाँ क्या बंदा मिल गया हमें। अब इसकी तो हम जरा पूरा इंटरव्यू करेंगे ना। तो वहां पे अगर एक बंदा ड्रेस्ड है, सॉलिडली खड़ा है उसके सामने, तो वो स्टाइल फर्क हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, जो हम पहले बात कर रहे थे। तो ये कॉम्बो बड़ा मैटर कर रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इन इमेजेस में कॉमन है क्या? जल्दी, इतना टाइम है नहीं। टाई,
सॉरी, स्माइल, और क्या है, प्रॉपर ग्रूम्ड है, ठीक है, और स्माइल है जी, क्या किया हुआ है, वो तो खैर वो तो चॉइस है ना आपकी। वाइट शर्ट है, ठीक है, प्लेन टाई है, और दरमियान वाला सूट फर्क है, वो तो कॉमनैलिटी नहीं है, तीनों में हार्वी स्पेक्टर भी है ना, वो तो कॉमनैलिटी। ठीक हो गया जी, सही आइडेंटिफाई किया आपने। अब मैं आपको राइट वाली पिक्चर पे पहले लेके जाता हूँ। राइट वाली पिक्चर में देखें तो वो व्हाइट शर्ट, ऊपर वाला बटन खुला। किसी भी फॉर्मल जगह पे आप इस तरह जा रहे हैं तो ये फिर कैजुअल के जुमरे में आएगा, ठीक है। राइट वाला आपका कॉन्सेप्ट जो है हमारा, एक आपने जब अगर स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप प्लेन टाई नॉर्मली लगाते हैं। नॉर्मली अगर आप कभी लगा के देख लें, आपका उसका आप कंट्रास्ट करना चाहें कंट्रास्ट कर लें, आप उसको मैचिंग करना चाहें मैचिंग कर लें कलर। नॉर्मली स्ट्राइप के साथ आपको प्लेन ज्यादा बेनिफिशियल है। आप लोगों की स्टेज पे वो ज्यादा तो हमारे समर्स ही होते हैं। मैं एक बात ही रिकमेंड करता हूँ जो बच्चे हमारी ट्रेनिंग में भी आते हैं, आप एक काम करें, आप पहले स्टाइपेंड में से एक शर्ट और एक ट्राउजर ले लें। आप में से वो लोग जो इंटीरियर पंजाब से आए हैं, कितने लोग इंटीरियर पंजाब से? इंटीरियर पंजाब से मुराद है लाहौर से बाहर, बस सब बाकी सब लाहौर के। तो ज्यादा जो लाहौर से बाहर से आ रहे होते हैं उन लोगों की ऑब्वियसली वो नॉर्मली ड्रेस की डिफरेंट स्टाइल होता है, डिपेंड करता है बंदे पे, मगर ये कि नॉर्मली एफर्ट ज्यादा मांग रहा होता है। तो अनारकली बाजार हमारा बड़ा लाहौर का एक मशहूर बाजार है, वहां पे एक पैंट शर्ट एक बड़ी रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाती है। अब आपने पहले स्टाइपेंड में से वो एक पैंट शर्ट ले ली, मे बी व्हाइट शर्ट एंड अ ब्लैक ट्राउजर, सिंपल। सूट शूट तो आपका नेक्स्ट लेवल की चीजें है ना। इसी तरह आगे जाके एक टाई ले लें, ठीक है। बहुत सारी फर्म्स टाई को इनकरेज करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, तो डिपेंडिंग हो सकता है आपको शुरू में टाई लेनी पड़े, मगर ये इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। मगर एक छोटा प्रपोर्शन अपने स्टाइपेंड का कोई एक शर्ट टाई लेते जाएं, ठीक है। पैंट्स अगर आपकी ब्लैक और ब्लू दो भी होंगी और जूता आपका एक काला भी होगा, तो आई थिंक दैट विल गो ऑन फॉर एटलीस्ट अ ईयर, एटलीस्ट अ ईयर मेरे ख्याल में। और आप फिर अपनी शर्ट्स भी 3-4 ले लें, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी एक वार्डरोब डेवलप हो जाएगी 6-7 महीनों में, फिर उसको मेंटेन करें, ठीक है ना। फीमेल्स के लिए भी इसी तरह ही है कि आपने अपने 3-4 सूट्स लेने हैं और फिर उसको मेंटेन करना है। हाँ, फीमेल ड्रेसिंग डिफरेंट है और मैं इसका कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, इसके लिए हम नॉर्मली सादिया को बुलाते होते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर साहब से कि आप लोगों के लिए, और अगर आपके और भी कोलीग्स आना चाहें तो वो सेशन एक्सक्लूसिव एक हो जाए। मगर अगेन क्रिस्पली ड्रेस होना इंपॉर्टेंट है। आप मेल हैं या फीमेल है, आप हिजाब लेते हैं या आपकी बियर्ड है, वॉट एवर इट इज, आपकी ड्रेसिंग आपको पता है आपके स्मार्ट है, आपकी दाढ़ी बड़ी है, आपने उसको भी प्रॉपरली अपना ग्रूम कैसे किया हुआ है, आपने फॉर एग्जांपल दूसरी तरह की अपना शेप बनाई हुई है, आजकल जो चल रहा है स्टाइल, उसमें भी आपने अपना वो कैसे मेंटेन किया, ये सब चीजें मैटर कर रही हैं, ठीक है। और नॉर्मली कोई बंदा, जब आप किसी बंदे को देखते हैं तो पहली चीज आपको क्या नजर आती है आप लोगों के एज ग्रुप में? मुश्किल सवाल है। घड़ी देखते हैं, गुड। और क्या देखते हैं? वैसे आप लोगों की एज में लोग घड़ी कम ही देखते हैं। शूज देखते हैं, वो तो हम जैसे देखते हैं। मोबाइल देखते हैं आप लोग। सो मोबाइल मैं बताऊं मैटर करेगा, मगर थोड़ा आगे जाके करेगा। आपकी इस सिचुएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके शूज ही होंगे। क्लाइंट पे जाते हुए या किसी भी आपने जगह पे जाना है, ऑफिस जाना है, आपके शूज प्रॉपरली पॉलिश्ड हों या रीजनेबल हालत में जरूर हों। ऑल्दो आप बाइक पे आए हैं या बस पे आए हैं, कोई कपड़ा साथ रखें, उसको क्लियर करके रखें। मैटर करेगा कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों की आसानी इस मामले में, आपके लिए बड़ा आसान जिंदगी है, मगर अगेन उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थोड़ा सा वो है, मगर ये कफ्स कैसे होंगी, डबल कफ कैसे होगी, भाई ये देखो, ये एक आगे की चीज है। अभी स्टेज पे एक अच्छी शर्ट और मैटर करेगी। शर्ट आपने सिर्फ देखना है कि कॉलर की जो बात करें, कॉलर बोन की, आप थोड़ा सा आप शर्ट को यूज करोगे 7-8 महीने, तो अभी शर्ट वोन आउट होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने उस शर्ट को रिप्लेस करना है, ठीक है। अगेन उसी अपने बजट में रहते हुए, अपने पेरेंट्स पे बोझ डाले बगैर, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगी, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अच्छा जी, कफलिंग्स आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी कॉमन चीज है, शूज कौन से हैं? मैंने तो उसका एक जिंदगी में आसान हल निकाला है, ब्राउन पहनो ही ना। ब्राउन पहनोगे तो ब्राउन शूज चाहिए होंगे।
अच्छा, ब्राउन के साथ चीजों को मैच करना बहुत मुश्किल है। आप टाइयां उठा लें, ब्राउन इज डिफिकल्ट टू वेयर। इनायत साहब बड़ा अच्छा वेयर करते हैं, हमेशा करते हैं, और उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। तो ब्राउन पहनना आसान है। तो आई वुड सजेस्ट इजी ऑप्शन, गो फॉर ब्लैक। जो सॉक्स है आपकी, वो मुझे बड़ी मजे मजे की मिलती हैं। सो सॉक्स नीड टू बी मैच्ड आइदर विद द शूज और विद द ट्राउजर। सो आइडियली आपको ब्लैक सॉक्स के 2-3 पेयर आपके पास होने चाहिए, जिंदगी सुकून में होगी। ठीक है, हाँ कभी कभार आप ब्लू पहने तो ब्लू कर लें, मगर ये कि ये इजीएस्ट स्टार्टिंग मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शंस में से यही है, और यही वो आप बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इन दोनों में से किसी एक में करेंगे। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैंने इनको लेक्चर देने जाना है तो मेरी जो टाई है ना वो आ जाए। तो टाई नॉर्मली आपका जो बेल्ट है, बेल्ट आपको वेयर करनी चाहिए मेल्स को, इवन इफ कि आप कोट नहीं भी पहन रहे। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ योर ड्रेसिंग। और बेल्ट उस तरह की लाउड बेल्ट नहीं जैसे हम नॉर्मली पहनते हैं, वो जीन की बेल्ट है। तो बेल्ट आपकी स्टैंडर्ड इस टाइप की या दूसरे छोटे बकल वाली, अगर आप वो दूसरी भी यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह की टाई नहीं लगानी। अब्दुल्ला फाद साहब के सामने अगर आप टाई इस तरह की लगा के जाएंगे या टाई ऐसे खोल के जाएंगे, इन्होंने आपको वहीं फारिग कर दिया। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो आपको टाई लगानी है तो प्रॉपर टाई ऊपर करके लगानी है, वरना टाई उतार के फिर जेब में डाल। ठीक है, ये वाले काम किसी तरह भी प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, आप कोई कैजुअल फैमिली इवेंट पे, किसी सोशल इवेंट पे जा रहे हैं, यस ऑब्वियसली यू कैन यूज देम। ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए काम आ सकती हैं। इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सीए पूरा होगा, फिर ये सारी चीजें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, आपके लिए आम सी चीजें होंगी। अच्छा, ये हमने सारी बातें कर ली हैं जो टिप्स की हैं। शलवार कमीज एट टाइम्स फर्म्स में अलाउड है। आप क्लाइंट्स में भी होता है एक ट्रेंड कि फ्राइडेज को आपने शलवार कमीज पहनने। अब शलवार कमीज ये दो हैं, कौन सा बेहतर है आपके ख्याल में? राइट वाला नहीं, वो शादियों में। ठीक है ना, दैट इज नॉट अ फॉर्मल वियर। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पहली जॉब ही थी, सारी बातें मैं अपनी करूंगा, किसी का कहने का फायदा कोई नहीं। तो मेरे एक सीनियर है माशाल्लाह, आप काफ़ी अच्छी जगह मौजूद है। तो उस दिन ना मैं बहुत ज़्यादा, वो मेरे ख्याल में शौक नहीं थी, मगर ये कि मैंने वो सॉर्ट ऑफ रेड और आप कह लो कि मैरून रेड के दरमियान का कलर था सॉर्ट ऑफ, वो पहना हुआ था। तो हमारे सुपरवाइजिंग सीनियर थे, आए, आके ऑब्वियसली मैं जूनियर मोस्ट था, आए मुझे मिले तो क्या हाल है, ठीक है। तो खाने पे हम बैठे तो मुझे कहते हैं, सारी टीम बैठी थी, 8 बंदों की टीम थी। अच्छा तुम मुबारक हो, तुम्हारी मंगनी होगी। तो वैसे जूनियर जो होता है आपको पता है, वैसे ही जरा थोड़ा बोलने के हिसाब से जरा केयरफुल चल रहा होता है। अभी हम बात करेंगे इस पे आगे। तो मैंने सरप्राइज होके देखा, मैंने कहा नहीं मेरी तो मंगनी नहीं हुई। अच्छा मेरा ख्याल तुम्हारी मंगनी। अच्छा उस लेवल पे, क्योंकि कबले मसीह का टाइम था, मासूमियत इतनी थी, मैं आ गया। बाद में मेरे सीनियर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुझे शाम में कहते हैं जब हम वापस घर जा रहे थे, तो तुम्हें समझ आई कि तुम्हें वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा वो मेरे ख्याल में उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरी, आपको पता है कहाँ मंगनी है, तो घर वालों ने पूछना भी नहीं जब तक सीए नहीं होता। वो आपसे सार्कास्टिकली कह रहे थे कि शर्ट आईना नहीं पहनी। सो कलर्स डू मैटर, डिपेंड करता है आपके ऊपर भी जो बंदा बैठा है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो खुद ही बोल्ड कलर्स पहन रहा है तो एक और बात है, और फर्म का कल्चर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, मगर आइडियली देखो सेफ चलना जिंदगी में बेहतर है। व्हाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रे, मैं कहूंगा व्हाइट और लाइट ब्लू से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, वो खतरा ही खतरा है। टाइयां भी मैच करनी है, दुनिया की हर टाई आप मैच करो, जो टाई उठानी है आप लाइट ब्लू और व्हाइट के साथ मैच करो, जिस सूट पे मर्जी पहनो, आज चैलेंज इट, आपकी चलेगी। फिर एडवांस लेवल पे जाना है आपने, अब्दुल्ला फहद जैसी ड्रेसिंग करनी है, टाइम आएगा इंशाल्लाह, मगर इस टाइम पे सेफ रह सकते हो आप। ओके, स्मार्ट कैजुअल की बात कर रहा था, देखो ये भी अगेन आपकी आगे की है, एक लेफ्ट वाला स्मार्ट कैजुअल और एक राइट वाले स्मार्ट कैजुअल। अगेन इतना आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, मगर मैं जस्ट आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि नॉर्मली बिजनेस की मीटिंग के अंदर स्मार्ट कैजुअल मींस अ सूट विदाउट अ टाई, जो गोरा कॉन्सेप्ट है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट में ये जैकेट भी पहन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मगर टक्ड इन शर्ट, आप किसी क्लब में जाएंगे दे विल से टक्ड इन शर्ट जुराबें होनी चाहिए। सो आप में से जो क्लब्स के साथ फेमिलियर हैं वो ऑलरेडी ये चीजें चल रही होती हैं। स्मार्ट कैजुअल भी उस तरह का कैजुअल नहीं जितना कैजुअल हम सोचते हैं। ओके, ड्रेसिंग में मैंने काफी बात कर ली, कम्युनिकेशन की थोड़ी बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन होती क्या वैसे बाय द वे? एक मिनट, जिस तरह आप बोल रही हैं इस तरह तो मैं ही नहीं सुन पा रहा।
Exchanging of information. सॉरी, Exchanging of information Okay, to exchanging of- individuals. ठीक है, गुड हो गया. राइट साइड, यार यही बंदा बोलता है. फर्म ज्वाइन कर ली, कौन सी? ए फर्गूसन. तुम्हारे मैनेजर तुमसे तंग तो नहीं? स्किल में ये लिखा था, बोलो बोलो. गुड नेगोशिएटर. कम्युनिकेशन, हियरिंग एंड लिसनिंग दोनों होंगी तभी कम्युनिकेशन हो गया. अगर एक भी एलिमेंट इसमें से मिसिंग होगा तो इट वोंट इट्स अ टू वे थिंग. ठीक है ना, आप लिसन भी कर रहे हैं, ठीक है ना, इट्स एक्टिव लिसनिंग एंड देन यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लिसन. किसी एक साथी ने हमारे किसी इवेंट में कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर किया था और ये था कि इफ यू हैव टू बी आई थिंक ये टोस्ट मास्टर्स का ही हमारा कहीं है कैटलॉग, मैंने पढ़ा था कि अगर आपने एक्सपर्ट कम्युनिकेटर बनना है और कम्युनिकेशन आपकी टू वे बेस्ट होनी, आप समझते हैं होनी चाहिए, तो आपकी लिसनिंग जो है वो 90% से ज्यादा होनी चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन में. आप सोचना शुरू कर दें अपनी कोई भी बातचीत अपने किसी दोस्त से, 90% तो आप कभी अचीव नहीं करते. मगर चूंकि मैं इलेक्शन लड़ा और मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंटरेक्शन हुआ, मुझे एक दो ऐसे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले, आप यकीन करें उनकी लिसनिंग 99%. मतलब परेशान हो जाता है. आप बोल रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं, अगला आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सुनते जा रहे हैं. अच्छा, आप कुछ करते हैं, वो प्रॉम्प्टर दें, कुछ करें नहीं, सुनने. और मैं आप बताऊं, जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है, ये बहुत बड़ी स्किल सेट है, आपको उतना ज्यादा टाइम मिलेगा टू रिस्पॉन्ड बेटर, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एट विच एवर लेवल यू आर. जितना आप नी जर्क रिएक्शन करेंगे वो उतना ज्यादा खतरनाक है. इवन आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप आराम से सुकून से बात सुने, क्योंकि क्लाइंट की बात आपने आगे अपने सीनियर या रेलेवेंट सेमी सीनियर जौन सा भी आपका हायरार्की में बनना है मैनेजर, उसको बतानी होगी. अगर आपने सुनी नहीं होगी ध्यान से, वो सुनेंगे, आपका दिमाग एब्जॉर्ब करेगा, वो रिटेन करें, फिर आगे लेके चले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कम्युनिकेशन टू वे है और कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी भी होनी बहुत जरूरी है. इसी पे आगे आते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? क्या होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताएं. So when the purpose of communication is effectively communicated, like both the parties are in a stage where they can understand it better and have reached the purpose for which they were communicating. Okay. जी. इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि जिस तरीके से मैसेज को पहुंचाना चाह रहे थे उसी तरीके से पहुंचाए. इंटरप्रिटेशन और सेंडिंग जो है वो सेम है. ओके. वो कुछ लोग होते हैं ना जो सुनते हैं कोई और चीज, कुछ आते हैं उससे नेक्स्ट लेवल की चीज, वो नहीं कह रहे आप कह रहे हैं जो सुना और जो आप पहुंचाना चाह रहे थे वही आपने कम्युनिकेट कर दिया. ठीक है जी, इफेक्टिव हो गया. और कोई जी इधर दे जुनैद. अब मतलब मेरा ख्याल है बॉयज तो इधर से नहीं बोल हम जो कहना चाहते हैं ना वो बंदा उसी चीज को परसीव करे, हमारे सामने वाला हम उस तरह से बोले कि वो परसीव उसकी सही चीज को करे. यानी कि कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाए कि हम कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और इंटरप्रेट कर रहा है, परसीव कर रहा है. तो इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये होती है कि हमारी बात को अगला सही तरीके से परसीव करे, हम क्या कहना चाह रहे हैं. मैं आपको एक सिनेरियो में लेके चलता हूँ. आपने क्लाइंट से बात करनी है. अच्छा मैं बताऊं, दुनिया में सबसे जो आसान काम होता है ना, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में बड़ी मजे की होती है. पहले साल की मैं बात करता हूँ क्योंकि आपके लिए रेलेवेंट इस वक्त पहला साल ही है, आगे जाके तो बंदा सारे समझ जाते हैं. पहले साल में आप क्लाइंट से बात करें वेदर की, नॉर्दर्न एरियाज में जाने की, पाकिस्तान से बाहर जाने की, तो क्लाइंट किसी भी लेवल पे होगा, जूनियर मोस्ट होगा या सीनियर मोस्ट होगा, आपसे बड़ी अच्छी गपशप करेगा. देखिए यार बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन चल रही. आप उससे बात करेंगे, फलाना रिकॉर्ड अभी हमें नहीं मिला, फलानी इंफॉर्मेशन अभी पेंडिंग है जो ऑडिट के लिए जरूरी है और मेरा मैनेजर मुझे कह रहा है. आप उसका स्टाइल बदलते देखिए. और आपने अभी काफी सारे लोगों ने फॉर्म में जाना है जिन्होंने चले गए हैं, कि मंडे या ट्यूसडे को जो भी नेक्स्ट आप वर्किंग डे में जाएं, जरा ट्राई कीजिएगा.
दोनों बातें करनी है और आपने खुद लिटमस करना है कि क्लाइंट का स्टाइल कितना बदलता है। अच्छा, तो वो पहले वाला पार्ट तो ठीक है, वो चिट चैट, जनरल चिट चैट तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कम्युनिकेशन इफेक्टिव करनी है तो थोड़ा सा आपका एक कंफर्ट लेवल अपने लोगों के साथ जिनसे बात करें होना भी चाहिए। दैट इज नॉट बैड, कर सकते हैं आप हल्की से। मगर जब आपकी ट्रिकी सिचुएशन है, अब्दुल्ला फाद साहब आ गए रिव्यू करने, ठीक है, यानी कि एक पार्टनर, एक डेडली पार्टनर आया, अब उसके सामने क्या करेंगे आप लोग? मैनेजर भी बेचारा कांप रहा है कि वो तो अब्दुल्ला साहब ने क्लास ले लेनी, अब क्या करेंगे? अब आप हैं जूनियर, आप जा रहे हैं अगले से बात करने और आपको पता है कि अगले ने आपको इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। हाउ यू विल बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग? टेल मी। अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे हो, कोई बंदा? अच्छा चलो जी। जो फिगर्स होती हैं, जो पहले आप अपना होमवर्क करके जाएं कि आप क्लाइंट से क्या मांगना चाह रहे हैं, कोई वो आपको काउंटर पे बताए कि ये क्यों चाहिए, तो आपके पास उसका एक जवाब हो जो आप उसे दे सके। आप अपना होमवर्क करके जाएं, ठीक है, प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड, गुड, ठीक है। एक जो माओजे तुंग थे, जो चाइनीज पाइनियर्स में थे, मॉडर्न डे जो ग्रोथ आई सारी, उनसे किसी ने ये सवाल किया कि चाइना की जो ग्रोथ है सारी की सारी, जो कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अगर आप 1960s के बाद उठाएं और आज के हालात देखना शुरू करें, तो उन्हें पूछे कि क्या रीजन है चाइना की इतनी ग्रोथ की? तो उसने बड़े आराम से कहा प्लानिंग। उसने कहा कोई सेकंड रीजन? उसने कहा प्लानिंग। उसने कोई थर्ड रीजन? उसने कहा प्लानिंग। सो इट्स प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। जब आप बात करने लगे हो, वो कहते हैं ना थिंक बिफोर यू लीप, वो आएगा कब? इफेक्टिव लिसनिंग से आना है। व्हेन यू विल लिसन यू विल हैव टाइम, एम्पल टाइम टू थिंक, एंड देन कि मैंने क्या स्पीच करनी है, मेरे बॉडी जेस्चर्स क्या होंगे, मैं अग्रेसिव होना नॉर्मली क्लाइंट्स पे अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैंने अपना काम भी निकलवाना है, और मैंने अगले को ऑफेंड भी नहीं करना है क्योंकि कल सुबह दोबारा उससे काम पड़ा होगा। मतलब दिस इज अ चैलेंज, सो यू नीड टू प्लान। वेरी गुड। एनी अदर आइडिया? ये बोलने लगा बंदा, माइक दे, माइक दे। नहीं नहीं, एक मिनट, माइक आने। उसी सिनेरियो को लेके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड शो सम रिस्पेक्ट। लाइक जो भी हमारे बैक पे जो चीजें चल रही हैं, कि हम जो परसीव करके आए हैं, हम उसको थोड़ी देर साइड पे रख के हम उसे एज अ पर्सन लेके, जिसे हमने एज इस तरह लेके चलें कि हम उसे नहीं पहले जानते हैं। जो हमारे माइंड में वो परसीवनेस हम उसकी क्रिएट करके आए हैं, अगर वो हमारे माइंड में ना होती तो तब हम क्या बात करते थे, हम उसको प्लान करें थोड़ा सा प्री कंसीव नोशन के हिसाब से। सर, ठीक है, आप सही कह रहे हो, मगर एट टाइम्स आपकी प्रायर नॉलेज फायदेमंद भी होती है। अगेन क्लाइंट्स में कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि स्पेशली एनीवन अलाउज मी टू से मल्टीनेशनल्स के जो लोग होते हैं, वो नॉर्मली बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होते, उनका स्टाइल ही फर्क होता है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनकी अपनी इतनी डेडलाइन प्रेशर होते हैं, कहते हैं क्या मुसीबत है यार, ये लोग आ गए तंग कर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बंदे से किस तरीके से बात कर रहे हैं, कितने होमवर्क से बात करें। यस, कोई आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे ना, आपने तो करना है, आपने जाके उससे सोचना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने निकलवाना है। आप उससे जाके किस तरीके से निकलवाएं जब वो अपने काम में फंसा हुआ है। अब कई लोग हमारे कोलीग्स ऐसे भी होते हैं, जाकर उसे कहते थे कि हमारे मैनेजर साहब आए हैं, आपको पता है कितने सख्त हैं, मेरी तो उन्हें बड़ी बेइज्जती करनी है, आप ही हैं जो मेरा लिहाज कर लेंगे। दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। अगला काम छोड़ के कहता था हाँ यार चलो इसकी इज्जत बचा लेते हैं कई बात नहीं। या आप उसके साथ अपबीट भी रहे और उसको बताएं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये बहुत अर्जेंट है, क्योंकि इस वक्त मैनेजर साहब बैठे हैं और पार्टनर साहब भी इनलाइन हैं, और अगर ये चीज आप नहीं बताएंगे तो ये आपके सीएफओ और मैनेजमेंट के साथ अभी ट्रिगर हो जाएगी। तो इस इशू को यहीं पे जो है आप संभाल सकते हैं। आप हमें कम से कम डिटेल तो देते। बहुत सारी जगहों पे ये इश्यूज आएंगे, लीगल केसेस की बात होगी, कॉन्टिजेंसीज की बात होगी, क्लाइंट आपको चेक कर रहा होगा, हर जगह बार बार चेक कर रहा होगा। जी माइक दे। अच्छा, बाय द वे, वैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम, चूंकि हम टोस्ट मास्टर में काफी ये लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि स्टूडेंट्स के लिए भी कोई हम टोस्ट मास्टर टाइप का प्लेटफॉर्म बना दें। एक चीज है। दूसरी बात ये है कि इस पे हमें एक सेशन पूरा हमें करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बताएं सर। इसमें जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि हम उन्हें ये बताएं कि ये उनके लिए क्यों जरूरी है, बजाय इसके कि हम उन्हें ये बताएं कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो यार, बात पता क्या है, डिपेंड करता है कि आपने लॉजिक क्या क्रिएट करना और किस लॉजिक से अगला आपका काम कर देगा। क्योंकि आपका इशू ये है कि आपने मैनेजर के पास लेके जाना है। आप अगर मुंह नीचा करके मैनेजर के पास चले जाएंगे और या सीनियर के पास जाएंगे
तो सीनियर की मैनेजर क्लास लेगा, मैनेजर की पार्टनर क्लास लेगा. Everybody wants right communication to be there. If you are there as an effective communicator, you have a positive attitude, you have a proper dressing, then you have power of all three. Then हर मैनेजर आपको कहेगा हाँ ये बंदा ठीक है. People will actually fight over you कि हमने इस बंदे को जॉब पे लेके जाना. और जितने भी लोग पार्टनर्स हैं फर्म्स के, आप उनसे पूछ रहे हैं, उनकी ये भी वरी होती है कि मैनेजर चंद बंदों पे लड़ रहे होते हैं. वो लड़ते क्यों हैं? मैं नहीं मानता इस तरह फेवरेटिज्म काम में कहीं होता है. काम में फेवरेटिज्म यही है जो बंदा या बंदी काम अच्छा करता है, उस पर लड़ाइयाँ होंगी. और जो कोई फारिग लोग होंगे जो काम नहीं करना चाहते होंगे, नेगेटिव एटीट्यूड होगा, मे बी ड्रेसिंग रीजनेबल होगी या नहीं होगी, कम्युनिकेशन भी नहीं उनकी सही होगी, क्लाइंट से काम निकलवाना नहीं जानते होंगे, जो हमारा काम है उसको पूरा करने में हेल्प आउट नहीं कर रहे होंगे, उसको आप नहीं साथ रखना चाहेंगे. So these are three which we are talking about too. There are other things as well which we'll be maybe trying to cover in maybe some other session. Baral, this was about today. Just leaving you with a quote of Steve Jobs. आपने स्टीव जॉब्स को पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. आप लोगों के एज ग्रुप में एप्पल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटीज. मतलब वो अगर मैं कहूँ कि मॉडर्न डे आइंस्टाइन ये बंदा था तो वो शायद गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल फोन पे अब सारी दुनिया चल रही है हम कभी नहीं सोचते थे. मैं जैसे बता रहा हूँ 20 years ago it was not even, we could not even think about it कि कोई ऐसा मीडिया होगा जिसपे हम हर चीज अपनी देख सकेंगे. अब स्कूल डेज में मैं चला जाऊं और अपने बच्चों को सोचूं तो वो अब 1 मिनट में डिक्शनरी निकालते हैं. हम उठा के वो डिक्शनरी खोलते थे, उसके पेज पे जाते थे. इट यूज्ड टू टेक लाइक 10-15 minutes. और इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट टू यूज सोशल मीडिया पॉजिटिवली, देयर इज सो मच टू डू. But for that, you are using social media a lot. How much positively you are using it, that is very important. That is the biggest challenge of your generation, which may be Generation Z, whatever it is called. सबसे बड़ा challenge होगा. What Steve Jobs said for you, I think I would like to leave this quote with you. Your time is limited. आपका time महदूद है. Don't waste it in living in someone else's life. किसी और की जिंदगी ना जिए, अपनी जिंदगी जिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपनी अच्छी ड्रेसिंग से, अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. थैंक यू वेरी मच. It's not working. Thank you so much, sir. This was indeed a very insightful session. Ladies and gentlemen, now we have a 10-minute namaz break. Please come back on time so that we can resume timely. Thank you.
Welcome back, everyone. We've talked about CVs, we talked about the induction process, the interviews. Now we'll shed light on one of the most important topics, that is what partners look for while inducting trainee students. We have a panel planned for this. I would like to call upon stage the moderator of the session, Ms. Zainab Mubarak. Zainab is working as AGM Finance at Al Razik International. Over to you, Zainab. Assalamu alaikum students, and welcome you all on behalf of ICAP. अभी हमारा जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जैसे अभी बताया इन्होंने कि हम क्या चीज़ें देखते हैं स्टूडेंट्स में वाइल इंडक्शन, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर की जा रही होती हैं एट द टाइम ऑफ इंडक्शन. मैं अपना इसी रेलेवेंस में इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दिया है मिस फजर ने, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है दैट आई एम फ्रॉम अ स्मॉल मीडियम साइज फर्म. तो क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं फर्म्स और उनकी रेलेवेंस की और उनकी इम्पोर्टेंस की, कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं. तो जो एक चीज़ I would like to highlight here is that I am a small size firm from Gujranwala, not from Lahore as well. Without taking more time, I would like to invite my panelists. First of all, we'll start with Mr. Zishan Sab. Sir, please. Zishan Sab is currently working as partner in KPMG. ये हमारे he is also our council member for the term 2001 to 2025. He's वो है, इनकी main जो है वो is in tax practices mainly, और बस that's it. Next is I would like to invite Mr. Asad Feroz Saab. Asad Feroz Saab is also fellow member and council member for the same term. That is 2021 and 2025, and he was also chairman of NRC in previous term. Welcome, sir. Next, I would like to invite Mr. Amin Ali. He is partner in Crow Hussain Chaudhary and Company. He is also a fellow member who has experience of almost 20 years. He has been associated with the same firm. And he's engaged in audit and assurance assignments of various large MNCs and other listed clients. Welcome, sir. Next, I would like to invite Mr. Abdullah Fahad, fellow member of ICAP. And your round of applause shows that most of you knows him. He's our youngest ICAP member. He has more than 18 years of experience in audit and assurance. Currently, he is working as partner in EY, Port Roads. Welcome, Abdullah. Thank you. Last but not the least is our member, Mr. Junaid Subhani. He would join us on Zoom. Welcome, sir. He is senior partner of Parker Russell, Pakistan, and is also a fellow member. He is also involved in audit since 1993. Welcome, sir. This was a brief introduction. We shall move on with our session without wasting any time. Sir, I think we shall start with the senior most member, Mr. Zishan. Zishan साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी फर्म्स की, कि हमारा फर्म्स का किस तरह से जो है हम उसमें हायरिंग में क्या चीज़ें देखते हैं, तो आप कुछ हमारे स्टूडेंट्स को इसमें गाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम एट टाइम हम अपने स्टूडेंट्स, ट्रेनी स्टूडेंट्स जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम कौन सी चीज़ें देख रहे होते हैं. कंसिडरेशन. Thank you, Zainab. Well,
आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट जो इसमें होगी वो इम्पोर्टेंट एरिया ये है कि जी एचआर ने अपना होमवर्क किया हो, वैल्यूएशन, इनिशियल वैल्यूएशन जो स्टूडेंट्स के सीवीज और उसके क्रेडेंशियल्स पे, दैट इज इन एनी केस इज अ फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. देन कम्स कि वो जो लिस्ट आती है शॉर्ट लिस्ट होके पार्टनर्स के पास फॉर इवैल्यूएशन, उसमें when the students walk in for the interview, rest assured शुरू के 30 सेकेंड या 1 मिनट में पता लग जाता है कि जी where does the student stands. ठीक है. Coming for the interview, if you ask me, I don't go for your academic valuation कि जी आपने किताब में क्या पढ़ के आए हो और आपको फलां स्टैंडर्ड याद है, नहीं याद है, क्या लिखा हुआ है उसमें. The important thing is how do you carry yourself. You are going to represent a fraternity in future. You are going to be the leaders of that fraternity. The important thing is कि आप वहां पे जब इंटरव्यू देने आ रहे हो तो how clear your mind is. अगर if a student comes up and if I ask him कि जी where do you see yourself in next 5 years time, and he does not have the answer to that, I mean that's unfair. देखें CA करना without that clarity it's not important. जो I will not be wrong, CA करने के लिए कश्तियां जला के आना पड़ता with a mind frame कि जी I am here and I will do that. That is very important thing. सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. जनरली एक परसेप्शन की जाती है कि जी अंग्रेजी, उर्दू, स्टफ लाइक दैट. इट्स वेरी सिंपल. इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज. अंग्रेजी बोलने के चक्कर में आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि अपने पूरे इंटरव्यू का बेड़ा गर्क कर लेते हैं. आप उर्दू बोलें लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलें. Nobody is there to judge कि आपको अंग्रेजी कितनी अच्छी आती है. ठीक है, नहीं आती आप सीख लेंगे. इंटरव्यू की अपना प्रेशर होता है, जो मर्जी कर लें. आज स्पेंडिंग 20+ years, still if you ask me, even coming for this particular session, there is always going to be a pressure. तो आप नॉर्मल होके वो बोलें जो आप बोल सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. This is very important. Another important point which I think should be there is your positivity. I have seen students sitting in front of me and with the mind frame कि जी reference के बगैर नहीं मिलता, फलां चीज नहीं होती, फलां चीज नहीं होती. ये सच हो या गलत हो, but that reflects your mind frame. ठीक है, that's actually a very negative mind frame. आप स्टार्ट में ही ये शो करा रहे हैं कि जी these are the handicaps and I am pretty much not confident because of those handicaps. Forget about those handicaps. Handicaps would remain there throughout your professional career or your personal life. Forget about that, shake your head, and you are there to showcase your capabilities. That's it. Seriously speaking, the people sitting in front of you, he is there to assess you for the future. ठीक है, उसने ये देखना है कि ये बंदा कितना पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ है, कितना कॉन्फिडेंट है. उसी दिन उसने आपसे स्टैंडर्ड्स या वो सारा कुछ नहीं करा लेने. He is there to train you. उसने ये जज करना है कि whether this person is there where I should give my time to train this person. This is his point of view. So generally, if you ask me, you have to be positive, you have to be confident, and then let's leave it to the God, basically. Allah Ta'ala kar deta hai sara kuch. For next question, I would like to go to Asad साहब. जी असद साहब, आपका कैरियर में थोड़ी सी एक रोलर कोस्टर वाला वो रहा कि पहले आपके आर्टिकल्स वर फ्रॉम Big Four, फिर यू वर इन्वॉल्व विद
small medium sized firm and now working as partner in GT. तो ये आप इसको किस तरह से थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी आप बीइंग इन स्मॉल मीडियम साइज फर्म और बीइंग इन GT और बीइंग एज अ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं जो देखी जाती हैं, और क्या कोई फर्क होता है फॉर स्मॉल मीडियम साइज फर्म जब स्टूडेंट इंडक्शन प्रोसेस में, और बिग साइज फर्म में कोई फर्क होता है इंडक्शन प्रोसेस में, कोई डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं? क्योंकि आपने दोनों लेवल्स पे रह के देखा हुआ है, स्मॉल मीडियम साइज के लिए भी इंडक्शन की होगी, GT के लिए भी इंडक्शन आप कर रहे हैं, और आप खुद एज स्टूडेंट भी रहे विद बिग 4, तो आपको क्या इसमें फर्क लगता है? थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। अच्छा, आपने मेरा ख्याल है बड़ा एक मजे का क्वेश्चन किया, क्योंकि देखें जब हम स्मॉल मीडियम फर्म्स की बात करते हैं, आपने भी वो एक्सपीरियंस देखा हुआ है, तो जो हम ट्रबल यूजुअली फेस करते हैं वो ये है कि बच्चे एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने बड़ी फर्म्स में ही इंडक्ट होना है। अब आई थिंक दिस इज अ माइंड ब्लॉकर, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। और स्मॉल मीडियम फर्म्स ऑपरेट करती हैं विद सर्टेन बिजनेसेस ऑपरेट कर रही हैं। अब जब बच्चा आपके पास आ रहा है तो वो वैसे तो थोड़ा सा वैसे ही डिप्रेस्ड है कि मैं बड़ी फर्म में नहीं जा सका, तो अब मैं इस फर्म में आ रहा हूँ। तो हम जब उस वक्त का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो एक बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था, और थोड़ा सा ICAP को मैं उसमें क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रेनिंग इंडक्शन फेयर्स हुए उसने काफ़ी हेल्प आउट किया, जिसमें हमारे पास कुछ बच्चे ट्रिकल डाउन करना शुरू हुए। वरना मैं बच्चों का काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, क्योंकि अब चूंकि ICAP में इलेक्टेड होने के बाद बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स आती हैं कि बच्चा है ये 3 अटेम्प्ट से ये हायर नहीं हो पाया है किसी फर्म में, और इसकी ना हायरिंग करवा दें। अभी बड़ा रीसेंट इंसिडेंट है, अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर कर लेता हूँ। ये कोई 5-6 महीने पहले मुझे एक साहब की कॉल आई, अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा सर इनके ना अटेम्प्ट्स थोड़ी ज़्यादा हैं मगर ये ना हायर नहीं हो पा रहे। मैंने कहा जी ठीक हो गया, आप इसको ना कहीं हायर करवा सकते हैं? मैंने कहा डिपेंड करता है कि आप किन फर्म्स की बात करें, क्योंकि जितनी भी स्मॉल मीडियम फर्म्स हैं हमारी या अदर देन बिग फर्म्स हैं, उनके अंदर कैपेसिटी टू हैव स्टूडेंट होती ही होती है मेरी असेसमेंट के मुताबिक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जिन पार्टनर्स को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सेटअप्स नहीं है मगर बच्चा सीखेगा डेफिनेटली 4 सालों में या 3.5 साल के पीरियड में, तो आप बताएं। उसने कहा हाँ असद आप बात कर लें, अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप मुझे बताएं। मैंने 2 लोगों को कॉल की, दोनों ने कहा हाँ जी ठीक है हमारे पास जगह अवेलेबल है, हमने एडवर्टाइज भी किया था, ICAP के थ्रू भी किया था, मगर बच्चे हमारे पास आए नहीं हुए। तो बच्चा अगर ठीक है, मैंने कहा हाँ एक दोस्त का रेफरेंस है, आप देख लें, इंटरव्यू कर लें, अपने प्रोसीजर्स फॉलो करें, अगर आपको ठीक लगे हाँ ठीक है आप उसको जो ना 1 आधे दिन में या कल भेज दें, परसों भेज दें, इस तरह बात। मैंने उसको कॉल बैक किया, मैंने कहा यार इस सिचुएशन है। उसके बाद उस बंदे की मेरे से 6 या 7 दिन बात नहीं हुई। 7वें दिन उसका मुझे मैसेज आया, कॉल भी नहीं आया, सर आई एम वेरी सॉरी, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट बट द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अ स्मॉलर फर्म। अब बच्चा 1.5 साल से वेट कर रहा है, और ये बात आप बहुत से लोगों पे एप्लीकेबल होगी। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बड़ी फर्म में जाना और उसमें आर्टिकल्स करना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। हमारे पास बड़ी फर्म्स के पार्टनर्स हैं जो नॉन बिग 4 ट्रेंड हैं, और ऐसी आपको हर फर्म में, हर बड़ी फर्म में पार्टनर मिलेंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब पीछे पता नहीं क्यों बैठे हैं, नॉन बिग 4 ट्रेंड है, माशाल्लाह ICAP के प्रेसिडेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे और बहुत सारे हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, आप नॉर्थ से देखें तो ज्यादातर नॉन बिग 4 प्रेसिडेंट्स हैं। सो इसलिए प्रोफेशन में आपने ज़ेनत पे जाना है। बिग 4 नॉन बिग 4 आप लोगों की स्टेज मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप अपना टाइम कितना जाया कर रहे हैं एक फर्म में इंडक्शन कराने के लिए। रीजनेबल फर्म मिलती है, इंडक्शन कराएं, अपने एग्जाम पे फोकस कराएं, ट्राई टू पास इन टाइम। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने देखा। यहाँ पे आके ग्रैंड थॉर्टन में आके अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस तरह हायरिंग में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मगर ऑब्वियसली दोस्त अहबाब हैं जहाँ से मुझे कॉलें आ रही होती हैं, असद ये कर दें, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रेफरेंसेस मेरे होते हैं। मतलब जितनी फर्म की कैपेसिटी टू हायर है हमारे ऑफिस लाहौर वाले की, उससे ज्यादा मेरे रेफरेंसेस होते हैं। तो अब जब मैं पहली दफा मैंने इस सिचुएशन में आया तो मैंने अपने सीनियर पार्टनरों का, मैंने कहा जी अब आप गाइड करें कि आप भी कभी किसी दौर में इलेक्टेड रहे हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, हमने एक रिटन टेस्ट रखा हुआ,
अगर कोई रिटन टेस्ट पास नहीं करता है तो जो आपका बंदा रेफरेंस भी है, और मेरा तो वोटर भी होगा 99% ऑफ द टाइम, आप उसको भेज दो, उसे कहो कि जी ये रिजल्ट है, अब ये बंदे ने हमारा क्राइटेरिया पास नहीं किया, अब आप बताएं मैं इसको कैसे ले वो फॉर्म। उस दिन के बाद ये चल रहा है, और वो ये है कि कई दफा बच्चे ज्यादा भी पास हो जाते हैं, फिर वो इंटरव्यू में बड़ा मसला बन जाता है। मगर इन एनी केस देखें, बिग 4 में स्टूडेंट का ट्रिगल होना ज्यादा है। उसके बाद जो सेटअप्स हैं, हमारे जो काफी सारे सेटअप्स हैं, अमीन का भी अच्छा बड़ा सेटअप है, तो हम सब के पास मेरा ख्याल है रिलेटिवली बच्चा जल्दी आ जाता है। मगर जब हम इससे नीचे जाना शुरू करते हैं तो बच्चे के पास कुछ शायद कोचिंग की कमी है, कुछ माइंडसेट इस तरह बन जाता है, या किसी तरह, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया किस तरह, इस पर हमें बहुत काम करना चाहिए। एज ICAP भी मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए कि बच्चों को हम उस स्टेज पे ये बताएं कि बेटा आपके लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम उसमें देना है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मैंने काफी बोल लिया ऑलरेडी। तो असद, मेरा ख्याल है व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि अगर आप हार्ड वर्क कर लेंगे और आपके अपने फ्यूचर गोल्स क्लियर हैं तो आपको यू डोंट नीड टू बी फ्रॉम अ बिग 4 ओनली, कि आप उधर ही होंगे तो यू कैन रीच एट द टॉप। यू कैन ऑलवेज रीच एट द टॉप इफ यू हैव दैट थिंग इन योर ओन सेल्फ। आपको अपने अंदर वो अर्ज मौजूद है कि आई हैव टू बी देयर, और उसके लिए आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना ऑनेस्ट होते हैं। वो सिर्फ बिग 4 का टाइटल, आपको बिग 4 से 2 स्टूडेंट निकले होंगे एट टाइम्स, लेकिन एक जो है वो टॉप पे पहुंच जाएगा और एक जो है वो कहीं उसके शायद उससे सीनियर हो बिग 4 में और वहां पे उससे नीचे काम कर रहा हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ मोस्टली, आपको वो देखना पड़ेगा। मैं भी जैसे जस्ट टू फॉर योर नॉलेज कि हम काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, हमारे से जूनियर, हमारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो बिग 4 से होते हैं और हम उनके जो है वो साथ ऊपर उनको उनके एज सीनियर होते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट, तो ये माइंडसेट आज के एक जो है इसका एक पर्पस ये भी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस माइंडसेट से निकलें कि अगर बिग 4 में नहीं मिलेगा तो बस दिस इज एंड ऑफ आवर करियर। This is not so. Going forward, I would ask Mr. Amin साहब के during एक दफा हमारी सिलेक्शन हो गई, now comes the next step of induction period, जो probation period है आपका। probation period के अंदर कौन सी चीजें होती हैं जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं इन स्टूडेंट, उसकी इवेल्युएशन के लिए, उसका करियर पाथ आगे प्लान करने के लिए कौन सी चीजें हम देख रहे होते हैं ड्यूरिंग probation period? थैंक यू ज़ैनब। थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट या टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपने तौर पर से एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। जब एक स्टूडेंट है वो एक फर्म में आ गया है, अब आगे मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस उसके सामने हैं जिसको उसने लेके चलना है। इसमें 2 या 3 पर्सपेक्टिव्स इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से देखें, नई एजुकेशन स्कीम भी हमारे पास आ गई है। अब एक स्टूडेंट अपनी अटेम्प्ट प्लान कर रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद, विद इन अ ईयर या आफ्टर 1 ईयर, जो भी पहली अटेम्प्ट आएगी। मे बी एक गोल उसका ये है कि मैंने अपने एग्जाम्स कौन से लेने हैं और कौन से पास करने और कितना जल्दी क्वालिफाई करना है। हम फर्म्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो हर फर्म की अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक एक बैच को इंडक्ट करते हैं, और फर्म जो हमारे यहाँ मोडेलिटी है, सारे स्टूडेंट्स या डिफरेंट जगहों पर डिप्यूट होते हैं जिन पे ये होता है कि आप इस असाइनमेंट को या इस एंगेजमेंट को टेकअप करें। वो एक और तरह का प्रेशर है। थर्ड प्रेशर बेसिकली होता है क्लाइंट का, कि क्लाइंट की जिस असाइनमेंट या एंगेजमेंट पे एक टीम इन्वॉल्व है, वो एंगेजमेंट क्लाइंट, आप ऑडिट, टैक्स, कॉर्पोरेट रिस्क एडवाइजरी जिस भी डिपार्टमेंट में है, वो क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है। जब ये 3 चीजें सामने आती हैं और हमें पता है कि एक जो वाहिद स्केर्स रिसोर्स हमारे पास जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर है वो है टाइम, जब हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन तीनों चीजों को देखते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन या स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस या प्रेशर आने लग जाता है फर्स्ट ईयर की मैनेजमेंट में, बिकॉज देयर आर सीनियर रिसोर्सेज जो कि उस जूनियर रिसोर्स को या इनकमिंग रिसोर्स को गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं। एक स्टूडेंट का अपना मोटिव है टू क्वालिफाई, उसके साथ एक फर्म का फैब्रिक है जिसमें स्टूडेंट को सिंक होने में अभी प्रॉब्लम पेश आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस।
तो अगर हम इन 3 चीजों को सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि जो भी स्टूडेंट जहां भी इंडक्ट होता है वो अपने पहले साल को बहुत अच्छे से प्लान करके इन सारी गोल्स को और इन सारे मोटिव्स को अचीव कर सकता है कि हाउ विल यू मैनेज योर वर्क एंड योर स्टडीज एंड योर क्लाइंट। बहुत कम क्वालिफिकेशंस मेरी नॉलेज में ऐसी हैं जहां पर आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साथ साथ चल रही हैं। मेडिसिन और उसके बाद शायद हमारी अकाउंटेंसी, कि आपने कुछ पेपर्स पास किए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, आपने प्रैक्टिकली कुछ काम किया और उस प्रैक्टिकल काम करने के बाद आपने फिर पेपर्स में अपेयर हुए और जो कुछ आपने प्रैक्टिकली सीखा है आपने उसे कोरिलेट किया और अपना एग्जाम दिया। तो पहले साल में जिस वक्त एक स्टूडेंट कहीं पर भी इंडक्ट हो जाता है, ये वो प्लानिंग है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे उसने लेके चलना है टू मेक द थिंग्स इजियर एंड टू मेक द लाइफ इजियर, कि वो किस तरह से अपने काम को मैनेज करेगा और अपने काम को मैनेज करते करते वो किस तरह से अपनी स्टडीज को मैनेज करेगा। मैं सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज कोट करना चाहूंगा। अभी हमारी फर्म में रिसेंटली एक स्टूडेंट अपेयर हुए and he got a certificate of merit in his CFAP examinations. उसके एग्जामिनेशन में अपेयर होने में उसने बहुत सारी मिथ्स को तोड़ा। He took online classes and that online classes was a mix from Lahore and from other cities, जहां उसको suitable लगा उसने वहां से अपनी classes ली। He never studied in person. He took 3 exams, जो कि कुछ जो भी गाइडेंस थे उसके साथ उसने अपने 3 सब्जेक्ट्स उठाए, उसने उन 3 सब्जेक्ट्स को उठाए एंड विद इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्वालिफाइड एंड ही वाज वन ऑफ दोज रिसोर्सेज हु नेवर रिफ्यूज्ड एनी एंगेजमेंट। तो आप देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई भी एक रिसोर्स 3 या 4 पेपर उठा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तीनों एट द सेम टाइम पास भी कर रहा है और उसमें ICAP से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी ले रहा है, जो कि आप सारे वेल अवेयर हैं कि कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इसके पीछे एक बेसिक रीजन क्या हो सकती है? प्लानिंग हिज टाइम, कि आपने अपनी एंगेजमेंट्स पे कैसे टाइम प्लान करना है, आपने अपने क्लाइंट्स पे कैसे टाइम प्लान करना है और फिर जब आप घर आते हैं जो भी आपका स्टडी टाइम है आप उसको कैसे प्लान करते हैं। तो मे बी फर्स्ट ईयर के जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपका, अगर मैं दिशान साहब की बात से एक वर्ड उठाऊं, पॉजिटिविटी ऑफ माइंड। आप किस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अपने टाइम को अलाइन करते हैं अपनी स्टडीज एंड अपने काम के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उतना मुश्किल नहीं रह जाता। थैंक यू। जी अब्दुल्ला फाद साहब, आपका जो है वो हमेशा एक आपके नाम के साथ टाइटल लगा रहेगा कि यंगेस्ट, इंशाल्लाह। मैं वैसे दुआ है कि और भी आए, लेकिन सो फार सो यंगेस्ट माशाल्लाह जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो इसी उस हवाले में आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग फॉर स्टूडेंट्स के किस तरह से फर्म्स इसके अंदर हेल्प आउट कर सकती हैं कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड या मैक्सिमम पेपर्स निकाल लें, उसमें फर्म्स का कितना रोल होता है और स्टूडेंट का क्या रोल होता है अपना उसमें? I think it's a very good question. First of all, what you need to understand is that somebody who's just out of college, university, whatever you want to call it, REITs, कहते हैं मेरा ख्याल है, is coming out from a very bookish world where they've studied about, how businesses operate, how costing is done, what is cost and management accounting, what is the basic debit and credit. But then when they come into the real world, for example, if they go to an audit, they're not really looking at those things that they saw in the book, right? And the kind of dynamic work environment that we are in, the world is changing so fast. Technology has taken over, in fact, so fast that most of the concepts that you would have studied in the earlier part of your CA, by the time you reach your later part of the CA, those have become rather obsolete, right? And the pace is really dynamic right now. So with this dynamic pace, I think now where do the firms come in? The firms are actually providing you practical hands-on experience, right? Sometimes you will not be able to make a connect between what you are going to study or what you actually studied in the past and the kind of experience that you're gaining, right? For example, if you are sent on the audit of a bank, it may not really be beneficial because IAS 39 and IFRS 9 may not really apply to a bank, right? So, which you may not have studied. You may not have studied prudential regulations or State Bank of Pakistan regulations, for example.
But having said that, there are still elements within the work environment where you get to learn a lot. I think apart from the technical side, what you learn is making difficult decisions in life. What you learn is handling tough situations. What you learn is multitasking. And multitasking is something that is, just Amin was just pointing this out. You got your probation period and you're in an incubation kind of a setup where you got 2, 3, 4 things to manage at a single time, right? So multitasking is the key where the firm is actually coming in. Now, how does that pressure, or the fear of failure drive you? The fear of failure should drive you to do more, to put in your maximum effort, rather than, scaring you, okay? Each of the firms, whether it's a small setup or a medium or a larger one, has a learning and development function. They have a training function. As members of ICAP, obviously, the partners and the practice is supposed to provide that training to you. And that training is not just imparted by sending you on audits, making you file tax returns, but that is also done by imparting actual technical knowledge as well as non-technical knowledge. And that would include, for example, personal skills, interpersonal skills, managing your unconscious biasness, okay? Managing people, for example. So those are some of the skill sets that will be required in your practical life going forward. Just bear in mind that this 3.5 or 4 year period is also like an incubation period. You're out from one incubator and going into another. This is not a full-time job. This is a training, but it is equipping you with those skills that are going to make you a global professional accountant. And I emphasize on the word global. Why? Because a chartered accountant should not have a micro vision or a tunnel vision that I'm going to do my job in Lahore and Karachi or Islamabad. You are a global professional accountant. If you're coming out from any of the good firms with a decent audit exposure, you should be able to do an audit in Dubai, in London, in New York, in Paris, anywhere. If you're a good tax consultant, you should be able to provide good tax consultancy, or, if you're a general consultant for feasibility studies and all, anywhere in the world. So you need to open up your mind. That is I think the fourth, I think I've said 3 earlier. So the fourth thing where the firms come in, the firms provide you a global mindset. The firms provide you with a horizon. They broaden your horizon so that you are actually thinking outside of those textbooks. Okay. The textbooks came up with an example of, Mr. Jamil has a factory, this is the cost, this is the rubber, this is the chemical, this is the XYZ. Now tell me what profit did he make, right? But when you actually put that experience into action, whether it's through a due diligence assignment or a tax return assignment or an audit, that's where, you're putting your brains to use. So it is not about how well you learned all those things. It is also about how you can apply those concepts. And that's where the firm's practical mindset comes in, because there are people in the firm who are much more experienced than you, who've handled difficult situations, much more difficult situations than you, who've gone out of disagreements with the clients and managed them and ironed them out like anything. We've been in audit situations where we are stuck, with both horns locked with the client, as if we will never be able to come out of this situation. Either it's a resignation from the auditor or a qualified report. Somehow the partner would come, would discuss things out, and would just iron off all the wrinkles. And we'll be like, wow, man, what just happened in front of our very eyes? Because of the acumen that he displayed. So business acumen is key. Again, those things are important. Now, again, when the power of observation is important, and why I was sitting in the session that Asad was having, just before the namaz break, I think one very important point that Asad was making here was also that, you should have your power of observation. Apni aankhon ka aur apne kaanon ka istemal hame bahut acha karna chahiye. We should observe people. So people in the firm who are much higher in the hierarchy than us, we should observe and learn from them. And that is also where the firm is going to come in and help us. Thank you, Abdullah. Very useful insight indeed. Now I'll come to Junaid Subhani sahab. Sir, I was looking आपकी detail पे at your intro, तो I was just thinking कि आपका experience जो है that is in different sectors. Audit में भी है और जिसको software consultancy में भी आपका रहा है. तो हम देखते हैं कि हमारा जो student है उसका mostly interest होता है कि हमें audit में ही जाना है सर, और तो हमें कोई दुनिया का पता ही नहीं है और ना हम जानना चाहते हैं.
सर इसको आप जो है ये किस तरह स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि दिस इज, सिर्फ हम ऑडिटर्स नहीं है, वी आर अकाउंटेंट्स बिफोर ऑडिटर्स, और हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए, और किस तरह इस सिलसिले में ट्रेनिंग में स्मॉल मीडियम फर्म्स और बिग फर्म्स जो हैं, बिग 10 या बिग फर्म्स जो हैं, उसके अंदर किस तरह से फर्क होता है, और प्रोज एंड कॉन्स बीइंग इन अ स्मॉल फर्म फॉर योर फ्यूचर करियर, इसी लिहाज से कि आपकी किस किस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हो रही है, और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग इन बिग 10 और बिग 4 बिग फर्म्स क्या है फॉर योर फ्यूचर करियर और डिपार्टमेंट्स के लिहाज से। अस्सलाम एवरीवन। एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, और स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडक्शन प्रोसेस, तो स्टूडेंट जो है उसके लिए ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि आप किसी ऐसी फर्म में जाएं जहां पर आपको पढ़ने का मौका भी मिले। लेकिन हमारा स्टूडेंट सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखता है कि जी मैंने मतलब बिग फर्म में जाना है। अब वो पता नहीं अब बिग 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो आपने जीटी को भी स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म कह दिया, तो बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि जीटी स्मॉल एंड मीडियम नहीं है। तो एनीवेज स्टूडेंट जो हैं उन्हें ये देखना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो उनके प्रीडिसेसर होते हैं, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्वालिफिकेशन कर रहे होते हैं, ऑलरेडी आर्टिकल्स कर रहे होते हैं, उनको उनके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए कि जी फर्म के अंदर स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है। मैं आज ही कुछ स्टूडेंट जो फाइनल के एग्जाम दे के आए हैं, तो दे वर टेलिंग मी कि सर मतलब आई एम वेरी सॉफ्ट विद रेफरेंस टू एग्जाम लीव्स। उसमें ये समटाइम अपने आप को टफ टाइम लेना पड़ता है। मतलब ये वाली जो अटेम्प्ट होती है दिसंबर वाली, क्योंकि अक्टूबर में ऑडिट्स वगैरह क्लोज हो रहे होते हैं, इट इज़ ऑलवेज वेरी टफ। बट मतलब मैं थोड़ा सा इस स्टेज पे आके जब एग्जाम होते हैं तो मैं प्रो स्टूडेंट हो जाता हूँ। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ना होता है, एग्जाम देने होते हैं, तो पता चल जाता है, तो उनको एग्जाम लीव दी जाती हैं। तो मुझे बच्चे बता रहे थे जी फलां जगह एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं जो कि मतलब 2 अटैम्प्ट से वो सिर्फ इसलिए पेपर नहीं दे पा रहे कि उन्हें एग्जाम लीव नहीं मिल रही। तो एक तो बच्चों के लिए गाइडलाइन ये है कि जी आप ये जरूर थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें कि आप वहाँ इंडक्ट हों जहाँ पर आपको मतलब पढ़ने का मौका मिले। एटलीस्ट जो आपका राइट बनता है वो एग्जाम लीव तो आपको मिले, और आप कम से कम देखें एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स दैट वेदर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट। ठीक है, मतलब बिग फर्म का टैग होगा तो शायद मतलब कुछ बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली स्मॉल एंड मीडियम में रहकर भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो इट्स नॉट एक कोई हार्म नहीं है। मतलब और आप कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि हम कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे आर्टिकल स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म से हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट को इस चीज के ऊपर उसका बड़ा फोकस होना चाहिए। और दूसरी आपने बात की कि जी वो कहते हैं हमने ऑडिट में ही जाना है, तो ये बात भी अपने जहन से निकाल दें स्टूडेंट्स। आपको जिस जगह पे आपका फर्म चाहेगा वहां पर आपको अपने आप को फिट समझें, क्योंकि फर्म के लोग जो है ना वो 2 चीजें देख रहे होती हैं। एक तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना ट्रेनिंग का प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट माइंडसेट नहीं समझ पाता। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा एवेल्युएट करें कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मुझे ये टैक्स में झोंक दिया तो फिर मैं 4 साल टैक्स में बैठा रहूंगा। लेकिन मोस्टली फर्म ऐसा नहीं करती। मतलब स्टूडेंट का जो ट्रेनिंग है उसके अंदर वो तमाम जो एस्पेक्ट हैं किसी फर्म के अंदर वो उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। और इंटरव्यू के लिए जब आपने जाना है तो अल्टीमेटली ये जो हम टेस्ट ले लेते हैं या इस तरह की चीजें हैं, वो तो अल्टीमेटली जैसे असद भाई ने बता दिया कि शॉर्ट लिस्टिंग का एक तरीका है। अदरवाइज जो बच्चा कैफ करके आ रहा है, आई डोंट थिंक कि मैं उससे डेबिट क्रेडिट पूछना शुरू कर दूं। तो अल्टीमेटली जैसे जिशान साहब ने कहा है कि कॉन्फिडेंस होके अपना इंटरव्यू दें, तो उसमें ऐसी चीज नहीं है। और ये भी नहीं है कि जी आपने इंग्लिश में ही सारा कुछ जाना है। मतलब आपका हम मतलब मैं पर्टिकुलरली बच्चे को कभी ऑफर करता हूँ कि यार क्यों ना तुम्हारी
कोई साल 2 साल करा के ट्रेनिंग तुम्हारी जॉब करवा दी जाए तो फिर ट्रेनिंग उस तरह कर लेते हैं, तो कुछ बच्चे उस पर सोचने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे फौरन कहते हैं नहीं सर सीए करना है, जॉब का तो कोई इशू नहीं है। तो आपका एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए, और फर्म के अंदर रहते हुए जहां आपको फर्म के लोग डिप्यूट करें वहां पर आपको वो काम करना चाहिए। और अभी चूंकि इंस्टीट्यूट की नई स्कीम है तो उसके अंदर फाइनल एग्जाम भी 1 साल बाद जो है वो देना है, तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा इशू बनेगा बच्चों की ट्रेनिंग में। और साथ वो अगर फर्ज करें एक बच्चा पीछे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होके आ रहा है तो वो 3 या 4 पेपर ले रहा है, तो साल गुजरने का तो पता भी नहीं चलता इधर प्रोफेशनल फर्म के अंदर। आज दिसंबर में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि सारी जिंदगी के दिसंबर ऐसे गुजर गए हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज जो है ना ये चीज भी स्टूडेंट्स को मैनेज करनी है कि बजाय वेट करते रहें कि जी मेरा वहां हो जाएगा वहां हो जाएगा, आप पास होके निकले हैं तो फौरी तौर पर अपने आर्टिकल्स शुरू करें। ठीक है, अभी जो हमारे छोटे शहर हैं, मैं पर्सनली मुझे एक इशू आ रहा है, मुल्तान के अंदर किसी को आर्टिकल्स चाहिए लेकिन मुल्तान के अंदर किसी फर्म के अंदर कोई वैकेंसी जो है वो उनको नहीं मिल रही। आजकल काफ़ी इशू बना हुआ है। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे फैसलाबाद में अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वही बात की है कि कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के मुताबिक आप बच्चों को रख सकते हैं। तो बाकी बात ट्रेनिंग की जो है वो फर्म का एक अपना प्रोसीजर होता है, स्टूडेंट को चाहिए कि उस प्रोसीजर के मुताबिक अपने आप को वक्फ करें, जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप को डिस्पोजल पे छोड़ें पार्टनर्स की। पार्टनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना है, आपके अंदर एबिलिटीज भी क्रिएट करनी है, आपकी एजुकेशन का भी ख्याल रखना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्म। और आप बाहर मार्केट में जाके अच्छा नाम बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी फर्म जो है उसकी भी रेपुटेशन जो है लोग उसको देखेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको ख्याल रखना है कि हमें अपने आप को हर फील्ड के अंदर अपनी ट्रेनिंग जो है वो लेनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं कुछ ऑडियंस से भी क्वेश्चन लेना चाहूंगी। बिफोर दैट मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं आर फ्रॉम आर जो है वो पैनलिस्ट, जो भी उनको जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दैट इज बीइंग फीमेल। इसमें ये है कि हम कौन सी, सिंस आवर फीमेल स्टूडेंट्स आर आल्सो हियर, और ये बहुत स्मॉल नंबर है हम देखते हैं कि आईकैप के अंदर एज कंपेयर टू मेल, जरा इसको मेल डोमिनेंट प्रोफेशन समझा जाता है। उसके अंदर हमारी फीमेल्स जो हैं उनको क्या कल्चरल फिट होने के लिए, कल्चरली फिट होने के लिए इन फर्म उनको क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं, और दूसरा उनको क्या चीज़ें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए फर्म में इंडक्ट होने से पहले कि हम ये सिचुएशन, जैसे आई हैव सीन सिचुएशंस कि जहाँ पे फीमेल्स कहती हैं कि जी मैं तो बस 5 बजे अब चली जाऊंगी सिंस आई एम फीमेल। इस वजह से, इस तरह की एटीट्यूड्स की वजह से फिर अक्सर जब फर्म्स मैंने देखा है कि इंडक्ट कर रही होती हैं तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि अच्छा कोई मेल ही रख लें, वो कम से कम रात को 1 बजे तक भी बैठा रहेगा, दूसरी सिटी भी चला जाएगा, जबकि फीमेल्स को वो होती हैं। तो आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे फीमेल्स को स्पेसिफिकली, और कौन सी हिंड्रेंसेस हैं जो वाइल इंडक्शन उनको ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं एज कंपेयर टू बॉयज इन स्मॉल एंड मीडियम बिग एंड बिग 4 दोनों में? Thanks, Zainab. Well, Zainab, actually, you have highlighted that point कि जी एक जनरल परसेप्शन कि जी लेट सेटिंग्स और इस तरह की चीजें, they need to be open, because if they are going in a market, competing in a what do you call it, profession, तो CA में जितनी लेट सेटिंग होती है, आप डॉक्टर्स को कंपेयर कर लें, फीमेल्स आर वर्किंग देयर लाइक एनीथिंग एक्चुअली। और मेरे ख्याल में हमारे प्रोफेशन में फीमेल्स की इंटरेक्शन जिन लोगों से है, कंपैरेटिवली दे आर अ लॉट मोर लिटरेट एंड कल्चर्ड। आप डॉक्टर्स को कंपेयर करें कि वो किस किस सूरत हाल से गुजरते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर फेसिंग द पीपल हु आर not literate or not cultured, but they have a different pressure
उस वक्त इंसान को नहीं होता कि सामने खातून है या मर्द है। सो इफेक्टिवली एक तो मेंटली तौर पे दे नीड टू कम अप टू दैट स्टेट ऑफ माइंड कि जी हम कोई तीर नहीं मार रहे, ठीक है, वी आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट विच इज अ लॉट बेटर देन द प्रोफेशंस विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये भी गलत है कि जी फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, ठीक है। आई माई सेल्फ गिव यू एन एग्जाम्पल, मैंने टैक्स में पिछले आई थिंक 15 साल से आई हैव मेड इट मैंडेटरी आई डू इंडक्ट फीमेल स्टूडेंट्स। Secondly, not only that they are part of my tax, they are doing offshore secondments and everything. So I don't think so कि एक ये perception कि जी ख़वातीन खुद भी काम नहीं करना चाहती, I think that's there, and I have came across a lot of my students who have outperformed our male students actually. So एक तो ये perception भी change करने की ज़रूरत है। बाकी firms में we have very good culture, उसमें अगर कोई कल्चरल इश्यूज आएंगे वो सीए में भी आ सकते हैं, वो बाकी जगह पे भी आ सकते हैं। इट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ डिटर्मिन्ड यू आर, हाउ पॉजिटिव यू आर, और उसको हैंडल कैसे करना। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव विद अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम एक्चुअली। थैंक यू सर। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैनब। देखें जी, जब आपने इस प्रोफेशन में आपने एजुकेशन ली है, आपने आर्टिकल्स कर लिए हैं, उसके बाद इफ यू आर ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप जिस जगह पे भी जाके काम करेंगे, आपके नीचे कम से कम 15, 20, 25, 30 बंदे काम कर रहे होंगे, और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यू माइट योरसेल्फ, आपके नीचे कुछ लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे। और जब अगर हम यही डरते रहेंगे कि जी हमने लेट सीटिंग नहीं करनी, और हम इस डर से ही अपने आप को हर वक्त अंडर प्रेशर रखेंगे, तो फिर कल को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके लिए जॉब्स का भी इशू आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने जॉब में जाके 25-30 लोगों के डिपार्टमेंट को हेड करना है, बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो व्हाई नॉट आप अपनी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट करें। यू शुड, मतलब देयर शुड बी नो सेग्रीगेशन ऑफ मेल और फीमेल इन दिस प्रोफेशन। और ये वाली चीज किसी हद तक हमारे जो कॉलेजेस हैं उनको भी प्रमोट करनी चाहिए, कि उनको उसी स्टेज पे गाइड करना चाहिए। वो बच्चियां शुरू में आती हैं, वो खासकर सर्दियों में, सर वो अम्मी कह रही थी मगरिब से पहले घर आ जाना है, तो अब अगर आप मगरिब से पहले घर जाएंगी तो फिर मतलब जब आप क्वालिफाई कर जाएंगी फिर क्या होगा, मतलब वहां तो आपने सीईओ को रिपोर्ट करना है, और सीईओ होता है, उसके लिए मतलब मगरब और इशा इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो बच्चियों को जो इस फील्ड में आती हैं, उन्हें स्टार्ट से ही ये माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि दे नीड टू वर्क विद प्रोफेशनल। वो ये मत समझें कि हमने मेल्स के साथ काम करना है, वो अपने माइंड में ये रखें कि हमने प्रोफेशनल्स के साथ काम करना है। और बिल्कुल सही कहा जिशान भाई ने कि हमारे अगर हम लोगों के यहाँ ही कल्चरल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम आएंगे तो फिर बाकी तो पता नहीं माशरे का क्या हाल होगा। सो इसलिए बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ बच्चियों को आना चाहिए, और अल्टीमेटली अपने आप को फिट रखना चाहिए इस काम के लिए कि जी मुझे लेट सिटिंग भी करनी है, मुझे मेल्स के साथ काम भी करना। हाँ, बाज़ औक़ात हम देख लेते हैं कि यार फलां जगह पे कुछ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है क्लाइंट का, तो वहाँ बच्चियों को ना भेजा जाए। ये किसी हद तक हम ऑडिट के वक्त जो है या असाइनमेंट को एलोकेशन करते वक्त ये चीज़ें ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल बच्चियों को ये समझ के आना चाहिए कि हमने प्रोफेशनल्स के साथ काम करना है, मेल फीमेल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट खत्म करके आना पड़ेगा। थैंक यू। मुझे जो इस सारे से समझ आया इन सिंगल लाइनर कि अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो हमें अपनी साइड से भी इक्वल देना पड़ेगा इफ वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो कितना मैटर कर रही होती हैं एट टाइम ऑफ इंडक्शन, जब हम कंसिडर कर रहे होते हैं तो कितना मैटर करती हैं, कितना कंसिडर की जाती हैं इन अ स्टूडेंट के वो कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में है इन्वॉल्व। Okay. I'll narrate one thing. Sorry.
देखें, we all know two concepts. One is IQ and the other one is EQ. Okay. There is a study that a person with a good IQ, I mean, they can find solutions and everything, but the persons who have good EQ, those are the leaders actually. So we need to understand, I think, not only कि आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या कितनी जल्दी पढ़ लिया, एग्जाम्स पास कर लिए. Seriously speaking, I have preferred, I have been evaluating students. बेशक वो एक attempt ज्यादा करके आया हुआ है, sitting, both students sitting there, but he has outperformed in extracurricular activities. Because हमें किताबी कीड़ा नहीं चाहिए. Yes, CA हमने करना है, that's there, but we don't only want a qualified chartered accountant who doesn't know what to do afterwards, who doesn't know how to handle a team of 50, 100 people, who doesn't know to plan, who doesn't know how to behave in the circumstances where there are difficult times. So we need problem solvers. We don't need a person who come up with a problem and sitting, what to do now? So these all things matter to make you a good decision maker. And that's what we need. Thank you, sir. Now I would like to open the floor for questions. Any questions, please? सर ये आपसे सवाल है कि अभी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर का उसकी प्रेफरेंस शो किया उस पर. सर जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से हैं, मतलब उनका इतना एक्सपोजर नहीं रहा लाइफ में, और अब वो सीए में आ गए, कॉलेजेस में भी बहुत फुल टाइम स्टडी होती है, तो वो उनके लिए क्या सजेशन है, वो आप इस वक्त क्या करें? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल में 15 साल पहले तक पतंगबाजी बहुत की है. दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. ठीक है, तो इट्स नॉट कि जी आपको क्या क्रिकेट ही खेलनी है, हॉकी खेलनी है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. इवन इफ इट इज नॉट रिटन इन योर CV, it is reflected in your personality. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा बेसिकली सवाल ये है ना कि मतलब जिस तरह आपने बात की है कि जब हम किसी स्टूडेंट से पूछ लेते कि वो 5 साल 10 साल बाद अपने आप को क्या देखते हैं, तो मुझसे भी ये सवाल हुआ था. मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, उसका माइंडसेट ये है कि वो 5-10 साल बाद अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एक अपनी कंपनी होती या उसकी फैमिली की बिजनेस होती, उसको मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो इस फील्ड में मतलब इसको मतलब इंकरेज किया जाता है कि नहीं? वो मतलब इस तरह सोचा जाता है कि वो इस फील्ड से निकल के मतलब बिजनेस में चले जाते हैं. मतलब अगर एक बंदा है वो ऑडिट एश्योरेंस करना चाहते हैं ना, और फिर वो बाद में जाके वो बिजनेस में चले जाते हैं, तो इस ये आप इंकरेज करते हैं कि नहीं, मतलब इसको डिस्करेज किया जाता है? Okay. You want to answer? देखिए, जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, इसका कोई भी जवाब हो सकता है. जो एक इंटरव्यूअर है उसके जहन में ये होता है कि आप में क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है. आप अपना जो भी आपका फैमिली बिजनेस है, आप सीए बनने के बाद उसको भी नेक्स्ट स्टेप पे आगे लेके जा सकते हैं. तो जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए वो इसी क्लैरिटी के साथ है कि आपने सीए कर लिया, चाहे ऑडिट एंड इंश्योरेंस में आर्टिकल्स किए, टैक्स में किए, एडवाइजरी जिस भी डिपार्टमेंट में किए, हम अज्यूम करते हैं कि आप विद इन 3.5 years क्वालिफाई भी कर लेते हैं, और 3.5 साल में जो आपने सीखा है आप उसके बाद अपने फैमिली बिजनेस में लेके उसको अपनी क्वालिफिकेशन की बेस से कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं. तो मे बी कि दिस इज अ वेरी रेलेवेंट आंसर. बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हम सीए कर रहे हैं, और हम सीए इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना बिजनेस होराइजन वास्ट कर सकें, और उसके बाद जो हमारा फैमिली बिजनेस जो कि अभी एक कन्फाइंड लिमिट्स के अंदर है, उसे कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके. तो इट्स अ वेरी रेलेवेंट आंसर. It's doable.
अस्सलाम वालेकुम सर। सर Oh, my name is Farhan and I am from Ferguson, Lahore. I want to ask a question and it may be a little bit suggestion. Let's say 2% it might be a suggestion or 98% it will be a question. That from since my 10th standard, when I was in 10th standard, I started to go to मैं ये था कि CA में जाऊंगा, लेकिन कॉलेज में आए, कॉलेज में आने के बाद मेरे जो फेलोज थे वो यूनिवर्सिटी चले गए एंड मैं CA के इंस्टीट्यूट में आ गया। तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन है कि क्या कभी आइंदा चंद आने वाले सालों में क्या ICAP एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा या यूनिवर्सिटी बनने की तरफ जा रहा है या नहीं? क्योंकि जैसे कि प्रोफेशनल ग्रूमिंग और एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो यूनिवर्सिटी में कुछ सोसाइटीज़ होती हैं और वहाँ पर कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसे चल रही होती हैं जो स्टडी का पार्ट होती हैं। इट्स बीन 2 years के एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट से निकल के AFC एंड CAF 2 साल करता है और सिर्फ वो स्टडी करता है बुक्स को, और उसके साथ और कोई एक्टिविटीज नहीं है। जिसने 3 attempts में CAF करना है उसको दिन में तकरीबन 8-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा ये क्लासेस लेने के बाद, तो उसकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं ज्वाइन कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मे बी आगे जाने के बाद कुछ सालों के बाद क्या ICAP एक यूनिवर्सिटी बन सकता है या बनने जा रहा है या नहीं? I think I would request President साहब के इसको जो है respond करें, तो वो he'll be. We can ask this question. We will ask this question once President साहब will be here. ठीक है, thank you. सर बेसिक मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जैसे सर ने बताया कि हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए किसी एक जियोग्राफिकल एरिया तक, लेकिन सर जिस वक्त हम ग्लोबल मोबिलिटी की बात करते हैं, हम किसी दूसरे कंट्री की जॉब की वो एड्स देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि यार आपके आर्टिकल या आपका प्रेयर एक्सपीरियंस फ्रॉम Big 4 हो या Big 6 हो, तो सर ये चीज फिर हमें इसी तरफ खींचेगी ना कि हम ज्यादा कोशिश इसके लिए करें कि हम Big 4 में जाएं या Big 6 में जाएं। देखिए आपका पॉइंट Big 4, Big 6, 10, 20 जितना मर्जी इसको एक्सपैंड कर लें, ऑब्वियसली दे आर बिग। अगर उनको कहा जा रहा है तो there could be some reasons. It could be revenue, it could be the kind of services that they offer, the standing in the community and all those things. Yes, working for a bigger firm does give you a perspective, but we have so many fine examples of people setting up their own businesses, setting up with a single member firms, just one person, and going on to make it big. It's not really about being in that category of people. It's about experiences. And the way the world is moving right now, just go to freelancer.com, go to all those freelancing websites, and you will find out that you're actually competing against some of the firms that are doing the same job, right? You as an accountant can actually create your own profile, okay? And you can start bookkeeping for a client that is based in Jeddah, for example, right? And the same client, maybe some Arabi chartered accountant over there sitting in Jeddah is also trying to get the bookkeeping assignment for that particular client. We are becoming a global village. In fact, we are already a global village. And especially this COVID situation has, entirely diminished all those barriers and boundaries. So you need to bear in mind that आपके अपने अंदर का कोई डर है वही आपको रोकता है, इसके अलावा कुछ नहीं रोकता, right? The fear of failure, as I said, should drive you. ये कोई ऐसा point नहीं है. मैं आपको अपनी firm के अंदर, I know people, I'm obviously not going to name people, but we have people who were दर्जी का बेटा था वो, दर्जी का, and I interviewed that guy 6 years ago. Today he's a manager in EY Dubai. He's a chartered accountant. ठीक है, उसका इंटरव्यू पहला मैंने लिया और उसने मुझे रटे हुए सवालों के जवाब दिए थे सारे, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड ऐसा ही था, टेलर शॉप. एंड ही वाज सो एम्बैरेस्ड टू से, क्योंकि जनरली पहला सवाल यही होता है ना, HR वाले पूछते हैं कि यार अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ या अपना डिस्क्राइब योरसेल्फ. ही वाज सो एम्बैरेस्ड कि वो ये नहीं बता पा रहा था कि मैं एक दर्जी का बेटा हूँ. ठीक है, आज वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, EY दुबई में वो ऑडिट मैनेजर की पोजीशन पर काम कर रहा है. तो कहने का मकसद ये है कि यार ये जो इनहिबिशंस हैं ना, जो हमने अपने अंदर खुद बनाई हुई है दिमाग में, ये कुछ नहीं है.
You have to break these barriers. And same goes for the female question, जो अभी हम जीशान जिसका जवाब भी दे रहे थे. ये inhibitions आपके अपने अंदर हैं, ये barriers आपके अपने अंदर हैं. You have to break those ceilings. Sky is the limit. Honestly, the way the world is going, मैं तो ये देखता हूँ, as मुझे बार-बार young कह रही हैं ज़ैनब, और मैं young नहीं समझता अपने आप को. I keep telling my staff that educate me. आप लोग नया पढ़कर आए हो स्टैंडर्ड, आप लोग नई चीजें सीख कर आए हो, आप लोग टेक सेवी ज्यादा हो, हमें आपसे सीखना चाहिए. इट्स द अदर वे राउंड राइट नाउ. जवानों को पीरों का उस्ताद कर, किसने कहा था? अल्लामा इकबाल ने कहा था. तो कोई वजह थी कि कहा था. ही द गाय हैड अ विजन. So you need to understand this, that you guys are the future of this profession. You guys are also the future of this country. तो अगर आप अपने अंदर इन्हीं इनहिबिशंस को रखेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. ग्रो उसी वक्त करते हैं जब आप अपने अंदर से fear of failure को निकालते हैं और ग्रो करते हैं. थैंक यू सर. बेटा मुझे ऐसे लगता है कि ये इनोवेशंस करंटली हमारे स्टूडेंट्स में थोड़ी ज्यादा आती जा रही हैं. अगर आप इफ यू लुक एट द पास्ट, तो जैसे भी एक बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल का क्वेश्चन भी किया, तो हम इस वक्त अपनी ब्यूरोक्रेसी में देखें तो कितने सारे लोग हैं जो एट टॉप लेवल पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, और वो लिटरली गवर्नमेंट स्कूल्स भी वो जो पहले होते थे टाटों वाले, उसमें बैठ के पढ़ के आए हुए हैं और उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है या कोई इश्यूज नहीं है. लेकिन आजकल की जनरेशन हमारी जो है वो पहले इफ्स एंड बट्स देखती है, और ये नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये वो, उससे वी नीड टू कम आउट ऑफ इट. और हमें ये देखना है कि हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए, बस जहन में ये होना चाहिए कि वी नीड इट, ये हमारा गोल है. उसको अचीव करने के लिए रास्ता फिर आप देखना शुरू करें. पहले देखेंगे कि नहीं जी यहाँ पे भी ये स्टॉप है, यहाँ पे भी स्टॉप है, हम तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर यू कैन नेवर रीच दैट. सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था. मैंने जब बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद के कहीं से कॉल नहीं आ रही, मैंने कुछ एचआर के पर्सन्स को अप्रोच किया, कुछ पार्टनर्स को अप्रोच किया कि मुझे चांस दे इंटरव्यू में कुछ बोलने का, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का. तो उसमें ये हुआ कि मैंने, क्योंकि अप्लाई कराची की फर्म्स में किया, मैंने स्टडी जो है कैफ पूरा मेरा कराची से ही है. तो जिस वक्त मैंने उन्हें अपनी सीवी सेंड की, उन्हें अपना रिज्यूमे सेंड किया, तो उन्होंने मुझे 2 रीजंस दिए कि शॉर्टलिस्ट ना होने के. उन्होंने कहा मे बी यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड बिकॉज there are someone who is better than you, who has a better academic background than you, maybe he has some OA and A level. और second reason उनका ये था कि you are not falling under our jurisdiction, you are from Gujranwala, you are from you fall under Lahore offices. तो सर ये कितना सच है और ये कहाँ तक आता है? और मैं मतलब ये अच्छी बड़ी फर्म के सर पार्टनर के साथ मेरी चैट थी. I think जो आप पहली बात कर रहे हो ना कि perhaps the other your competitor candidate is better than you professionally, तो अगर आप दूसरी साइड पे बैठे होगे you will definitely opt for that. ठीक है. As far as jurisdiction is concerned, I think that somebody is misguiding you on that. I mean, this should not be the case actually. थोड़ा सा इसमें 1-2 चीजें मैं ऐड करना चाहूँगा. जब आप हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं मैट्रिक बैकग्राउंड या ओ लेवल ए लेवल के बैकग्राउंड से. ओ लेवल्स या ए लेवल्स ये आपको क्या कटिंग एज देता है? कम्युनिकेशन, फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन, या इसके अलावा कुछ और भी? आपको सबसे पहले फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना है. जो सबसे पहली प्रेजेंटेशन मिस अबीरा की थी उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यही रेज किया कि आपका बैकग्राउंड अगर ओ लेवल्स या ए लेवल्स का है तो सिर्फ आपको एक ये अगले इंटरव्यूअर के दिमाग में बात आएगी कि हाँ ये इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत फ्लुएंट होगा. अगर आप इससे 1 मिनट के लिए बाहर निकल आते हैं तो फिर आपके किसी भी क्रेडेंशियल का ओ लेवल या ए लेवल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. और जब आप एक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सिर्फ आपका फैब्रिक देख रहा होता है कि फर्म में ये कितना सिंक करेगा, और जो सीवी आपने दिया है और जो पर्सनैलिटी जो आप एग्जिबिट कर रहे हैं उसके सामने अपने इंटरव्यू के दौरान, उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है. बाकी ये डूइंग योर ओ लेवल्स और ए लेवल्स फ्रॉम अ लीडिंग स्कूल और डूइंग योर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट स्कूल, इट डजंट मेक रियली एनी डिफरेंस. Now coming to towards now this will be the last question, as we have already parked one question for President Saab. Assalamu alaikum sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि many of the big firms, I'm not going to name them, they delay the registration period
जो कि ICAP ने 2 months का रखा हुआ है, they waste the students' time. So this is a very crucial time period. They even delay to 8 to 1 year, 8 months to 1 year. तो ये बहुत बड़ा गैप है जो कि बहुत ज़्यादा फर्म्स कर रही हैं. Big 4 में तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होता, लेकिन बाकी जो Big 10 जो अंदर आ रही हैं वो भी कर रही हैं. तो इसका क्या रीज़न है? ये इसको जो फर्म्स हैं उनको काउंट करना चाहिए. इस जो भी उनका मंथ्स जब से वो रजिस्टर हो रहे हैं तब से ही करना चाहिए. तो इसके बारे में आप सारे Big 10 के अंदर जो पार्टनर्स हैं, आप लोगों का क्या है कि ये इस तरह होता है और आप लोगों की क्या एक्शन है इसके खिलाफ? You rightly Over said. I mean, I don't recall Big 4 में तो as such नहीं हो रहा. Not I don't recall that, and that has been a practice. Although शायद you go back 25 years back, I was affected by this practice, but this has not been the case in last 15-20 years. Baki, I think there might be from the SMP perspective. Anybody wants to? मेरा ख्याल है एसएमपी में तो हायरिंग फॉरन होती है. जनरली मुझे इस तरह के इंस्टेंसेस नहीं मैंने कभी सुने, मगर जो आपको इस तरह के इंस्टेंसेस मिलते हैं, आई थिंक द रेलेवेंट स्टूडेंट शुड रिपोर्ट टू ICAP. ठीक है ना, तो उस पर ही एक्शन हो सकता है ना. मतलब वी कैन नॉट टॉक अबाउट आइसोलेटेड इंस्टेंसेस. आप देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट. सो जो भी एग्रीव्ड बच्चा है वो ICAP को रिपोर्ट करे और द एक्शन वुड बी टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव टीम इन दैट पर्सपेक्टिव. And now coming towards our last question. Now, please, on Abdullah Saab's request, or since we haven't taken any question from females. Team here, Assalamu alaikum to everyone. Sir, actually I visited to a firm जहाँ पे मेरा जो इंटरव्यू है पार्टनर ने लिया, एंड उनके फर्स्ट इंप्रेशन से आई फेल्ट लाइक कि पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा शायद रूड होते हैं या लाइक नेगेटिव थॉट्स अबाउट देम. बट व्हेन आई मीट ऑल ऑफ यू आई फेल्ट लाइक देयर इज़ अ लॉट मोर टू लर्न, एंड every one of you like give very positive vibe about like that when I will go in the firm I will definitely learn a lot of things. Actually शायद ये भी reason हो सकता है कि मेरी attempt ज़्यादा थी और maybe partner के पास और शायद अच्छे students available हों, but I think कि कोई भी दूसरा student जो है वो जो मैंने सीखा है इस टाइम में वो कोई और दूसरा स्टूडेंट जो है उसने शायद वो चीज़ें लर्न नहीं की होंगी, क्योंकि मैंने अपना ये टाइम पूरा ये अटैम्प्ट शायद ज़्यादा हो गई हूँ, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, अपने डिफरेंट जॉब्स के थ्रू सीखा. और जो है लाइक जब मैं यहाँ पर आई तो आई थॉट कि शायद कोई पार्टनर को मैं रिक्वेस्ट करूं और वो जो है वो मुझे फर्म में जो है वो चांस दे. बट जब आप सबकी बातें सुनी तो मुझे यही समझ में आया कि नहीं, when I think when I am confident and I am capable of doing it, तो चाहे छोटी फर्म से हो चाहे बड़ी फर्म से हो, ठीक है, I will put on my efforts, I will look for reference, तो सब कहते हैं, लेकिन मेरी first priority यही थी कि I don't want any reference, I want to go on basis of what I have achieved in this time. I have like done a lot of work, जैसे कि मैंने as an instructor भी student से communicate किया, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन अटेम्प्ट्स जो है वो कभी भी जो है मैं उसको जो है रुकावट नहीं बनने दूंगी. मैंने आप समझ सकते हैं कि बीइंग फीमेल स्टूडेंट पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि जल्दी स्टडीज कंप्लीट करें, शादी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अगर हम जो है वो डिटर्मिन्ड है एंड वी वांट टू डू इट, तो हमें कोई चीज़ भी जो नहीं है रोक सकती कि हम अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर सके. थैंक यू. So I think कि अगर if we are able to convince, our panelists are able to convince even one student, so we have achieved pretty much our objective. Please, हमने एक question पास किया था for our president साहब, ये आप student को दे दें, वो अपना question repeat कर दें, and then I would like Mr. President to respond to it.
repeat my question. And it was my wish that I could be able to ask a question from the highest rank in the ICAP. So I am going to ask my question from President ICAP that ऐसा है कि हमारे पास जैसे CA के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ICAP से बिल्कुल अलग, तो जैसे इंटरमीडिएट के बाद हमारे जो फेलोज होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वो उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनकी स्टडी का पार्ट होता है, उनकी सोसाइटीज़ होती हैं, वो अपने इंडिपेंडेंटली कोई ना कोई फंड्स चला रहे होते हैं और ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिनसे उनको मैनेजमेंट आती है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ICAP, मेरा 2% सजेशन एंड 98% ये क्वेश्चन है कि क्या आगे चल के 15 ईयर्स और 10 ईयर्स में क्या ICAP भी एक यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है या नहीं जा रहा है? Now I would request Ms. Fajr कि मेरा ख्याल है she should invite Mr. President for answering this question and his note. Thank you so much, everyone. This was a very insightful session indeed. Sir will address your question in the chief guest address till he give. For the shield distribution now, I would like to request President ICAP, Mr. Iftihar Taj, to please come forward. Abdullah Fahad Masood, please come forward. Zishan Ijaz. Amin Ali. Asad Feroz. Our moderator for the panel, Ms. Zainab Mubarak. And Junaid Subhani sir, we have your shield and we'll give it to you when we see you in person. Ladies and gentlemen, it's time for the chief guest address. Mr. Iftihar Taj is President ICAP and has more than 25 years post-qualification experience in industry. And he's been a true mentor for everybody. You can always reach out to him. And he has trained over more than 500 directors on corporate governance. Please welcome him with a round of applause. Thank you, Fajr. Thank you very much. Before answering to the questions, I like to thank everybody whosoever participated on this site. And they have put up a very good show, I believe, for all the students, and you must have gained something out of it. Being president, I like to thank everybody in the first panel in the first place. Miss Abira, Miss Umama, Miss Saleha, Miss Heba, and the moderator, Miss Mehreen. And in the second panel as well, Asad Feroza, Zishan Ijaz, Amin Ali, and Abdullah Fahad sir, and
moderator Zainab, she has done very well. What else? And Junaid, yeah, he was online. You're right. Thank you. And Fajr, to you as well. You have done a great job. Everybody has done a great job. I like it. To start with questions, first of all, एक question ये था कि ICAP कभी भी यूनिवर्सिटी बनेगा या नहीं बनेगा, नेवर। ये बेसिक चीज है, जहन में रखें, हम कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है जहां कोई 4 बंदे या 10 बंदे या 20 बंदे मिलके ये फैसला करेंगे हमें यूनिवर्सिटी बनना है, कॉलेज बनना है या इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए आईकैप को क्रिएट किया हुआ है, हमारा एक सर्टेन फंक्शन है। 1961 में जब इसको क्रिएट किया गया था, इसका रोल है रेगुलेटर ऑफ अकाउंटेंट्स, दैट प्राइमरीली मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंट्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका रेगुलेटर का हमारा रोल है। हमारा रोल है एग्जामिनेशन बॉडी का। तो ये 2 रोल है। स्टेट जब इसमें चेंज नहीं करती, जब तक हमारे रोल को यही रोल रहेगा। हम उस लॉ के तहत है, दैट इज अ स्पेसिफिक लॉ, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग एंड वी वुड नॉट लाइक टू चेंज एनीथिंग, नॉट इवन मेक एन एफर्ट। इसी रोल को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं उसकी तरफ जाएंगे। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, रजिस्ट्रेशन लेट होती है, तमाम फॉर्म्स में होती है, ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जहां नहीं होती। पर क्यों होती है? आप लोग सिफारिशें लेके आते हैं, आप लोग उस वक्त मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, हमें रख लें चाहे 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन दे दें, हमें रख लें चाहे 1.5 साल बाद रजिस्ट्रेशन दे दें। आई हैव सीन पीपल व्हेन आई टॉक टू पार्टनर्स ऑफ अदर फर्म्स, आई आस्क देम कि यार ये एक बड़ी कंप्लेंट आती है स्टूडेंट्स की, उनके मजबूर करते हैं, क्या करें? आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे 4 सीट्स पड़ी हुई हैं, 4 लोग ही बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते 5। जब सारे मिलके कहेंगे जी एक बंदा, तो फिर यही कहेंगे ना क्यू में लग जाए, और तो कुछ नहीं हो सकता। सीट्स तो 4 ही हैं, बैठ तो 4 ही सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यही फर्म्स की सिचुएशन भी है कि फर्म में लिमिटेड सीट्स हैं, उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर रह के उन्होंने रजिस्टर करना है। आईकैप डज नॉट अलाउ अ फर्म, अगर उसके पास 70 की कैपेसिटी है और 70 रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, तो 71st नहीं रजिस्टर हो सकता आईकैप के साथ। समटाइम्स यस, फर्म्स ये अलाउ करती हैं कि ठीक है आप आगे हैं, आप अच्छे भी हैं, मगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, आप बैठें। उसको बैठने की भी कॉस्ट फर्म बियर कर रही होती है। ये मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट से मुफ्त काम लिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना पड़ता है भाई। आज से 30 साल पहले मुझे एक वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त आईकैप के, उन्होंने मुझे कहा कि आई वाज जस्ट आर्टिकल्स कंप्लीटेड, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये समझते हैं कि हम स्टाइपेंड कम देते हैं, हम आप लोगों से फ्री काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कॉस्टिंग की हुई थी, पहले साल स्टूडेंट पे क्या कॉस्ट आती है, दूसरे साल क्या आती है और तीसरे साल क्या आती है, और बेनिफिट क्या मिलता है। यू इमेजिन कि आपके पास एक ऑफिस है, उसमें आपने 20 सीट्स लगाई हुई हैं, अरेंजमेंट है टेबल का, तो 21st कैसे आके बैठेगा वहां पे? 21st की अगर आप कैपेसिटी करेंगे क्रिएट, तो उसकी कॉस्ट आनी है फर्म को भी। फर्म इनटू सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये लैब नहीं है आपके लिए। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे होगी, मत ज्वाइन करें ऐसी फर्म। क्यों करते हैं? जो लेट करती है रजिस्ट्रेशन, जो साल लगाती है, इसमें मत करें ज्वाइन उसे। आज भी जब हम देखते हैं, कल मेरे पास डेटा आया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं कैफ के सिटी वाइज जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं हुई, आर्टिकल्स नहीं मिले, फॉर्म नहीं शुरू की। उसके साथ एक और मैपिंग आती है कि इतनी फॉर्म्स में इस शहर में इतनी कैपेसिटी मौजूद है एंड फर्म्स वांट टू हायर देम।
आप लोग उस वक्त करते ये हैं कि जी मैंने तो नहीं जाना इस छोटी फॉर्म में, तो मत जाएं भाई। आपने डिसाइड किया था आपने सीए ज्वाइन करना है, आपने आज फैसला किया मैंने छोटी फॉर्म में नहीं जाना, मत जाए। इट इज योर लाइफ, यू विल डिसाइड। बट अगर आप सीए करने आए हैं तो सीए की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको आर्टिकल स्टूडेंट होना चाहिए, आपका 1.5 साल कंप्लीट होना चाहिए, देन यू कैन अपीयर इन द एग्जाम। तो पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी करें, छोटी बड़ी तो बात की बातें हैं। मुझे बताएं आज 33% पे लोग पास होते हैं इंटरमीडिएट में, क्या 40% वाले को केई में एडमिशन मिल जाएगा मेडिकल में? क्या 70% वाले को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा? तो भाई मेरिट आपने अचीव करना है। इट इज योर जॉब, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी किसी और ने नहीं लेनी। आई कैप भी आपको फैसिलिटेट कर रहा है, मगर जिम्मेदारी नहीं ले सकता आपकी कि आपको आर्टिकल्स मिलेंगे और सबको मिलेंगे और सारे को बड़ी फर्म्स मिलेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। देयर इज अ कैपेसिटी, देयर विल ऑलवेज बी सम मेरिट। उस मेरिट के ऊपर आएंगे तो आपको वहां मिलेगा। एचआर ने भी आज बताया, पार्टनर्स ने भी बताया, just number of attempts is never the criteria for any firm, just number of attempts. मैंने खुद ये किया हुआ है कि 3 अटेम्प्ट्स वाले को रिजेक्ट किया, 5 वाले को रखा। We are hiring a brand in firms. Brand has a personality. He should be able to speak at least. He or she must demonstrate confidence. आज मुझे बताएं, मैं पार्टनर्स को अभी उधर बैठे हुए थे हम, मैं कह रहा था यार मुझे जो आज लोग आए हुए इनमें से कम 1 स्टूडेंट लेना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आप में से कितने लोग हैं जो आज तैयार करके आए अपने आप को आए हुए हैं कि आपने इंप्रेस करना है? यहाँ एचआर भी बैठा हुआ था, यहाँ पार्टनर्स भी बैठे हुए थे। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रेडी कि जी जब मैंने आज इंटरेक्ट करना है, मैं सामने बैठा हूँ 4 घंटे तक, तो मैंने इंप्रेस करना है। 2 या 3 पहली रो को छोड़ दें, ये तो ऑलरेडी या क्वालिफाइड है या आर्टिकल स्टूडेंट है। आप लोगों ने कितनी एफर्ट की? तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड फॉर आर्टिकल्स एज वेल, कि आप जा रहे हैं, आप आर्टिकल्स लेने हैं, आपने इंप्रेस करना है। एंड इंप्रेस डज नॉट मीन कि आप आगे बैठे हैं, अगले ने क्वेश्चन किया आपको और आप शुरू हो गए जो आपने रटा हुआ था। कल मैंने एक साहब को इंटरव्यू किया और उनसे मैंने पूछा कि जी सीवी, मैंने उसका उलट दिया, उससे मैंने पूछा कि जी अपने बारे में कुछ बताएं। उसने वो सब कुछ मुझे बताया जो सीवी में लिखा हुआ है। मैं क्या करूं, वो तो मैं पढ़ चुका हुआ हूँ, एचआर भी देख चुका हुआ है, इनिशियल इंटरव्यू भी हो चुका हुआ है, मैं तो वो जानने नहीं चाहता। तो जिसमें ये सेंस भी नहीं है कि मुझे वो बात नहीं करनी, कोई डिफरेंट बात सुनना चाह रहे हैं, इसके अलावा मेरा सुनना चाह रहे हैं, मैं उसे क्यों रखूंगा? अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन तो कर दिया गलती से। He spoke about 10 minutes और पता नहीं क्या बोला। और फिर मैंने उससे पूछा कि ये जो तुमने मुझे कहानी सुनाई है क्या वजह? उसने कहा हमें बताया गया है आपने 5 मिनट में इंप्रेस करना है। तो मैंने कहा इंप्रेस का ये मतलब तो नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आए बोलते जाओ। उस देख तो लो जो सामने बैठा है वो क्या सुनना चाह रहा है। इंप्रेस तो फिर होगा ना बंदा, वरना तो नहीं हो सकता। आपको लगता है जब आप इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो आपको जो कुछ आता है वो सारा बोल दे, दैट इज नॉट ट्रू। इट शुड नॉट बी द केस। द रियल रिक्वायरमेंट इज कि जो फर्म उस साइट पे है और जो पार्टनर या जो भी रेलेवेंट इंटरव्यूअर है वो आपको इंटरव्यू कर रहा है, वो क्या चाह रहा है आपसे। उसने अपनी फर्म के अंदर लेके आना है आपको। 3.5 साल अपने इन्वेस्ट करने हैं आपके ऊपर। आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है टू ट्रेन योरसेल्फ। वो क्या चाह रहा है वो आप भी सोचते, उसको सोचे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अनप्लेजेंट लगेंगी ये चीजें, रियलिटी यही है। इग्नोर करेंगे अपना नुकसान करेंगे। एक और बढ़िया इशू आता है, अबीरा ने भी इसको रेफरेंस किया था यहाँ पे डिस्कशन में। अजीबोगरीब सीवी होते हैं बहुत, मोस्टली सीवी, मोस्टली ईमेल एड्रेस बड़ा अजीब सा होता है।
भाई अपने नाम का ईमेल बना लो ना यार, कम से कम ईमेल्स में भी सर्च करें तो नाम से सर्च तो कर सकें अगर कोई याद रह गया नाम। आपका जो सीवी आता है जनरली ईमेल में अगर आता है तो उसका फाइल नेम बड़ा अजीब होता है, अपने नाम से बना लो ना, आसानी पैदा करो एचआर वाले के लिए ताकि आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो सके। आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जब आप सामने भी नहीं मौजूद, आप बात भी नहीं कर सकते, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए। इट कैन बी शॉर्टलिस्टेड। एक मिथ है विच इज नॉट अ रियलिटी कि लोग सिफारिशों पे रखे जाते हैं। तो क्या सिफारशी लोग काम भी कर सकते हैं? सिफारिश का मतलब तो ये है ना विदाउट मेरिट, तो काम कौन करेगा उनकी जगह पे? दैट इज नॉट ट्रू। और ये इतनी आपके माइंड में डाल दी गई है चीज इतनी ज्यादा कि इवन मेरे ही एक आर्टिकल स्टूडेंट ने मुझे कहा, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, हम खाने पे थे उसके बाद, कि जी एक तो स्टूडेंट्स को सिर्फ फर्म्स जो है ना सिफारिश पे रखती हैं। मैंने कहा तुम्हें मैंने जब रखा था तुम्हारा कोई रेफरेंस भी था उस वक्त फर्म में? सिफारिश तो बड़ी दूर की बात है, सिफारिश तो विदाउट मेरिट होता है। उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट? कम से कम आप तो नहीं ये कह सकते। देयर आर सो मेनी पीपल, I would say very comfortably 95% of the people are without even reference and सिफारिश in any firm। क्योंकि उसने फर्म चलानी है, वो आपकी ट्रेनिंग के लिए नहीं फर्म बनी हुई, उसने फर्म चलानी है, उसने सर्विस देनी है, उसने डिलीवर करना है। सीवीज का अबीरा ने भी कहा था जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतना मुश्किल होगा। एक साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसने लिखा हुआ था एम्पैथी, आई वाज वेरी हैप्पी यार, चलो अच्छी चीज है ये, पर्सनालिटी अच्छी होगी इसकी। मैंने उससे एम्पैथी का मतलब पूछा, उसने पता नहीं क्या बताया, एम्पैथी के अलावा वो कुछ और ही था। तो ये कॉपी पेस्ट वाली सीवी भी नहीं होनी चाहिए। कर ही लिया कॉपी तो डिक्शनरी में मीनिंग देख लें यार उसका। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री में भी इस वक्त आर्टिकल्स हो रहे हैं, फर्म्स में भी हो रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहली कि आपको आर्टिकल्स मिलें और उसके बाद आप एग्जाम दे सकें। चार्टर्ड अकाउंट तो तभी बनेंगे, वरना तो नहीं बन सकते। इसमें तो कोई और तरीका नहीं है, वरना और काफी सारी क्वालिफिकेशंस है आर्टिकल्स के बगैर, वो कर लें। और हमने तो अब ये भी कर दिया OHEC से अप्रूवल करवा के कि आप कैफ के बाद BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। बट अगेन देयर विल बी मेरिट, एवरी यूनिवर्सिटी हैज देयर ओन मेरिट। आज अगर हम चाहें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी इन लाहौर इज कंसिडर्ड लम्स, के लम्प से हमने कर लिए है तो हमें बाकी यूनिवर्सिटीज भी डिग्री बांट दे, तो वो तो नहीं होता। हर किसी का अपना मेरिट है, हर फर्म का अपना मेरिट है। हर फर्म ने अपने क्लाइंट प्रोफाइल देखना है, हर फर्म ने अपना कल्चर देखना है, उसके बाद आपको रखना है। आई वॉज टॉकिंग टू सम पार्टनर और उनसे मैंने कहा यार समटाइम ये सुनने में आता है कि जी आप 10 अटेम्प्ट्स वाले को आपने रख लिया, 4 वाले को नहीं रखा, इसकी क्या वजह होती है? उसने कहा जब एडवाइजरी में हम रखते हैं तो वहां हमारे थोड़ी सी चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहां नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बजाय हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इसकी ड्रेसिंग कैसी है, इसकी वाइब्स कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव है कि नहीं, प्लेयर ऑफ प्रेजेंस है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये सारी चीजें आपने डेमोस्ट्रेट करनी होती है। वो कहते हैं उस वक्त हम अटेम्प्ट्स को साइड पे करते हैं, बाकी चीजों पे फोकस करते हैं एंड देन वी हायर। अगर आप उस स्टेज पे फर्म में गए हुए हैं और आपके अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जब वो एडवाइजरी की रिक्रूटमेंट कर रहे थे तो आपका चांस बन जाएगा। कोई सिफारिश नहीं चाहिए उसमें, आपके अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे बड़ी सिफारिश कोई हो ही नहीं सकती। और ये कहना गलत है कि कैटेगरी A, B, C, ICAP does not recognize any category. We do not recognize any big for small firm. Firms are firms. Firms का एक ही स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ एज ICAP कि QCR रेटिंग उसके पास है या नहीं। That's the only standard we have. And it does not mean कि जिस फर्म ने QCR नहीं करवाया हुआ वो फर्म अच्छी नहीं है, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। उसकी नहीं नीड होगी, उसने नहीं करवाया। बट QCR का मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई लिस्टेड कंपनीज भी हो सकती है, कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी हो सकती है, लार्ज एंटिटी भी हो सकती है ऑडिट के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर QCR के बगैर नहीं वो ऑडिट कर सकते।
स्टार्ट विद योर सीवी प्लीज, फॉर गॉड सेक। जो दूसरी साइड पे बंदा बैठा होता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता। उसकी ख्वाहिश होती है कि जो मैं पहले ही बच्चे इंटरव्यू कर रहा हूं, इन्हीं में से कोई अच्छा मुझे मिल जाए। दे आर स्ट्रगलिंग टू हायर गुड पीपल, स्ट्रगलिंग। ऐसे नहीं इतना मैकेनिज्म फर्म के अंदर बनाया होता। ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है अच्छे बच्चे मिल जाएं। अच्छे बच्चे में अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छा सीवी हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, तमीजदार हो, पॉजिटिव माइंड हो, एटीट्यूड पॉजिटिव हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो जब पता चलता है 5 स्टूडेंट रखने हैं या 50 रखने हैं और डबल आगे हुए हैं, तो फिर इनमें से देखते हैं यार पोटेंशियल किसका, जो क्वालिफाई भी करेगा कल को, प्रायोरिटी वो आ जाएगी। सो देयर आर लेयर्स। आपके एफटीएस नंबर क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने क्या की, आपकी सीवी की प्रेजेंटेशन कैसी है, जब आप आए तो आपने कैसा बोला, वहां पे कैसी परफॉर्मेंस दी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं उस वक्त। लाइक मैं अगर पूरे हॉल में देखूं, मुझे 5-1 स्टूडेंट्स के अलावा नजर ही नहीं आ रहे जो आर रियली प्रिपेयर्ड कि हाँ जी आज ही हो सकता है हमारी आर्टिकल्स हो जाएंगे। हालांकि आज वो दिन नहीं है, बट स्टिल पार्टनर्स, एचआर सारे तो यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो इंप्रेस करने का टाइम है। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज ऑल ऑफ यू, एक तो नंबर 1, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। योर कमेंट्स वर वेरी वैल्यूएबल। मुझे उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट। दूसरा, मैंने मोस्टली ऐसे इवेंट्स में देखे, अभी टी वगैरह बाहर लगी होगी, सारे स्टूडेंट्स उसमें बिजी हो गए। भाई आप किस लिए आए हैं? आप चाय भी नहीं आए हैं? आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो पार्टनर्स है, लेना इनका टाइम, जाएं इनको मिलें, इनको दिखाएं अपने सीवी के, जी हमें गाइड कर रही है, सीवी में ये खराबी है, वो खराबी है, क्या इशू है, हमें क्या करना चाहिए। डोंट आस्क फॉर द आर्टिकल्स, वो अपना एक क्राइटेरिया, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू होगा। और गाइडेंस तो आप ले सकते हैं। कहां आपको इतने सारे पार्टनर्स मिलेंगे? तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये चाय वाय तो मिल जाएगी, ये तो मिलनी ही मिलनी है। और जब आप उनको पकड़ेंगे तो उन्होंने भी पीनी है, तो आपके साथ ही पी रहे होंगे, आप भी पिए, वो भी पिए। बट you have to be realistic about yourself and honest to you and sincere to you. किसी ने कहा कि यार वो फलां बंदा जो है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। मैंने कहा बनना चाहता तो एक ख्वाहिश का नाम है, काम भी कर रहे हैं उसके लिए, एफर्ट भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं उस तरह से। बनना चाहना क्या होता है? वो तो हर बंदा बनना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर हम बनना चाहते हैं तो क्या हम पॉलिटिक्स में भी गए हैं या नहीं, या वैसे ही पहले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाने? With that realistic things, now if you have any question, I am available. मैं जनरली ये कहा करता हूँ, और IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के कमेटी में भी हूँ मैं। वहाँ पे हम डिस्कस किया करते हैं कि आगे रोल चेंज हो जाएगा CFO का। तो हम एक टाइम पे ये डिस्कस कर रहे थे, ये टाइटल क्या होना चाहिए, क्या ये फिर भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होना चाहिए? एंड वी काइंड ऑफ कंकर्ड इन दैट पर्टिकुलर कमिटी एंड दैट पर्टिकुलर सेशन कि इट विल बी चीफ वैल्यू ऑफिसर, जिसने वैल्यू क्रिएट करनी है। So, my dear Fajr, as president, I don't believe I am a chief guest. I think I am a chief accountability officer. So, I am the most accountable in ICAP right now. I am here for your accountability as well. You can ask me any question. Anybody. I love you all if you don't ask me, but you can ask me. मैंने सब कुछ कह दिया। नहीं, क्वेश्चन पे डांटनी पड़ेगी। अपने आपके साथ सिंसियर ना होने पे आपको पड़ेगी कि यार क्या करते हैं, खुदा का खौफ करें। माय नंबर इज देयर, एनीबॉडी कैन मैसेज मी फॉर एनी गाइडेंस, एनीथिंग। यस प्लीज। अगर किसी की थोड़ी सी आवाज नहीं आपकी आ रही, माइक ऑन कर लें। आपने अभी प्रेजेंस ऑफ प्लेयर की बात की है। अगर किसी की थोड़ी सी हार्श पर्सनालिटी है, मतलब वो इंट्रोवर्ट टाइप है, थोड़ा सा, मतलब इंट्रोवर्ट और हार्श डिफरेंट चीजें हैं ना। थोड़ा सा लाइक आपकी ना हार्श है ना इंट्रोवर्ट लगती है।
काम से काम रखना, कोई ज्यादा लोगों को उसमें कुछ गलत नहीं होता। प्लेयर ऑफ प्रेजेंस का मतलब यह कि नेगेटिव वाइब्स ना आ रही हो। एक बंदा सोचता ही सिर्फ नेगेटिव है तो क्या उसकी पर्सनालिटी बनेगी? सर नहीं, प्लेयर वाइब से मतलब ये भी है कि आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हैं किसी के साथ बैठकर। हाँ, मगर बाकी भी तो सारी चीजें हैं ना, वेटेज है ना हर चीज की एक सर्टन। मगर मुझे आप बताएं कि एक बंदे के साथ आप नहीं बैठना पसंद कर रहे हो उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, क्या आप उसके साथ दोस्ती करेंगे? नो सर। क्या उसको काम असाइन करना पसंद करेंगे? नो सर। तो यही फर्म्स कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं यार सर जो आप कह रहे हैं? सर वो ठीक है आपकी बात है, लेकिन इसे इम्प्रूव किस तरह किया जाए, थोड़ा सा इस लिहाज से गाइडेंस। हाँ, उसको इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि जो जिन लोगों से आप दोस्ती करना चाहते हैं उनको एनालाइज करें, उनको ऑब्जर्व करें और वैसे बनने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव, एक एक स्टेप। ये ओवर द पीरियड हुआ करते हैं, ओवरनाइट नहीं होता। बट एक काम आप ओवरनाइट कर सकते हैं ना आज से ही, कि जी हमने नेगेटिव नहीं सोचना, वी विल स्टे पॉजिटिव। ये तो आप कर सकते हैं, ये तो आपके बस में है, ये करें शुरू। दूसरा, जैसे मैंने कहा, आज मैं आपकी जगह आया होता या किसी ने मुझसे मशवरा मांगा होता आप में से कि मैंने उधर जाना है तो क्या करना चाहिए, तो मैं कहता यार हेयर कट अपना कोई 4 दिन पहले करवाओ। और आप समझो आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जहां पे आपने बोलना भी नहीं है, येट यू आर टू इम्प्रेस द पार्टनर, तो ड्रेसअप होके जाओ प्रॉपरली। तो ये एटीट्यूड तो आप बिल्ड कर सकते हैं अपने आप में, एवरीबॉडी। ये ओवरनाइट हो सकता है। हाँ, उसको डेमोस्ट्रेट ओवरनाइट नहीं किया जा सकेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करता है बंदा। थैंक यू। थैंक यू। एक चीज और बड़ी आती है लड़कियों की तरफ से आमतौर पे कि जी हमें इतनी फर्म्स में गई हैं, उन्होंने कहा जी हम तो लड़कियों को आर्टिकल्स ही नहीं देते। ये इशू है, इसकी काफी सारे रीजन होते हैं। मैं तो समझता हूँ वो फर्म फेवर करती है आपको जो साफ बता देते हैं कि हम लड़कियों को आर्टिकल नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी क्लाइंटल इस लेवल की नहीं है जहां वो आपको भेज सकेंगे। आपको जेंडर घर पे रख के आना पड़ेगा। टाइमलाइंस मीट करनी होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग अपने माइंड की आपने करनी है, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। 3.5 पौने 4 साल जो होते हैं उसका मकसद ये होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। और वो जेंडर की तो नहीं की जा सकती ना, माइंड तो माइंड होता है। मुझे एक ने क्वेश्चन किया कि जी लड़कियों को चांसेस कम मिलते हैं। अच्छा, मेरी ही स्टाफ मेंबर थी। मैंने कहा अच्छा किस तरह के? उन्होंने कहा जी एक्सपोजर। मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी हम इस असाइनमेंट पे काम कर रहे थे, वुड यू लाइक टू वर्क? उसने कहा नहीं, मैं 6 बजे के बाद नहीं बैठना चाहूंगी। तो मैंने कहा यू टोल्ड मी 6 बजे के बाद नहीं बैठना चाहोगी, तो मैं टाइमलाइन पे जो असाइनमेंट्स है मैं तो तुम्हें दूंगा ही कोई नहीं। वो एक कॉमन लॉ की अमेंडमेंट्स आई थी, उस पर हमने कमेंट्री इशू करनी थी। तो मैंने कहा तुमने अपने लिए दरवाजे खुद बंद कर लिए ना। एंड इट्स नॉट ओनली गर्ल्स, दूसरों में भी ये होता है। बट जो भी स्टूडेंट, हम तो स्टूडेंट को लेते हैं ना, हम तो जेंडर को नहीं लेते, फॉर्म स्टूडेंट होता है हमारे लिए। तो जो भी स्टूडेंट इस एटीट्यूड के साथ होगा जिसके पे मैं डिपेंड नहीं कर सकता फॉर वैल्यू क्रिएशन, मैं उसे क्यों टीम मेंबर बनाऊंगा कल को? वो रूटीन की काम दूंगा ना उसको सारे। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि जी बिग फोर बिग फोर बिग फोर बिग फोर आमतौर पे डिस्कस होता है। आईकैप डज नॉट रिकॉग्नाइज सच थिंग्स, बट ये क्वेश्चन आता है और उसमें ये होता है कि जी हम सिर्फ बिग फोर में ही जाना चाहेंगे क्योंकि जॉब्स बिग फोर की आती हैं। और भाई वो तो 10% कंपनीज भी नहीं है जो बिग फोर को लेती हैं, 90% तो लेती ही नहीं है बिग फोर को। वो जब चार्ट अकाउंट का कहते हैं और उसको भी सीधे वो कहते नहीं यार बिग फोर नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, ये कहीं और चला जाएगा। हाँ, बस बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं। वो बेसिक चीज है, आप भी जिस कॉलेज से पढ़े हैं, कल को आप बैठे डिसीजन मेकिंग में होंगे तो आप उसी कॉलेज को आप प्रेफर करेंगे जब 2 लोग मेरिट पे होंगे। ये एक फैक्ट है, ये इंसानी फितरत है, इसको आप चाहें भी तो चेंज नहीं कर सकते। तो गो फॉर सीए इन द फर्स्ट प्लेस। ये उसके बाद एफर्ट करें अच्छी फर्म के लिए। यस, अच्छी फर्म कौन सी होती है? जो आपसे चाय ना बनवाए, जो घर की सब्जियां ना मंगवाए। ऐसी कोई चीज आती है आप कंप्लेंट करें आईकैप को। लेट आर्टिकल्स पे आईकैप कोई कंप्लेंट एंटरटेन नहीं करता।
या फिर लेटर दिखाएं फॉर्म का कि उसने कहा था मैं इस दिन आर्टिकल दूंगा। कोई ऐसी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होगी, क्योंकि आपके और उनके दरमियान है, हम तो सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अपने पास रजिस्टर कर रहे हैं एज ICAP। आपका राइट है ट्रेनिंग रेगुलेशंस के तहत जो आपके राइट्स है आपको मांगने चाहिए फॉर्म में। मांगने का एक तरीका है, कम्युनिकेशन बेहतर करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। फर्म भी सोचे कि यार ये चला ही ना जाए मुझसे, दूसरी फर्म में ना चला जाए, ये तो इतनी वैल्यू क्रिएट करता है। अपने आप को वैल्यूएबल कर दें, और उसके लिए जरूरी है अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने साथ सिंसियर हो जाए, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाए। फर्म की जरूरत है आप सब, बट जब आप सब मैं कहता हूं तो वो एक सबसेट है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो जरूरत है, और अच्छा स्टूडेंट वो है जो फर्म को सूट करे। एनी अदर क्वेश्चन? जी, माइक ले लें, बाकियों को भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। शानुम सर, इंडस्ट्री आर्टिकल्स में इतनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो सकती है फर्म के मुकाबले में? हो सकती है। देखें बहुत सारी फर्म्स हैं जहाँ पे सेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, एक डिपार्टमेंट में बंदा जाता है वहीं सारी उम्र गुजार देता है। तो इंडस्ट्री में तो फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का रोल मिलता है और ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है और ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो डिपेंड करता है व्हाट यू वांट। मिल सकती है, वहां भी हमने अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि ठीक है आप वहां जा लें। देखें ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। आज आप कैफ क्वालिफाई करें, आप फर्म में जाएं, आप इंडस्ट्री में जाएं, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। सर ICAP सुपरवाइज करता है इस चीज को, इंडस्ट्री आर्टिकल्स? हाँ हाँ, उसी तरह इसकी मॉनिटरिंग है जिस तरह फर्म की है, कोई फर्क नहीं है उसमें। और इंडस्ट्री से लोग क्वालिफाई भी कर रहे हैं विद इन आर्टिकल्स। एक ने SCCP से किया है, दो कोई मुझे कराची के बता रहे थे वहां किसी ऑर्गेनाइजेशन से किया, तो क्वालिफाई भी हो रहा है। क्योंकि क्वालिफाई तो आपने वर्क आवर के बाद करना है ना। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कहाँ हैं? अच्छा ठीक। सर मैं आपने कहा Well था dressed. कि जी थैंक यू I सर। liked it. सर आपने कहा कि हम जब जाते हैं किसी से इंटरव्यू के लिए तो हमें देखना चाहिए कि हमें उससे क्या हमसे रिक्वायर है, क्या पूछना चाहते हैं। तो हम सर इतने इनिशियल लेवल पे होते हैं कि हमें बड़ा मुश्किल होता है कि हम कैसे जज करेंगे हमसे वो क्या किस तरह से उस फर्म में जो सीनियर्स हैं, कोई जानने वाला है, उससे पता करें फर्म का कल्चर क्या है, कैसे वहाँ हो रहा है और किस टाइप के स्टूडेंट्स को वो जनरली हायर करते हैं। उससे कुछ आइडिया मिलेगा आपको, कुछ वेबसाइट से चीज़ें मिलेंगी आपको, तो थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। सर वो मतलब सर मैं एक जगह इंटरव्यू पे गया, मुझे लगता है कि CA के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खुश रहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ज़रा, क्योंकि प्रेशर यूनिवर्सिटी इज अ डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट मोड। नहीं सर, तो उसका बेसिक फर्क मैं आपको आपके क्वेश्चन से पहले बता दूं। आई हैव टॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार ये A+ क्यों सारे होते हैं या A ग्रेड ही कैसे आते हैं। भाई उसी टीचर ने पढ़ाया, उसी ने पेपर बनाया, उसी ने एग्जाम लिया और उसी ने ग्रेड साइन किया। जी सर। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है बना कौन रहा है पेपर और मार्क कौन कर रहा है, मगर स्टैंडर्ड जरूर है, 50 नंबर लेने पड़ते हैं। सर मतलब वो कि प्रेशर होता है तो हम चाहिए कि हमें थोड़ा खुश रहना चाहिए। मैं इंटरव्यू पे गया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए, मैं ज़रा हंसते हंसते जवाब दे रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना हंसते हैं तो आप सीरियस नहीं मुझे लगते। तो मैंने उनको कहा कि मैम देखें एक चीज मैं जनरली स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, स्टे नेचुरल। ये एक्टिंग मत करें कि मैंने बड़ा खुश होना है या मैंने बड़ा सीरियस बैठना है। स्टे नेचुरल। आप एक इंसान हैं, आप एक ही तरह की स्टेट ऑफ माइंड में कैसे हो सकते हैं सारा वक्त? रोबोट थोड़ा ही है। स्टे नेचुरल। ये सुनी सुनाई बातों को छोड़ दिया करें, नेचुरल जाएं, वहां पे नेचुरल बात करें। वो क्या कर रहा है आपके लिए? ज्यादा आर्टिकल नहीं देगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, और कुछ नहीं तो गाइड ही कर देगा थोड़ा सा। तो स्टे नेचुरल और आप भी क्वेश्चन करें जब वो पूछते हैं आपसे कि आपको कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और पार्टनर्स आप लोग भी सुन लें, आप लोगों को भी असेस किया जा रहा होता है स्टूडेंट की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे हर किसी ने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है, हाँ।
तो ये हमारा शायद पहला बैच है जिसने पूरा जो कैफ है वो ऑनलाइन ही किया है। तो हमें यहाँ तक कि हमें अपने टीचर्स के साथ भी फिजिकली इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला अभी तक इन पर्सन। तो मतलब हमने पीसीएससी भी की, 1 मंथ का वो पीरियड था, लेकिन 1-1.5 मंथ का। तो शायद मुझे लगता है कि पर्सनली उतना फायदा नहीं हुआ कि मतलब क्यों पार्टनर्स को बता रहे हैं यार, आपको लेंगे ही नहीं वो इस बैच को। सर उतनी इम्प्रूवमेंट्स सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि उतनी इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं अपने अंदर आई। कम्युनिकेशन जो है ना वो तो स्कूल में सीखी जाती है, बाकी तो डिफरेंट स्किल्स उसके बाद की हैं जो आपको सिखाई जाती है वहां पे। आपने इंटरव्यू कैसे देना है, आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो स्किल सिखाई जाती है। कम्युनिकेशन तो नेचुरली आती है। कम्युनिकेशन का ना लैंग्वेज से ताल्लुक है ना किसी और चीज से ताल्लुक है। कम्युनिकेशन हाउ यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। सर उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मैं ये करने पूछना चाह रहा हूँ। दूसरों को देख लाइक हमारे यहाँ एक डायलेमा ये होता है हमारे कंट्री में, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश लिखते हैं, ना सुनते हैं ना बोलते हैं। वॉच वीडियोस, कुछ वो जो है सॉन्ग्स भी हैं, वीडियो सॉन्ग्स बहुत बड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो लिरिक्स के साथ भी, तो उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। ये तो ओवरनाइट वाला काम नहीं है, डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है, हर रोज कुछ इंप्रूव करें। आपने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, डॉन खोलें या कोई और अखबार खोलें, उसको पढ़ें, जो नहीं आते उसके मीनिंग देखें और दोबारा उसको लिखें अपनी लैंग्वेज में, और देखें मतलब बदल तो नहीं गया उसका कहीं। अगर वही है तो आपकी इंग्लिश ठीक है लिखने में। बाकी वो सुनने का जो मैंने आपको बताया यूट्यूब, और बोलने का भी इसी तरह से है। आप जो कहना चाह रहे हैं इंग्लिश में अपनी ही रिकॉर्डिंग करें और सुने उसको, जरा आपको फील हो जाएगा कि कहाँ शॉर्टकमिंग है आपकी, और उसको इम्प्रूव करें। यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। बाकी सारे मेरे ख्याल आई लव यू वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इतना दिल बर्दाश्ता हो गए क्यों? फर्स्ट कनेक्शन है आपका ये मेरे साथ, वॉइस के साथ, और आप देखे कितने डाउन थी आवाज। अब मुझे बताओ, एक बंदा इंटरव्यू कर रहा हो, एक बंदा एंटर हो, अस्सलाम वालेकुम इस तरह करे, कोई उसको क्यों कंसिडर करेगा? आप ठीक तरह बोलो। शाबाश। माइक बंद है। सर ये जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग की बात हुई और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात हुई कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, और जैसे प्रोग्रेस कर रही है वर्ल्ड जितनी स्पीड से, तो ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। नहीं, कम्युनिकेशन हमेशा नेसेसिटी थी, ऑलवेज, सिंस डे वन। जन्नत से शुरू हुई है, जहाँ वो सेब वाली बातें होती रहती हैं, आमतौर पे सुनने में आती हैं हमारे। सर तो जैसा कि हमें कैफ लेवल पे तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं आती। पीसीएसई एक वाहिद अपॉर्चुनिटी है जो हमें प्रोफेशनल ग्रूमिंग का जो मौका देती है। तो जैसे कि सीए का टोस्ट मास्टर्स क्लब वगैरह है, तो वो हम स्टूडेंट लेवल पे कब तक सर उसको आते हुए देख रहे हैं सर? स्टूडेंट लेवल पे ऐसे क्लब्स वगैरह क्या हम स्टूडेंट लेवल पे उसको कब तक ला रहे हैं सर? असद के जरा, ये तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसने जिम्मेदारी ली हुई थी। ये रीजनल कमेटी करे यार, स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से जल्दी करें इसको। ये प्लान में था, और 1-2 सेशन भी हुए, गुलाम अब्बास साहब से भी मेरी बात हुई थी। मेरा ख्याल है चंद माह में आ जाना चाहिए इसको। थैंक यू सर। थैंक यू। मीनवाइल आप दूसरे क्लब्स, आप लाइक यहीं पे मीटिंग्स होती हैं, सीए टोस्ट मास्टर क्लब पे भी आप मीटिंग्स तो अटेंड कर सकते हैं, उससे भी बड़ी लर्निंग होगी। कोई आपको नहीं रोकेगा उस पर। निशान ये देख लीजिएगा, कोई रोके ना। अहमद आप तो मेरा ख्याल है हो ना क्लब में भी, हाँ, तो ये आप इंश्योर कर लें, एंड दे शुड बी एबल टू अटेंड द मीटिंग्स। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि वो गलत कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप भी आ जाएं, इनको नहीं पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फारूक। जिस तरह के बहुत डायनामिक सिचुएशन हो रही है, जो सारी वर्ल्ड है वो डिजिटलाइज हो रही है, और बाकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो भी ऑनलाइन पेपर सिर्फ ऑनलाइन ही जा रही हैं।
तो जिस तरह आपने भी एक सेशन कंडक्ट किया था कि हम जिस तरह अभी हमारी बुक्स हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं और जो एग्जाम्स हैं वो भी हो जाएंगी, डिजिटल हो जाएंगी, ऑनलाइन तो पीडीएफ भी होती है जी, वो डिजिटलाइज हो रही हैं। इसी तरह पेपर्स भी आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो डिजिटलाइज होंगे, लेकिन जो कैफ का नहीं, स्टूडेंट पेपर का मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा। ये एलिगेशन नहीं आएगा। हाँ, ऑनलाइन एग्जाम हम ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, शुरू कर दिया हो। ऑनलाइन जो ले रहे हैं उसमें फिर जो टाइपिंग एक एलिमेंट है वो बहुत बल्कि प्राइमरली वही एक एलिमेंट है पेपर के अंदर। नॉलेज भी है, नॉलेज है। जब आपको टाइपिंग स्पीड आगे नहीं होगी तो आप उसको नॉलेज को किस तरह आप डिलीवर कर तो सकते हैं बच्चे पेपर में? इसका मतलब है ये भी एक प्री रेक्विजिट आ गया ना। अगर सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो यही आपने मेरा मीट करना है इस रिक्वायरमेंट को। यही क्वेश्चन मैं लीड करने जा रहा था कि जो रैयत जो हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें भी आप ये इस तरह से मॉनिटर करें कि जो स्टडी वो कर रहे हैं उस टाइम जो नोट्स अपने बना रहे हैं उनको भी जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर जो भी इनके पास फैसिलिटी है उस पे उस एट ए टाइम उसी पे बनाए ताकि उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी बेहतर है, क्योंकि आइंदा के सालों के अंदर ऑनलाइन ही पेपर होंगे। आप ये कह रहे हैं कि रीड्स को हम ये कहें कि जो स्टूडेंट आपके पास आता है वो लैपटॉप लेके आए और सिर्फ लैपटॉप पे ही लिखे? नहीं, मतलब ये नहीं कि बर्डन नहीं डालें, लेकिन ये है कि अब जिस तरह आप यही है ना कि आइंदा 1-2 सालों के अंदर ऑनलाइन, अब जैसे आप दोनों ऑप्शंस, कैफ के भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और फाइनल में भी इसी तरह अभी तक। जी, तो अब आगे जाके जो मुझे भी लग रहा है कि 1-2 सालों के अंदर यही हो जाएगा कि सिर्फ ऑनलाइन ही ऑप्शन शायद हो जाए। ये मेरी वो है। 2 साल आई डोंट इंडोर्स, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। लेकिन आपकी भी इंडिकेशन यही है कि सिर्फ ऑनलाइन ही फिर होगा इवेंचुअली, ऐसा ही है। तो इसलिए रैयत लेवल तक जो है उसको इनकरेज करना चाहिए आपकी तरफ से कि देखिए, हमने तो जब स्टूडेंट्स को बता दिया कि जी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, अब इन पर्सन भी हो रहे हैं और इवेंचुअली ऑनलाइन की तरफ चला जाएगा इंस्टीट्यूट, माइट टेक 10 years, माइट टेक 4 years। तो आपको ये पता चल गया कि अब ये रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ जो फर्म्स हैं उसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर शुरू हो रहा है, बहुत सारी फर्म्स में, बहुत सारी में हो रहा है, बट मेजोरिटी में आ जाएगा ये। तो आपको काम ही लैपटॉप पे करना पड़ेगा। आज भी जो फर्म्स हैं जब वो इंगेज करती हैं स्टूडेंट को तो वो ये सोचती हैं कि अच्छा मुझे इसको ईमेल एड्रेस भी देना है, मुझे एक लैपटॉप भी देना है, मुझे इससे काम भी करवाना है। तो फिर जब इतनी कॉस्ट उसने डे 1 पे बेयर करने का उसने सोचना है और क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना है, तो फिर स्टूडेंट को भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर हैं। ट्राई इट, इट विल टेक 10-20 hours ओनली, नॉट मोर देन दैट। एक जो आप लोगों के लिए चैलेंज है वो आगे, जैसे लड़कियों का मसला ये है कि जी फॉर्म्स बहुत सारी कहती हैं कि इवेंचुअली हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर आ जाएगा, क्लाइंट अगर एक्सेस दे देता है उसके ऊपर तो शायद ये ऑफलाइन ही होने शुरू हो जाए ऑडिट्स। तो फिर वो फर्म्स बहुत सारी जो आज कहती हैं कि जी हमारी क्लाइंटल अभी ऐसी नहीं है, वहां भी जिसको लैपटॉप पे ज्यादा ग्रिप होगी सॉफ्टवेयर्स पे वो सक्सेसफुल होगा और लड़कियों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपसे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ क्योंकि दे वर्क स्मार्टर देन यू मोस्टली। थैंक यू। थैंक यू। ये पार्टनर्स नहीं रिप्लेस होंगे अभी, उसमें टाइम लगेगा। मैंने कहा पार्टनर्स रहना फिक्र करने, फीमेल पार्टनर्स आ जाएंगी सारी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? क्यों लड़कियों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या मैं कंसिडर करूं कि ये बस फिर आप जी वही कि जिस तरह आपने कहा कि ऑडिट सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और ज़्यादातर सिस्टम हाँ। ऑनलाइन हो रहा है, तो जिस तरह ये भी एक मिथ है कि ऑडिट का जो प्रोफेशन है वो भी आइंदा सालों में सिर्फ ये होगा कि आप सॉफ्टवेयर को चेक करें और फिजिकली जाके कुछ काम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप फिर भी स्टॉक्स और बाकी सारी चीजें उनकी वैल्यू तो है ना। बाकी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स आ जाएंगे। एक जमाना था जब कहते थे जी अगर सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो अकाउंटेंट्स की पोजीशन से खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक जमाना आया कि जी अगर ERP आ गया तो सब लोग फारिग हो जाएंगे, वो CD पे 35 रुपए की CD होगी, उस पर सॉफ्टवेयर होगा, उसी पे सारा कुछ हो रहा होगा। कहाँ हुआ भाई? दुनिया आगे जा रही है ना, आपका रोल चेंज होता जाएगा डे बाई डे। नाउ इट विल नॉट, एक जमाने में बुक कीपिंग वाज अ मेजर टास्क, आज है ही नहीं वो। उसके बाद अकाउंटिंग वाज अ मेजर टास्क, आज कोई टास्क ही नहीं है वो वाला। आज एनालिटिक्स की तरफ समझाते हैं। आज वो कहते हैं जी हमें
स्ट्रेटेजिक इनपुट दे चार्ट अकाउंट जो है कि बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है, हमने वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो रोल चेंज होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा, पोजीशन नहीं खत्म होती। कोई ना कोई इंसान ही होगा जो दुनिया को चला रहा होगा और आपके प्रोफेशन से बहुत ज्यादा होंगे। व्हेन आई स्पीक टू बिजनेसमैन, हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़े ग्रुप का चेयरमैन भी मेरे साथ बैठा हुआ, मैंने कहा जी आप बताएं डेटा एनालिटिक्स के लिए जो डेटा की कस्टडी है वो किसको आप देना पसंद करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? एंड ही सेड CFO. It took no time. मैंने कहा व्हाई CFO? उसने कहा ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन फॉर डेटा। मैं किसी के हवाले कैसे कर दूं डेटा को? तो ये आपके रोल्स चेंज होंगे, प्रोफेशन कहीं नहीं जाता। सर माय क्वेश्चन इज आप अभी जो है वो ICAP के प्रेसिडेंट हैं, जी, ठीक अभी है, हूँ। लेकिन इस जर्नी को स्टार्ट करने में लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर CA, तो आपको क्या मतलब आपने क्या स्ट्रगल किया, द एफर्ट यू पुट ऑन, इतने मुश्किल सवाल ना करो यार। इनिशियल चीज, मतलब क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं हमारी, और देखो हमारे वो लिए वही जमाना और बेस्ट था, है। ये जमाना और है, बड़ा फर्क है। बट सर फिर भी उस वक्त ग्रेजुएशन होती थी, मुझे तो MBA में एडमिशन नहीं मिला, 10 नंबर से रह गया। आई स्टार्टेड CA कि यार एक फर्म में गया, उन्होंने मुझे आर्टिकल तो नहीं दिए, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा जी मैं आर्टिकल्स के लिए इस तरह से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका क्या ख्याल है, मैं आपको आर्टिकल दे दूंगा। मैंने कहा सर 3 ही मेरिट होते हैं आर्टिकल्स के, मेरा जिंदा होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपका मूड अच्छा होना जरूरी है। मैं जिंदा भी हूँ, ग्रेजुएट भी हूँ, आप मूड बता दें। उन्होंने कहा मेरा मूड अच्छा नहीं है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो आज तो फर्म्स इतना कुछ देख रही हैं, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसके लिए स्ट्रगल जो है वो यही है, यू ट्रेन योर माइंड टू क्रिएट वैल्यू, create value for the firm, for the family, for society, for the organization. That is more important. आप tools हैं, ये competencies हैं, सारी अपना attitude develop करें उसके लिए कि आपने create करें। Like I give you very simple example. एक बच्चा आता है, वो कहता है जी मैं Excel बहुत अच्छा है, हम उसे पूछते हैं फिजिबिलिटी बनानी आती है, वो कहता है वो क्या होती है? तो मैंने क्या करना है Excel को, अगर उस पर उसको फिजिबिलिटी बनानी आती। एक बंदे को फिजिबिलिटी बड़ी बनानी आती है मगर Excel नहीं आता, मेरे किसी काम का नहीं है। तो नाउ पहले स्किल्स होती थी, अब कॉम्पिटेंस लेवल की बात होती है। कॉम्पिटेंस होनी चाहिए आपके में टू क्रिएट वैल्यू। ये मत सिर्फ बताएंगे मुझे ये टूल आता है, ये आता है, ये बताएं इस टूल से कर क्या सकते हैं आप, क्या यूज करना भी आता है? गाड़ी चलानी तो आती है मगर क्या पता भी है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप नई चीज ना कोई सीखें। बस ये एटीट्यूड अडॉप्ट कर लें, बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। अभी क्वेश्चन था किसी का, मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट स्कूल के, मैं खुद गवर्नमेंट पढ़ी हूँ, लेकिन ना मैंने ICAP में नहीं देखा कि अभी तक गवर्नमेंट की इस चीज़ पे बेस करके किसी को छोड़ देते हैं पीछे, मैंने नहीं देखा। क्योंकि ICAP क्राइटेरिया में भी 60% मार्क्स वालों को भी ICAP इनरोल कर लेते हैं और बच्चे कर भी जाते हैं, चाहे वो FSC कर रहे हो या FA या कोई भी फील्ड से आए हो। तो इस तरह जो फॉर्म्स वगैरह उसमें क्या मार्क्स सच में काउंट होते हैं? कहते हैं मार्क्स भी काउंट होंगे, FTS देखा जाएगा, अटेम्प्ट देखी जाएगी। FTS तो कंसिडर होता है, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी एक क्राइटेरिया है, मगर क्या इसकी वेटेज 100% है? नो। उसके साथ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, आपकी स्किल्स, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और फिर उस टाइम का जो बैच जो फर्म ले रही है, उसने भी, फर्म ने भी अपना एक मिक्स बनाया हुआ है ना, ये इस टाइप के स्टूडेंट होंगे, तो वो भी देख रही होती है। तो वो उनकी स्कीम ऑफ थॉट्स जो है उसके अंदर फिट इन होना जरूरी होता है। मगर गवर्नमेंट स्कूल और दूसरा, इट डज नॉट मैटर, लाइक you go, you appear in the interview, your communication is good, nobody will bother कि आपने O level किया है, A level किया है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं या SN से पढ़े हैं, makes no difference। सर मैंने आपके भी कुछ वीडियोस वगैरह देखे YouTube पे, बाकी CA Now you are वगैरह making के me सब- accountable for something, okay। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट टाइम में मैंने आपकी एक वीडियो जिसमें आपने कहा था आप 7th अटेम्प्ट वाले को प्रेफर करते हैं। नहीं, प्रेफर नहीं, अगर अच्छा उसमें प्रेफर skills नहीं मैंने वगैरह कहा हो, होगा। ये अगर होता है वो कि skill समटाइम positive हो, 7 अटेम्प्ट्स वाले को भी I would like to recruit instead of अगर 3 उसका or 4। positive attitude हो,
आपने उसमें बाकी सारी चीजें आ जाते हैं ना इसके अटेम्प्ट्स के अलावा, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसमें प्रेजेंटेशन है उसकी, जिसमें एटीट्यूड है उसका कि वो कैसा है। सम टाइम हम ऐसे डिफिकल्ट सा क्वेश्चन कर देते हैं, वो कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, भाई नहीं आता बता दो नहीं आता। जी ये कितना आसान काम है, और हम एक्सपेक्ट भी ये कर रहे होते हैं ये स्ट्रेट बता दे हमें, वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है स्टूडेंट। बी नेचुरल, नेचुरल, दैट्स वेरी। कितनी देर एक्टिंग करेंगे? 3.5 साल आपने फर्म के साथ रहना है, कितनी देर एक्टिंग करेंगे? मत करें ना यार, छोड़ दें जो सुन के आए हुए हैं इधर उधर से। आप स्टे नेचुरल, स्टे ह्यूमन। जी थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके एक्सपीरियंस से मोटिवेट हुआ हूँ कि हम भी शायद आपकी तरह फ्यूचर में प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। अभी किसी ने बात की थी 10-15 साल में यूनिवर्सिटी बन सकती है। भाई 10-15 साल में तो आप यहाँ खड़े होंगे मेरी इंशाल्लाह। जगह, फैसला कीजिएगा उस वक्त अगर लॉ अलाउ करेगा, बिल्कुल बन सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू कैन कंटेस्ट काउंसिल इलेक्शन, यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट। बाकी तो अल्लाह ने जैसा लिखा हो वो होना है, हम तो सारे एफर्ट ही करते हैं उसके लिए। मैं तो जनरली कॉन्वोकेशन में भी वो स्टूडेंट भी होते हैं जो जैसे ये अभी शील्ड पकड़ा रहा था इस तरह वो लेके आ रहे होते हैं, तो मैं उनसे भी कहता हूँ यार ये एक कदम का फासला है तुम में और मुझ में। यू आर आर्टिकल स्टूडेंट, आई एम प्रेसिडेंट, बस ये इधर मेरी तरफ आना है, तुमने इसको कवर करना है। बी कॉन्फिडेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, वर्क फॉर इट, यू विल बी इंशाल्लाह, एवरीबडी कैन बी। कोई वजह नहीं है कि आप, मैं जनरली आप लोगों को जो देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, आपका आईक्यू लेवल एवरेज से ऊपर है। जनरली मुझे ये आता है कि यू ऑल कैन क्वालिफाई, बट द क्वेश्चन इज आर यू विलिंग टू क्वालिफाई। हम तो एग्जामिनेशन कमेटी में जब बैठे होते हैं, रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं, हम तो 50 नंबर तलाश कर रहे होते हैं यार, कौन कौन है लोग जिनके 50 नंबर है, इनको पास करें हम। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिस वक्त हमारे सामने रिजल्ट होता है, हमें ये भी नहीं पता होता ये कौन सी फॉर्म से है, कौन से कॉलेज से है, कौन से शहर से है, कौन सा स्कूल है, किस टाइप का स्कूल है, कुछ पता नहीं होता हमें। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ आंसर बुक होती है और नंबर होते हैं। और उसमें भी चलें, आई शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग, से किसी के 40 मार्क्स आ गए हुए हैं, वो पेपर कम से कम कुछ 6 दफा चेक होता है कि यार कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं है, कहीं गलती हुई हो जहां और मार्क्स दिए जा सकते हो। होता है इस तरह समटाइम, एक बंदे के 46 मार्क्स है, रीचेक हुआ, कहीं से 0.25 मिला, कहीं से 0.2 मिला, और नंबर मिला के पता लगता है 50 हो गए, क्वालिफाई कर जाता है। तो वी टेक एवरी चांस। एक और इस वक्त है कैफ के लिए भी अब तो शुरू करने लगा है आई कैप फीडबैक फॉर्म, क्या आप पेपर में फेल हुए हैं, फीडबैक उस पर ले लें, वो लिख के देता है आई कैप कि किस टाइप की आपकी गलतियां हैं उसमें। इसी तरह रिकाउंटिंग का भी है, रीचेकिंग है। आई कैप के पास जब आप जाते हैं रीचेकिंग के लिए, तो इसका मतलब रिकाउंटिंग नहीं है, इसका मतलब है वो लोग जो इस चेकिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, वो इंडिपेंडेंटली बैठ के पूरा पेपर रीचेक करेंगे आपका। अगर प्रोबेबिलिटी मौजूद है, आपके मिल जाएंगे उसमें मार्क्स, फर्दर मिल जाएंगे। यहाँ कोई वो चीज नहीं है प्रोफेसर का मूड अच्छा है तो सारे पास, खराब है तो सारे, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। इट्स वेरी वेरी सिस्टमेटिक। थैंक यू वेरी मच। Over to Fajar. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, you have to be on this stage. You have to present 2 more shields. I request our distinguished guest, Mr. Farooq Hamid Saab. Mr. Farooq Hamid Saab to step forward and receive his shield. And Fajr Nadeem for being such an amazing master of ceremonies.
Ladies and gentlemen, it has indeed been a very fruitful session. I request all speakers and our distinguished guests to step forward for a group photo. Yeah.